Here you go, lights. They are on here at Gaddafi Stadium. Umpire Rashid and Shosa Braza, both on-field umpires. They are making, they are walking into the center. And Marina, what should you say, like as a cricketer, and currently you're also in the management of cricket. These are really wonderful pictures, appreciable. Oh, definitely. All the credit goes to PCB for making sure that this prolific event is happening here at Gaddafi Stadium, the heart of cricket. And I think that hats off to MCC as well, especially Kumar Sangakkara. We early heard him that he really advocated cricket in Pakistan, return of the cricket especially. And he has played some cricket here early on in 2001 and also for Quetta Gladiators. I think that all credit goes to PCB, and just look at the scene here. I think almost a jam-packed stadium. And here we go, the MCC team now taking on the field as they chose to bowl first after winning the toss. Yes, we must say them boys, MCC boys, though they've been over 29 or maybe more than 30 plus. But for us, they are really gentlemen because they are making their presence here. We are Gaddafi Stadium Lahore, where Zimbabwe came in 2015. Pakistan Cricket Board making the effort, and World 11 visited here. Then Bangladesh arriving, and there you go, the both openers. Fakhar Zaman, the man who scored, I must say, only player from Pakistan scoring double century, 210 not out in ODI cricket, and along with him, Salman Butt. The two left-handers for Lahore Qalandar now taking on the field. Salman Butt, we know he's a prolific batter and a very stylish left-hander. And of course, this man on screen, Fakhar Zaman. One cannot forget his innings in what he played against India. I think it will be a really good opening partnership from them. Two different players, both left-handers, but really different approach. And look at the beautiful, this cricket ground, lush green outfield, giving a more beauty. And in the background there you can see Pakistan Cricket Board, PCB. Welcome to Gaddafi Stadium Lahore, everyone, the spectators, the MCC, the media, and the world is watching this, that Pakistan is really a safe country now. You can come and play your sports. Well, MCC winning the toss, elected to bowl first. And this crowd is going to see really a thriller, and should be a thriller here. They're waiting for the first delivery of their superb game. Got a slip in place, and let's see if the surface can give them a bit of bounce, a bit of seam earlier on, and they can get some wickets. There you go, the first delivery of this MCC versus Lahore Qalandar, getting a good bounce, and Sangakkara, he was in bit of pain, bit of trouble. Wow, that was a good delivery. I mean, welcome to Lahore, Salman, but that should have been other way around, but a good carry. And we've seen the pitch earlier with some cracks on it, but just charging in and hit a good length, a good carry to the keeper. Yes, tall bowler. Well, this time good bounce, but not been able to get the gap. And Salman is eager to get after mark. But he needs to get in form quickly, because he's really a hard hitter, good batsman and a top order. South Pakistan over the years. And I remember when he was playing in India, scoring a winning knock. Well, good fielding. But both players, they are eager to get a single, but so far doing a good job pitching the ball in the right areas. He has got the field towards offside, and he's lending the ball towards that area, off stump.
Yes, Ross Whitley here, played for Worcestershire, and just coming in and hitting a deck a little hard. We know that Salman Bhat can play really good shots off back foot. He's really strong in that area. But right now, a really good start from MCC. Yes, exactly. They are taking a bit of time with a side screen, or maybe someone who has been passing through there from the sides of side screen. That's why they're taking a bit of pause. Salman Bhat was not happy. He's a good wristy player. His cover drives, hard slices, been really known. And let's see what he can do tonight, because they really required him to play some aggressive, quick fire. There you go, the first run. Getting off the mark, and now it's Fakhar Zaman, the Navy sailor. And let's see how he can sail this inning here. Yeah, correction there. It's Oliver Hannon, the bowler, not Ross. First run off the mark. Now Salman Bhat. Fakhar Zaman, we know how explosive he can be. Really likes to go for big shots. Really good off the back foot. Flicks. And likes that ball to come onto bat. And we'll see how he operates with Oliver. Yeah, watchful. It's better because they have got a slip, and Oliver's pitching the ball towards off stump. It's shaping away from him. So it's a good way just to check a couple of deliveries and then go after it, because this crowd is really waiting. Fakhar Zaman and Salman Bhat to have some big hits. You see, 3 fielders towards offside and mid-off. Third man is down, falling onto the boundary. There you go, he has flashed it. Good fielding. I think so, Smith. Just sliding and stopping certain runs for the team. That's a commitment. So over gone. 1 over gone, not for 1. So there you go, Suhail Akhtar, the captain of Lahore Qalandars, then Fakhar Zaman, Mohammad Hafeez, Mohammad Hafeez is also there, Jihad Ali, Salman Bhat, Farzan Raja, then Maaz Khan, Ali Majid, and Usman Shinwari and Dilbar Hussain. In MCC, Kumar Sangakkara, the leader, then Ravi Bopara, Michael Burgess, then Oliver, and Fred Klassen, Michael Lesk, Smith Patel, Will Rhodes, Sufyan Sharif, and they have got role of vendor Ross Whitley. There you go, Fakhar Zaman, really a hard hitter. He has got a good season in 2018 for the trophy matches when he came up onto the horizon, and after that he came into the PSL. Good pick, and PSL has really worked for Pakistan. Fred is there, and he has got the ball. Yeah, usually played for Kent. Also debuted A-list in England and Netherlands in 2017. Oh, a bit of movement there. A quick run. That was really a good call, early call. And you need to reply well to your partner when he's calling you. Just we've seen that pitch seems a decent track to bat on, and Sangha just mentioning that he wants to see how the behavior of pitch changes and how it behaves. But with this sort of batting and bowling right now, I think that Lahore Qalandar is really just checking the pace of the wicket out, because we haven't seen much of fast movement off the deck. They're getting bounce, yes, but a little bit look out for Lahore Qalandars right now. Yes, exactly. Oliver, in the first over, he was getting better bounce. But here, Freddie's just looking bit of the seamer, the way he is just pitching the ball over, trying to get something
Again, he's just sliding it over down the fine leg. The fielder is inside 30 yards. So the boundary came in. And that is what this crowd is loving at this stage. Oh, you can't bowl on pads to Salman, but good use of wrist and just help it away. With this field, it's really a loosener by Fred. He made sure it was 4 runs the moment it hit the bat. Well, this time Turu covers. They still again run away for 4. Touches the fence towards extra cover. Well, Fred is being punished away. He's not adjusting his length here. Another signature shot from Salman, but let's have a look at that. Right onto the ball, waited a little bit and then made sure it threaded through the gap. Good use of hand, good timing on it, and just transferring the balance and the weight through the shot. Have a look at that, lovely. Yes, really a superb drive from Salman, but he has got the class. Ball again poor, going down the leg side. And Sangakkara in the business. Here in umpire Rashid is just confirming it a wide delivery. He's both of the players, they are left-hander. So Fred should not be getting any sort of pain here of adjusting the line. Officially played towards onside, but they will run for a single. Fred just getting enough swing, especially with playing under lights. It is destined to have it, but he doesn't have that express pace you expect from a fast bowler. He's more of a medium pacer, but just right now not hitting the right areas. Oh, there was way towards offside, but lucky. Just get away from this. 2 overs gone. Lahore Qalandars 14 without wicket. Well, that's Lahore Qalandars dugout. Really a good warm-up game before PSL. As Lahore will be hosting the PSL games, and this time complete Pakistan Super League is going to happen here. Multan, Karachi, Rawalpindi and Lahore. So cricket is coming back, which is really a nice and good one for cricket board, for supporters of Pakistan as well. Softly played. So far only a boundary. That was a poor delivery towards onside. But except that, I think so that we're looking at a card like in a third over 15 runs in terms of a T20 cricket, where you've been looking for first 6 overs quickly. Good job by the bowlers. Yes, I think that I feel that there's a little bit of slowness on the wicket. If you can look at it, that it's not hurrying onto the bat. Very close towards offside. Sangakkara is not keeping it safe. But if you looking this Sangakkara, I think it's a totally different of his era, because he was not been losing the things like this. Yeah, it's been in the middle after a long time, but just enough swing away from the batter, and again the lack of pace is really making things difficult for the Lahore Qalandar batters out there. Well, at the very last moment, I think he just adjusted his stroke, and he's practicing there. I think it's better to keep the ball roundabout towards the pads of Salman, but rather than giving a bit of the space or cushion or room towards on and offside. 24 games, 74 is his highest in T20 career.
He's got really strong wrist. Just don't forget that. He'll have to flick it. So you'll be very careful in the areas you bowl. There you go. They can run for 2 here. It's a couple added. They're not firing at this stage. They're just picking up the gaps like couple. Except a boundary that was down the onside towards fine leg. So you may expect that Salman Butt is taking much of the charge rather than Fakhar Zaman here. Yeah, Fakhar likes when it comes onto the bat. Oliver has taken the slip out, placed it in the short mid-wicket area. Maybe trying to target a straighter line this time now, because they know that giving anything outside off stump, Salman Butt would love it. We know his prolific cover drives. So maybe that's the plan to go with now. Yes, exactly, a class cricketer. Fakhar Zaman will surely be learning lots of things. In the background you can see Wasim Khan, the MD. Bit of width off a back foot point. Touches the fence for 4. That is what you were talking, the class of Salman. He found a bit of the bouncy delivery right in front of his eyes. Have a look at that. Brilliant shot. Up and over point. That's one of his strengths. He's never afraid to face a short ball. And with this pace, it's really easy goings and easy pickings for Salman Butt. There you go. He's moving his feet well. When the bowler was on his run up, he was just coming a little ahead on the front foot. Then the ball is pitching. 3 overs gone. Lahore Qalandars 22 without wicket. Well, that's the dugout. Aqib Javed, the senior pro, giving lots of advices, and he's really a big part of Lahore Qalandars' development program. The way they have produced the players. Low full toss, lucky to get away from this. The crowd, Pakistan flag just flying there, and they're happy. They want cricket, and that's exactly what MCC and PCB especially has given them. PSL 5 full edition played in Pakistan. I think that's the best gift to this nation who loves cricket and loves their star. If you're watching out there at home, come and watch it at stadium. Yes, exactly. It's totally free, and you can witness the superstars of their era. They're shining here at Gaddafi Stadium. Whether you are the supporters, the fans of Lahore Qalandars, you may come. And if you are the favorites, or if your favorites are Kumar Sangakkara, Smith Patel, you can come and witness them over here. It will be a good step that you may say that it's a second England 11 team. And they've taken a quick single. Such sort of teams like MCC will surely pave the way for other teams, as well as the British, the UK cricket team as well. Definitely, it sends a really significant message out to the world. MCC visiting Pakistan, international cricket coming home lately, and I think with Sri Lanka, Bangladesh, and now MCC, hats off to PCB. Yeah, they're happy. They're really happy. They want to see their stars out in the middle. Sufyan Sharif, Scottish player. Yes, slower one. Yes, Salman and Fakhar Zaman, they are not being fiery here, though that 2 boundaries from Salman Butt.
At Fakhar Zaman, he's been a bit quiet on the back foot. Crowd is really waiting for a quick fire from him. And you can't stop him for long. Might be in this over like 2 deliveries. You might be watching quick fire from him. Couple of boundaries, so maybe a 1 in this over. Change in field now. Mid-on send back to longer. I think that Sufyan is really smart with his options, targeting Fakhar in a straighter line because that's where he struggles. Yes, exactly. He's not giving you any sort of room. Just been pitching almost in a mid and a leg. And that's a better way to tie him up. Fourth over in progress. I think it's just that if you're not getting boundaries, another way to go about it is singles. And I think that Salman but seems has more intention of just rotating strike than Fakhar, and that's also an important part of partnership. Yes, again, exactly. And MCC bowlers, they're doing a good job. Just a single. After 4, Lahore Qalandars 23 without wicket. There you go, Fakhar Zaman flashes it hard. Just falling short in front of mid-on. Well, he was just trying to go over. So there you go, with a straight bat, but I think so the ball was not in his slot. Just a premeditated shot. Couldn't go through. Yes, a really hard flash of the blade, but wanted to go up and over. Couldn't really connect it. Again, I think that just a pinch of slowness off the wicket, off the deck, that's really causing a little bit of problems for the Lahore Qalandar openers. Well, this time, bit of away from the body, but you are just coming down the track. Not been able again to swing that shot underneath of his bat. There is something, you may sense that Fakhar Zaman is just been trying to hit hard. Yeah, he's had enough. He wants to play his shot in front of this massive crowd playing at Lahore. This stadium always has a really good vibe going on, and he wants to play his shot and entertain the crowd. Well, this time down the leg side. Get away from this. There, Salman was just thinking it might be umpire would have a different say. Give it a wide delivery, but umpire shows up as the different thoughts. It's a dot delivery, and in first 6 overs, a dot delivery means a lot for the bowling side. Well, this time a bit of flick towards onside, gentle push, run away for 4. Yes, there you go. Shows up as just confirming it. And Marina, you are talking the wrist of Salman, and that's the reply. Signature shot. Have a look at that. The power of wrist onto the pads. You cannot ball to Salman. He can play these shots all day long for 4s. Yes, so far all boundaries coming from the bat of Salman, but he's just on a back foot. Well, Fred is just mixing his deliveries up here. Couple of forward pitches, and then he came back with a back of length.
keeping them under check. The run rate is not that massive. The bowlers maybe feeling a bit of the frightened to look on. Oh, a bit of mix-up. Good fielding. And a 45 in 30 yards. So 5-4 score. Lahore Qalandars 29 without wicket. Well, change in commentary box as well. We have got Zohaib Ahmed and Akil Sama. बहुत शुक्रिया एजाज और मरीना. वेलकम तमाम देखने वालों को. और जोहेब बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं, फ्रेश फ्रॉम अमेरिका. कैसा लग रहा है आपको सारा? थैंक यू अकील. बहुत ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर, इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड, और उससे भी ज़बरदस्त बात यह है कि एमसीसी की टीम पाकिस्तान टूर कर रही है. ऑल्दो इट्स नॉट द कमबैक ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, बट येस, अगर आप इंग्लैंड क्रिकेट की और इंग्लैंड क्रिकेट से आने वाले किसी भी क्लब की बात करें तो ये एक खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए. और ऑन टॉप ऑफ दैट टॉप फैसिलिटीज़, अच्छा विकेट प्रिपेयर किया गया T20 फॉर्मेट के लिए. बट अकील थोड़ा सा स्ट्रगल करते दिखाई दिए अभी तक लाहौर कलंदर्स के बैट्समैन. जी हाँ, लगता है कि आप कुछ नंबर्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं. अब तक जिस अंदाज से शुरुआत हासिल की थी सलमान बट ने, उससे लग रहा था कि वो एक अच्छे और पॉजिटिव अंदाज से इंटेंट के साथ स्कोर करते नजर आ रहे हैं. लेकिन अब लगता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को जो इब्तिदा हासिल हो गई है, क्योंकि अब PSL आमद हम कहते हैं, अब तो ऐसे लग रहा है कि आ चुकी है ऑलरेडी. लेकिन उसमें लगता है कि अपना ये कुछ जगह पक्की करना चाहते हैं. Oh yes, this is very important for Salman Butt and for Lahore Qalandars as well, because अच्छा स्टार्ट मिल चुका है. 31 का स्टार्ट है विदाउट एनी लॉस. रन रेट थोड़ा सा लोअर साइड पे है, बट आई थिंक जब आपकी पार्टनरशिप एज एन ओपनर स्टैब्लिश हो जाए एंड देन यू गेट यूज्ड टू ऑफ द कंडीशंस, सो दैट्स वेयर आपको एक लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए. एंड इट ड्यू ऑन फखर जमान एज वेल. इस गेंद को पीछे हटकर कट करना चाहते थे, लेकिन नाइसली बॉल्ड बाय सफियान. चेंज ऑफ पेस किया और कवर में एक आसान सिंगल लेने में कामयाब हुए फखर जमान. आई थिंक अकील दिस इज द टाइम कि जहां पे इनको ये रियलाइज करना है कि अगर बॉलर अच्छी बॉल कर रहा है, वेरिएशंस को यूज कर रहा है और आपको लूज डिलीवरीज नहीं दे रहा, तो बेस्ट थिंग टू डू इज टू रोटेट द स्ट्राइक. लेकिन इसके साथ साथ इस मैच की जो फेस्टिवल नेचर है उसको भी मद्देनजर रखना होगा. यहाँ पर एपरेंटली ये नज़र आ रहा है कि दोनों खिलाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप ओवरऑल टीम का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो ये 4 to 5 ऑड प्लेयर्स हैं कि जिनको फ्रॉम द सीनियर कैटेगरी शामिल किया गया है. अदरवाइज जिस तरह से MCC की शानदार टीम है और उसको क्राउड देखने के लिए आया है, प्लेयर्स लाइक जाहिद अली, प्लेयर्स लाइक मोहम्मद फैजान, उनको एक अपॉर्चुनिटी हासिल होगी. और उनके लिए ये जिस तरह से पावर प्ले का तकरीबन अख्तिताम हो चुका है, बड़ी स्क्वीज होती हुई अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी आने वाले वक्त में. इस गेंद को सलमान बट ने फ्लिक कर दिया, इनफैक्ट ग्लांस कर दिया टुवर्ड्स फाइन लेग एंड द बॉल रनिंग टुवर्ड्स द बाउंड्री. शानदार 4 रन सलमान बट के लिए. सुफियान जो कि गेंद को आगे रखने में कामयाब हुए, लेकिन खराब लाइन थी जिसका भरपूर फायदा उठाया. एक मरतबा फिर पैड्स पे गेंद की सलमान बट के और वैकेंट एरिया का इंतखाब किया इस क्राउड की डिलाइट के लिए, जो कि गैर मामूली अंदाज से लाहौर के इस तारीखी गद्दाफी स्टेडियम में आज मौजूद है MCC और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होने वाले इस मैच को देखने के लिए. एंड वंस अगेन टॉकिंग अबाउट PSL, अब लगता है कि ना सिर्फ ये ईव है इस शानदार एडिशन की, बल्कि ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो चुकी है लाहौर में. अगेन बॉल अंदर आया, शानदार अपील एंड अंपायर्स डिसीजन इज नॉट आउट. अकील क्लोज मामला था, अच्छा इन स्विंग किया, इन्होंने ट्रैप किया ऑन द फ्रंट फुट, कमिट कर चुके थे फ्लिक मारने में और फाइनली बच चुके हैं, अपनी विकेट को गंवाने से बच चुके हैं अकील. यस, लगता है कि लेग स्टंप को मिस करी थी. राशिद रियाज जो कि बड़े मंचे हुए और इंटरनेशनल लेवल पे जाने माने अंपायर हैं, उन्होंने फौरन अपने नफ़ी का सर हिलाया और इसको नॉट आउट करार दिया है. सफियान ने लगता है कि अपनी गलती से सबक सीखा है. स्टंप्स की लाइन में गेंद करने की कोशिश कर रहे हैं पावर प्ले की आखिरी गेंद करने के लिए. अगेन एक अच्छा बॉल था, चेंज ऑफ पेस किया लेकिन फ्लिक मारा इसको फखर जमान ने. बॉल इज रनिंग टुवर्ड्स द बाउंड्री एंड अगर 4 रन्स फॉर फखर जमान. सो अच्छा ओवर साबित हुआ ये लाहौर कलंदर्स के लिए. इस बाउंड्री के साथ एट द एंड ऑफ 6 ओवर लाहौर कलंदर इज 41 विदाउट एनी लॉस. इस मरतबा अच्छा पिक किया इस गेंद को फौरन फखर जमान ने और इंतहाई चालाकी के साथ बैकेंड एरिया में फील्डर के साथ से निकालने में कामयाब हो गए
और देखना ये कि क्या शक्ल्स को ब्रेक करेंगे इस पावर प्ले की आखिरी गेंद पर लगने वाले चौके के साथ, या फिर एक मरतबा फिर उनको नए सिरे से अपनी इनिंग्स को रीसेलेक्ट करना पड़ेगा। इनके पास ऑब्वियसली अब स्पिन बॉलिंग के ऑप्शंस भी मौजूद है। बहुत बड़ी बाउंड्री नहीं है आज लाहौर के इस गद्दाफी स्टेडियम में, लेकिन क्राउड तकरीबन उतना ही बड़ा है कि जितना आपको इससे पहले तकरीबन हर मैच में डे इन डे आउट दिखता हुआ नजर आया, चाहे बांग्लादेश के खिलाफ T20 इंटरनेशनल्स हों या श्रीलंका के ये मुख्तसर ओवर के मैचेस। और एक मरतबा फिर ये इस बात की एक बड़ी शानदार नवीद है ये जो इस परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट सेटिंग में एक्सीलेंट पॉसिबल वेदर में ये मैच ऑर्गेनाइज हो रहा है। और उसके बाद तकरीबन ऐसे ही वेदर में PSL के अंटिल यहाँ पर फाइनल जब खेला जाएगा, मैचेस यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो इतनी तादाद में क्राउड आएगा। सलमान बट और फखर जमान अपने कदम जमा चुके हैं MCC के खिलाफ। इस गेंद को सॉफ्ट हैंड से मिड ऑन की जानिब सिंगल के लिए स्ट्राइक रोटेट की सलमान बट ने। जी अकील राइटली पॉइंटेड आउट के टॉप कंडीशंस, परफेक्ट वेदर एंड उतना ही अच्छा क्राउड का रिस्पॉन्स, सो खुश आइंद है। और आने वाले PSL के मैचेस में आई होप क्राउड इसी तरह पार्टिसिपेट करेगा और अच्छी क्रिकेट को ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स देखने वाले पसंद करते हैं बल्कि प्रमोट करते हैं, प्यार करते हैं अपने प्लेयर से और इंटरनेशनल प्लेयर से भी। एक मरतबा फिर स्लोअर वन जिसको वॉचफुली फखर जमान ने खेला है। एक मरतबा फिर अगर हम निगाह डालते हैं इनकी बैटिंग लाइनअप पे, तो आई एम श्योर कि मोहम्मद हफीज़ अब बैटिंग के लिए अपने ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं इसके बाद, क्योंकि जाहिद अली, मोहम्मद फैज़ान और इनके कप्तान सोहेल अख्तर जो कि एक बड़ी सरप्राइज कॉल है इस PSL की शुरुआत से पहले, जब अब से 1.5 महीने पहले उनको एज ए कैप्टन अनाउंस किया गया इस मच सेलिब्रेटेड लाहौर कलंदर्स की, लेकिन अंडरडॉग टीम का। तो देखना है कि किस अंदाज से वो आज परफॉर्म कर पाते हैं। पीछे हटकर जोर से कट मारने की कोशिश की थी, रनआउट मामला हो सकता है और ये डायरेक्ट हिट देखना होगा अंपायर का फैसला, और राशिद खान ने यहां पे आउट डिसीजन करार दिया। और इस तरह सलमान बट अपनी विकेट खो चुके। नहायत ही जानदार किस्म की और शानदार किस्म की फील्डिंग MCC की जानिब से। यस बिल्कुल, बुल्सआई इस गेंद को हिट किया। दूसरी तरफ से सलमान बट ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद थे, कुछ आहिस्ता भागना शुरू किया और दूसरी तरफ इस एक्यूरेट थ्रो ने इनकी इनिंग्स का काम तमाम कर दिया। राशिद रियाज परफेक्ट इस पोजीशन में मौजूद थे इसको राइट अवे आउट करार देने के लिए। तो बिलाखिर आज की शाम का पहला नुकसान सलमान बट जो कि अपने कदम जमा चुके थे, अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम, लेकिन शायद आने वाले खिलाड़ियों के लिए अपॉर्चुनिटी, उनकी विकेट गिरी। आने वाले बैट्समैन है मोहम्मद फैजान। सलमान बट की विकेट हासिल हुई है। पहला ही बॉल स्लो वन कर दिया इन्होंने और आई थिंक चेंज ऑफ पेस के साथ क्या करना चाहते थे, आने वाले बैट्समैन की टाइमिंग को सॉफ्ट हैंड से खेला। और अब आपको लिए चलते हैं हमारी ग्राउंड एम्बेसडर किंजा की जानिब और देखते हैं उनके साथ कौन मौजूद। With me, I have Lahore Qalandars coach Akib Javed. Hello sir, how are you? All good, all good. So कैसा लग रहा है MCC और लाहौर कलंदर का मैच हो रहा है, क्राउड की एनर्जी कैसी लग रही है आपको? देखें ये PCB का वसीम खान का जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया 48 इयर्स बाद MCC को लाना, ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट की रिवाइवल है उसमें बहुत बड़ी एफर्ट है। एहसान मानी साहब ने जिस तरह से PSL को वापस लेकर आए हैं, पूरी PSL यहाँ आए हैं पाकिस्तान में, तो आज समझें कि ये आज से PSL शुरू हो रही है। आज आप देखें कि ये जो ओपनिंग है PSL की, MCC का और लाहौर का मैच खेलना, क्राउड देखें एक मैच को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। सो आई थिंक ये क्रिकेट की रिवाइवल के लिए और PSL के लिए ये मैच और MCC का आना बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है आज। नहीं, और इनफैक्ट मैं तो जब एंटर हो रही थी तो क्राउड कितना अमेजिंग है, यहाँ पे सारा स्टेडियम ऑलमोस्ट फुल है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए लाहौरी और लाहौर का प्यार जो है ये अमेजिंग है क्रिकेट के लिए।
ये 2 दिन के शॉर्ट नोटिस के ऊपर अब देखिए खचाखच जो स्टेडियम भरा हुआ है, तो यही ब्यूटी है लाहौरियों की। अच्छा, सो एमसीसी के हवाले से बात करेंगे तो बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए हैं, संगाकारा आया है, सो आपको क्या लग रहा है कि ये बहुत अच्छा पॉजिटिव नोट है पाकिस्तान के लिए? डेफिनेटली वो प्रेसिडेंट भी है एमसीसी के, और जो श्रीलंका की आखिरी टीम आई थी लास्ट टाइम 10 साल पहले, उसके भी हिस्सा थे। सो आई थिंक he shown his character, he shown his love with the game, and it's amazing personality. Thank you Sangha, and thank you MCC coming all the way to Pakistan. Perfect. Thank you so much for your time, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच किंजा। और इस दौरान फ़खर ज़मान को क्या लाइफ मिली है, एक मरतबा फिर अपने मखसूस अंदाज में, जो कि स्लाइटली लेजीनेस के साथ खेलना चाहते थे, एज हुआ, गेंद हवा में गई, हाथों में पहुंची, लेकिन उसके बाद इनको एक और चांस मिला। जी हाँ अकील, यहाँ पर हीव करना चाहते थे टुवर्ड्स स्क्वायर लेग, टॉप एज हुआ, इट वाज अ सेटर बट आई थिंक मिसकैलकुलेट किया फील्डर ने और ड्रॉप चांस। फखर को इस किस्म के चांसेस मिलते रहेंगे तो आई थिंक बहुत कॉस्टली हो जाएगा एमसीसी के लिए। नेक्स्ट इनको ऑन ड्राइव खेलते हुए 1 रन लिया फखर जमान ने और स्ट्राइक रोटेट किया, लेकिन अब नहीं तो कब, फखर नहीं तो कौन, इसके मिस्दाक उनको कहीं ना कहीं अपनी इस बारी को और टैलेंट को दिखाना होगा, क्योंकि इब्तिदा से अगर हम पीएसएल में देखें तो ऑलमोस्ट जब से ये इमर्ज किए हैं, लाहौर कलंदर इनको मुसलसल चांस दे रहा है, जो कि इब्तिदा में इनकी बैटिंग का हम सतून भी थे, और ख़ास तौर पर अब से 2 साल पहले के एडिशन में, लेकिन उसके बाद से जो उनका डाउन स्लाइड ख़ास तौर पर पाकिस्तान की टीम के साथ रिसेंट टाइम में जारी रहा है, आई थिंक ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी है और एक चैलेंज भी कि वो पीएसएल से पहले अपने आप को वार्म अप कर सकें। ओह यस फॉर श्योर, बिकॉज फखर जमान एक ऐसा टैलेंट है कि जिस फॉर्म में होंगे तो इट कुड टर्न द टेबल्स। फैजान सामना करते हुए बैकफुट पर कट खेला इन्होंने, डीप कवर पर फील्डर मौजूद, 1 रन। फैजान प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू लाहौर कलंदर ने इनको प्रमोट किया और आई थिंक क्रेडिट गोज टू लाहौर कलंदर्स, देयर मैनेजमेंट, देयर कोचेस, देयर स्टाफ की ना सिर्फ ये कि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को बुला रहे हैं, यहाँ पे खिला रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट द यंग टैलेंट, द लोकल गाइज जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं या इवन जो डोमेस्टिक नहीं भी खेले, उनको चांस मिल रहा है, आए अपना शोकेस करें टैलेंट को, एंड इफ यू आर गुड इनफ यू विल बी देयर। एक मरतबा फिर गेंद को पिक करने के बाद इसको इस मरतबा कामयाबी के साथ डिस्पैच कर दिया है, फाइनली शक्ल्स को ब्रेक करने में कामयाब फखर जमान, और इसी के साथ 50 रन मुकम्मल लाहौर कलंदर्स के। फखर जमान ने इस दफा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया विद बोथ हैंड, शॉर्ट पिच बॉल था, इसको फ्रंट फुट पर आके पुल करने की कोशिश की, देखें लेजी बॉल था और उसको लेजी एलिगेंस के साथ ऑफ द हिप्स पुल किया, बॉल गया बाउंड्री लाइन के बाहर, वे आउटसाइड द लेग स्टंप, बड़ी वाइड, और इसके साथ साथ रन एक्स्ट्रा के तौर पर मिलते हुए कुमार संगाकारा लाइफ बिगिंस एट 40 की बेहतरीन मिसाल बने हुए, गेंद पर लब के, लेकिन ऑब्वियसली वाइड और एक्स्ट्रा के रन हासिल हुए कलंदर्स। यस थोड़ा अंडर प्रेशर दिखाई दिए इस बॉल पर विल, फखर जमान पीछे हटकर रूम बनाना चाह रहे थे, उन्होंने फॉलो किया बैट्समैन को, दैट्स नॉर्मली अ गुड प्रैक्टिस, बट कुछ ज्यादा ही फॉलो करके बॉल डाउन द लग गया। अच्छी एफर्ट थी लेजेंड संगाकारा, इट्स एन ऑनर फॉर पाकिस्तान के संगाकारा दोबारा पाकिस्तानी ग्राउंड्स में आए और अपने शायकीन और अपने चाहने वालों के सामने एक बार फिर से क्रिकेट खेल रहे हैं। और एक मरतबा फिर यहाँ रन लेने के लिए जाना चाहते थे दूसरे एंड पर फखर जमान, लेकिन वापस भेजा क्योंकि रन मौजूद नहीं था। ये जितनी बातें इस मैच के साथ साथ हम करें वो मेरे ख्याल से टाइम बड़ा कम रहेगा। ये 53 साल के बाद MCC 11 की टीम का आना, और इससे पहले माइक ब्रेले का एक बड़ा यादगार टूर था जिसमें कई तरह के वाक़यात हुए, और उससे पहले पाकिस्तान को कहते हैं कि जो टेस्ट स्टेटस मिला वो MCC की टीम को शिकस्त देने के बाद कराची जिमखाना में हासिल हुआ, लेकिन उसके बाद एक बड़ा गैप रहा, और जिसमें से आखिरी के 10 साल पाकिस्तान की इससे क्रिकेट मुकम्मल तौर पर दूर थी। फुल एंड डिलीवरी, अच्छी शॉट कवर ड्राइव और उतनी जानदार फील्डिंग कवर के फील्डर की जानिब से रन लेना चाहते थे, लेकिन राइट डिसीजन, नो की कॉल की फखर जमान ने, कॉस्टली हो सकता था येट अगेन। एग्जैक्टली यहाँ पर ये खिलाड़ी जो कि ऑफ सीजन से आए हैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर वार्म अप रखते हुए क्या शानदार एफर्ट की है, लाइक अ बर्ड इन द स्काई, इस गेंद को अपनी मुकम्मल एफर्ट के साथ अपनी बॉडी को बॉल की जानिब धकेल कर एक यकीनी चौका रोका, एक डिलाइट लाहौर के इस फ्राइडे क्राउड के लिए। नेक्स्ट गेंद अगेन ड्राइव किया बट आई थिंक प्रॉपर्ली मिडल नहीं कर सके, बॉल गया पॉइंट के फील्डर के हाथ में। आई थिंक फैजान इज ट्राइंग टू हिट द बॉल बिट टू हार्ड। 52 का स्कोर है, एक खिलाड़ी आउट हो चुका है एट द एंड ऑफ 8th ओवर।
अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल सीन्स फ्रॉम लाहौर, जहां पर इस फैंटास्टिक फरवरी में, जिसमें पीएसएल ने ज़रूर आना है लेकिन उससे पहले एक बड़ा शानदार मेला सजा है। एमसीसी की टीम 3 मैचेस खेलने के लिए, इनमें से पहला मैच लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, और आई एम श्योर कि अगर एमसीसी वालों से बात होगी तो इतना फुल ऑफ हैपनिंग और इतनी सेलिब्रेशन वाला टूर उन्होंने किसी और मुल्क का नहीं किया होगा। रिसेंटली अभी नेपाल में ये टूर करके आए हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर माने रखती है क्रिकेट खेले जाना और लाहौर कलंदर्स के खिलाफ खेलना, ये क्राउड, ये परफेक्ट मौसम, ये एक्सीलेंट एटमॉस्फेयर, ये पीएसएल की आमद, ये अनबिलीवेबल बड़ा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। जी हाँ अकील, जितना भी तारीफ कीजिए इस एटमॉस्फेयर की, इस अपॉर्चुनिटी की, नॉट फॉर द एमसीसी ओनली बट फॉर लाहौर कलंदर्स, फॉर पाकिस्तान, फॉर द यंग टैलेंट, हैट्स ऑफ टू पीसीबी फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ टूर्नामेंट। और जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि हिस्ट्री में भी एमसीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है पाकिस्तान क्रिकेट के लिहाज से। और यहाँ पे बॉलिंग में चेंज का फैसला लाया गया है, वॉन्डर मोवे आए हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, और पहली बॉल को उनको फ्लिक किया टूवर्ड्स डीप मिड विकेट और एक आसान सिंगल हासिल किया। Yes, Van der Merwe, born in Johannesburg, played for Netherlands and now obviously playing for the Marylebone Cricket Club, जो कि लाहौर में मौजूद है, और एक experienced और youthful exuberance का बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना हुआ है यहाँ पर। अक्सर खिलाड़ी जो कि इनके नए हैं और उनकी एवरेज एज जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे माइकल बर्जीज, ऑलिवर हैनन, ये 24-25 साल के खिलाड़ी हैं, लेकिन दूसरी तरफ वैन डर मर्व जो कि एक वेटरन है इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट के नेदरलैंड्स के लिए। जब से ये इन्होंने सर्ज हासिल किया था खासतौर पर लेट 2000s में, वैन डर मर्व एक बड़ा एक जाना माना नाम समझे जाते हैं नेदरलैंड्स की टीम के लिए, और अब एमसीसी की नुमाइंदगी करते हुए लेफ्ट आर्म स्पिनर। और यस अगेन एक्सपीरियंस शो करते हुए, टाइट लाइन और लेंथ, कोई रूम नहीं दिया, इवन विद इन द स्टंप बॉल किया। एंड आई थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू एज अ स्पिनर, बिकॉज आपको गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में टाइट लाइन और लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपको कहीं भी रूम नहीं मिलना चाहिए। फैजान के लिए अपॉर्चुनिटी, जो कि फास्ट बॉलिंग के एक बड़े ज़बरदस्त और होनहार उभरते हुए खिलाड़ी समझे जाते हैं। इनके बाद इनकी टीम के पास आने वाले बड़ा एक्साइटिंग टैलेंट है, एंड हम उम्मीद करते हैं फॉर द सेक ऑफ लाहौर कलंदर्स एंड आवर व्यूअर्स जो है कि उनके बड़ी तादाद देखने को मिलेगी, एंड स्पेशली जाहिद अली जो कि हैदराबाद और कराची के बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली कप्तान सोहेल अख्तर। लेकिन बड़ा स्ट्रैंगल होल्ड क्रिएट कर दिया है पिछले कुछ 7-8 गेंदों से एमसीसी की टीम ने। और यस वेरी टाइट लाइन और लेंथ, 4 बॉल्स में सिर्फ 2 रन लेने में अभी तक कामयाब हुए, बैक टू बैक 2 डॉट बॉल्स की, टाइट बॉलिंग के साथ साथ अच्छी फील्डिंग भी देखने की मिल रही है एमसीसी की जानिब से। बॉल कर दिया, डच कामयाब, नेदरलैंड्स के वैन डर मर्व एमसीसी की जानिब से दूसरी कामयाबी हासिल करने में कामयाब, पहले बॉलर एमसीसी के जिन्होंने विकेट हासिल की, नौजवान फैजान आउट। बहुत ही शानदार गेंद, बॉल की लाइन को कंप्लीटली बीट हुए, कोई इस फैजान को क्लू नहीं था कि बॉल ब्रेक होगा या आर्म होगा, थ्रू द डिफेंसेस एंड इज गॉन। हार्ट ब्रेक नौजवान बैट्समैन के लिए, लेकिन आते ही किसी किस्म की विट दिए बगैर वैन डर मर्व ने इस सिचुएशन को एमसीसी के हक में मोड़ना शुरू किया, और ये प्रेशर जो कि नौजवान खिलाड़ी पे था वो उसके ज़ेर तसल्लुत आए, और फाइनली विकेट गिरी है। कोई रूम नहीं दिया कि वो किसी किस्म की शॉट खेल सकें, बड़ा कैप मौजूद था जोहेब जिससे विकेट हासिल। यस कंप्लीटली ट्रैप, और आई थिंक हम पहले 2-3 बॉल्स जिक्र कर रहे थे कि थोड़ा स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे, फीड मूवमेंट शायद उतनी अच्छी नहीं थी, कुछ प्रेशर में दिखाई दिए, और आर्म बॉल किया थ्रू द डिफेंसेस और विकेट लेने में कामयाब हुए। आई थिंक लाहौर कलंदर्स विल बी अंडर प्रेशर नाउ। यस, और इनके नौजवान खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी है, एंड विल हैव टू वेट एंड सी कि किस अंदाज से वो अपने बैटिंग ऑर्डर को अब शफल करते हैं। लेकिन अब उन्होंने एक्सपीरियंस पर रिलाई करने का फैसला किया है। हफीज़ जो कि फ्रेश हैं, अपनी बांग्लादेश के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम में एक हम कह सकते हैं कि कम बैक करने वाली परफॉर्मेंस के ज़रिए से वो दोबारा मौजूद। लेकिन बार बार जिक्र करना होगा लाहौर कलंदर्स की इस एफर्ट का, ये वो मौका है कि जैसे लाइमलाइट समेटने के लिए हो सकता था कि वो अपने मेन खिलाड़ियों को उतारते ताकि सबको प्रैक्टिस हासिल करने का मौका मिलता, वो अपने कोल्ड फीट को ख़त्म करते, वार्म अप होते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बड़ी तादाद में अपने प्लेयर्स डेवलपमेंट से आने वाले खिलाड़ियों जो कि अब डॉक्यूमेंट हो रहे हैं सारी दुनिया में, ऑब्वियसली लाइक हारिस रऊफ और दिलबर को मौका मिला जिन्होंने बिग बैश लीग में अपना डेब्यू किया है। तो गैर मामूली ये कंट्रीब्यूशन है जो कि आई एम श्योर कि कोई और फ्रेंचाइज उसके करीब भी नहीं पहुंच पाई। और यस अकील, क्रेडिट गोज टू लाहौर कलंदर्स, देयर मैनेजमेंट, देयर कोचिंग स्टाफ, एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्या है? इधर यू वांट टू विन एंड गेट द ग्लोरी, और यू वांट टू प्ले, यू वांट टू मेक द प्लेयर्स एंड प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ प्लेयर्स जो आने वाले टाइम में पाकिस्तान को अच्छे तरीके से सर्व कर सकें। मोहम्मद हफीज ने पहली गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की, बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद गया शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर की जानिब, कोई रन ना बन सका। यस, वैन डर मर्व का विकेट वाला ओवर अपने अख्ताम को पहुंचा, और इसी के साथ 1 ओवर बाकी है जिसके बाद 10 ओवर्स मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन बड़े ही एक्सीलेंट और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में मैच मुकम्मल होता हुआ
जो कि इसे हम समझ सकते हैं कि शायद 2-3 महीने पहले तक किसी दीवाने का ख्वाब समझा जा रहा था कि ऐसी टीम ख़ास तौर पर कुमार संगाकारा की क़यादत में, जो कि अब बड़ी हद तक माजी का हिस्सा बन गया, 2009 का जो इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाक़या था, वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जितने रिलैक्स एटमॉस्फेयर में वो कल आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिस बड़ी तादाद में, क्योंकि एक और एप्रीहेंशन जो भी मौजूद थी कि शायद लॉक डोर्स में बड़ी लिमिटेड विजिबिलिटी आई बॉल्स के सामने मैच खेला जाएगा, लेकिन बार बार हमारे कैमरे दिखा रहे हैं और जब हमारी नज़रें देख रही हैं तो हम खुद हैरान परेशान रह जाते हैं कि दिस इज़ अ सेलिब्रेटरी या फिर एक ये MCC का मैच है। और लुक एट द क्राउड, ऑलमोस्ट जैम पैक गद्दाफी स्टेडियम। ओह यस अकील, इट्स एन इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड। लाहौरी कलंदर्स पूरे जोश और खरोश के साथ इस वक्त स्टेडियम में मौजूद अच्छी क्रिकेट को ना सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाहौर कलंदर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बल्कि आने वाली मेहमान टीम MCC को भी फुली सपोर्ट हासिल। दोनों तरफ से स्पिनर इन एक्शन कदमों का इस्तेमाल किया है इस मरतबा फखर जमान ने, और एक मरतबा फिर 10 गेंदों की स्पेस में अपना दूसरा चौका हासिल करने में कामयाब। फाइनली अपने कदम जमाते हुए लाहौर के कलंदर्स लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खूबसूरत चौका। बहुत ही शानदार शॉट फखर जमान की जानिब से, डाउन द विकेट आया, यूज ऑफ द फीट ओवर द मिड विकेट, गैप हासिल किया, 4 रन हासिल किया। आई थिंक दिस इज द राइट स्ट्रेटजी बाय फखर जमान, बिकॉज वेल सेटल इन है, नो ओवर से क्रीज पर मौजूद, और नए आने वाले बॉलर को अच्छे तरीके से अंडर प्रेशर किया फखर जमान ने। अगली गेंद को फिर डाउन द विकेट आकर जोर से मारने की कोशिश की, पर बॉल गया सीधा लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ में। एक आसान रन, 57। यस, माइकल लीस जो कि इससे पहले दूसरे स्कॉटिश खिलाड़ी अबरदीन के सफियान शरीफ, और वहीं की बदाश माइकल लीस 29 साल ऑलराउंडर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। लेकिन पहली गेंद पर इन्होंने चार्ज किया माइकल लीस के खिलाफ, और जहां पर एक तरफ से वैन मर्व ने स्ट्रैंगल होल्ड क्रिएट किया था, दूसरी तरफ से इसको लेट ऑफ करते हुए फखर जमान, जो कि अपने मखसूस अंदाज से, जो कि इनका गेंद पर चढ़ के कदमों का इस्तेमाल करके और रिस्क लेके, जिसको कहते हैं कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव के मिसदाक जाने का तरीका, फाइनली उस तरफ आते हुए, जो कि और किसी के लिए ना सही, लाहौर कलंदर्स के लिए जो है बड़ी अच्छी खबर होगी। और यस, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू एक्सेलरेट। यहाँ पे लाहौर कलंदर्स को थोड़ा सा अपना रन रेट इंप्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज 58 हुए हैं अब तक और 9.2 ओवर्स गॉन, सो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनिंग्स गॉन हो चुकी हैं, वेल सेटल इन है, सो दिस इज द राइट टाइम टू मूव ऑन। खूबसूरत गेंद जो कि आउट करने में कामयाब हो गए मोहम्मद हफीज को, बिना कोई रन बनाए जक आउट, हफीज गॉन, माइकल लीस स्कॉटिश कामयाब। एक्सीलेंट रिप्लाई बाय द बॉलर, पहली बॉल पर बाउंड्री लगने के बाद अच्छा कमबैक किया उन्होंने, गेंद की लेंथ को रीड करने में कामयाब ना हो सके हफीज, अंदर वाली गेंद को बैकफुट पर जाकर कट खेला, बल्ले का बाहरी किनारा और अच्छा टेक संगाकारा की जानिब से, और हफीज विकेट खो बैठे। ब्रिलियंट कमबैक माइकल लीस की जानिब से, जो कि अदरवाइज एक बैटिंग ऑलराउंडर माने जाते हैं स्कॉटलैंड के, और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट से खासतौर पर ये बड़े अरसे से दूर थे। जो आखिरी इन्होंने खेली वो ICC का टूर्नामेंट, जो कि इन्होंने नीदरलैंड और नामीबिया के खिलाफ खेला, लेकिन आफ्टर गैप ऑफ 4-5 मंथ्स बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से इन्होंने क्रैकिंग स्टार्ट हासिल किया है, और इस ऑफ सीज़न में MCC टीम के पास एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी अपने आप को गेम में इन्वॉल्व रखने की, और ख़ासतौर पर इस परफेक्ट कंडीशंस में। एक और नौजवान बैट्समैन लाहौर कलंदर्स के फ़खर जमान को ज्वाइन करते हुए, जमान के दूसरी तरफ तूफान बरपा है, लेकिन फ़खर ने अपनी विकेट को नहीं जाने दिया। यस, नए आने वाले बैट्समैन जाहिद अली, ये भी यंग टैलेंट हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट कराची के लिए खेलते हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस करते दिखाई दिए, और अगेन जैसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर्स को कि वो यंग एंड इमर्जिंग प्लेयर्स को ना सिर्फ टीम में रखते हैं, बल्कि ड्यूरिंग द गेम्स अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि गो ऑन टू द बिगर स्टेज एंड परफॉर्म, इफ यू आर गुड इनफ देन यू विल बी देयर। और अगेन राइटली पॉइंटेड आउट कि माइकल ने अच्छे लाइन लेंथ से बॉल किया, ऑफ सीजन में कोई ज़्यादा खासे मैचेस खेलते दिखाई नहीं दे रहे थे, बट यहाँ पर डिसेंट लाइन अली प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। That's right, जाहिद अली एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट, बड़ा स्टेज इनके लिए, खासतौर पर PSL की शुरुआत से पहले ह्यूज कॉल है कि इनको सेलेक्ट किया गया लाहौर कलंदर्स की जानिब से, और अब इनके लिए ना सिर्फ मौका बल्कि इसके साथ साथ एक चैलेंज भी कि इस टूर्नामेंट के आगाज़ से पहले ये जो एक बड़ा स्टेज सजा है इसमें अपनी इस, हालांकि 10 ओवर अभी भी बाकी मौजूद हैं, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर अपने टैलेंट को दिखाएं और यहाँ पर वो प्रूव करने की कोशिश करें। फ़खर जमान और जाहिद अली दो एग्रेसिव बैट्समैन, और ख़ासतौर पर अल्ट्रा एग्रेसिव जाहिद मौजूद। लेट्स सी कि इस बड़े स्टेज का क्या फ़ायदा उठा पाएंगे लाहौर में। फ़खर जमान के कंधों पर लाहौर कलंदर्स का बोझ, बिकॉज वेल सेटल इन है, ऑलमोस्ट 10 ओवर्स खेल चुके हैं। इस गेंद को बैकफुट पर कट मारने की कोशिश, प्रॉपरली मिडल नहीं कर सके, बट अच्छा रन लिया, स्ट्राइक रोटेट की,
और जिस तरह के पहले जिक्र हो रहा था अकील के, अब चूंकि वेल सेटल इन हो चुके हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके हैं फ़खर जमान क्रीज पर, तो इनको चाहिए कि ना सिर्फ ये कि अब अपनी इनिंग्स को बिल्ड करें, बल्कि इस टाइम एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है लाहौर कलंदर्स को, बिकॉज दे नीड टू स्कोर एटलीस्ट अराउंड 140-150 ऑड रन, कि जो एक कॉम्पिटिटिव स्कोर हो तथा बॉलिंग में आए तो प्रेशर मेंटेन रख सकें। नौजवान जाहिद सामना करते हुए हफीज को रिप्लेस किया है, जो कि बिना कोई रन बनाए आउट हुए माइकल लीस के इस ओवर में। रिस्पेक्ट दिया बॉलर को और अपना दूसरा रन हासिल किया। आधे ओवर्स का खेल अपने इख्तिताम को पहुंचा है लाहौर में, 61 फॉर 3 कलंदर्स। अब तक की सूरत हाल, आउट होने वाले बैट्समैन सलमान बट, फैजान रियाज और मोहम्मद हफीज। सलमान बट ने अच्छी शुरुआत हासिल की, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम के वो रन आउट हुए। फ़खर ज़मान अब तक इस पर मौजूद हैं और अब गेम के दो हैंडसम एक्सपर्ट्स आपको ज्वाइन करेंगे कमेंट्री बॉक्स में, अली यूनुस और मज़हर रशीद। बहुत शुक्रिया अकील समर आपका, और एक अच्छा आगाज़ MCC की जानिब से। अभी तक केयरफुल है थोड़ा, और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में सुपर स्टैट्समैन मज़हर रशीद। मज़हर, कब आए वापस आप? जी शुक्रिया अली, 2-3 दिन पहले वापसी हुई और आते साथ ही यहाँ पे लाहौर कलंदर्स का मैच देख के एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट की कितनी शिद्दत से इंतज़ार था। जी हाँ, और क्राउड को देख के अंदाज़ा, काफ़ी बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाहौर वाले कितनी मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से, कि लाहौर कलंदर्स और MCC का मैच और जैम पैक स्टेडियम है। जी बिल्कुल, अगर अभी हम क्राउड देखें तो लग रहा है कि तकरीबन 18 से 20 हज़ार के करीब लोग ग्राउंड में मौजूद हैं। और इसके साथ सीधा खेल दिया फील्डर के हाथ में, ऊपर से खेलना चाहते थे जाहिद अली, लेकिन मैंडो वर्मा की अच्छी बॉल और जो सीधा एक्स्ट्रा कवर के हाथों में गई, और एक और विकेट लाहौर कलंदर्स की एक इंपॉर्टेंट टाइम पे। जी, और ये फेंडर मरवे बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं, 200 से ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं T20 क्रिकेट में, और आज भी ये अपने एक्सपीरियंस को दिखा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने रन्स कंटेन किए हैं, और अब ये जो विकेट लिया है कि इंपॉर्टेंट जाहिद अली की, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग फेंडर मरवे की तरफ से। आइडिया ठीक था, थोड़ा रूम देके ऊपर से मारना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीधा हाथ में चला गया बॉल, और इम्प्रेस करने में नाकाम रहे लाहौर कलंदर के सिलेक्टर्स को जाहिद अली। जाहिद अली लाहौर कलंदर्स के लिए PSL में भी खेलेंगे, T20 एक्सपीरियंस नहीं है उनका, सिर्फ एक मैच पहले खेले हैं, लेकिन बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, कराची से हैं, और होपफुली अगले हफ्ते जब PSL शुरू होगा तो यहाँ पर हमें दोबारा एक्शन में नजर आएंगे, और जो आज इन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस की है इसको अगले हफ्ते और कमिंग मंथ में जो है उसको अवेल करेंगे। जी हाँ, बात आपने जैसे कि अपॉर्चुनिटी की बात की, तो बहुत सारे प्लेयर्स के लिए, बहुत सारे और एवेन्यूज़ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि PSL खेलेंगे लड़के। फ़खर ज़मान है जैसे, कि थोड़ा सा अपने टच में आने के लिए मैच काफ़ी साजगार होगा उनके लिए। जी बिल्कुल, और अब जो नए बैट्समैन आए हैं सुहेल अख्तर, लाहौर कलंदर्स के कैप्टन भी हैं आज भी, और टूर्नामेंट में भी इनके कैप्टन होंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है लाहौर की तरफ से, और जैसा कि हमने अपॉर्चुनिटी की बात की, तो इनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि इस सीज़न में अपने आप को साबित करें, अपने टैलेंट को साबित करें। एक अच्छे बैट्समैन हैं, T20 क्रिकेट में इनकी एक सेंचुरी भी है, और लाहौर कलंदर्स के लिए इन्होंने ओपन भी किया, आज मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, तो अगर ये अच्छा खेलते हैं, और जो कि ये अपनी पावर हिटिंग के लिए जाना, इनकी जो पहचान है इनकी पावर हिटिंग है, जिस तरह पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है अपने रन रेट्स में और स्ट्राइक रेट से, तो हो सकता है कि हमें T20 वर्ल्ड कप में ये देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली, और एक और इम्तिहान जो इनका कैप्टनसी का होगा, इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, क्रिस लिन इनके अंडर खेलेंगे, मोहम्मद हफीज़ इनके अंडर होंगे, हारिस रऊफ, शाहीन शाह, तो एक उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इनको। जी बिल्कुल, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक इंटरेस्टिंग चॉइस है कि लाहौर कलंदर्स ने पहले बहुत ज़्यादा कैप्टन चेंज किए हैं, हफीज़ भी कैप्टन थे, ब्रेंडन मैकलम भी कैप्टन रह चुके हैं, अजहर अली भी, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो उनकी पिक है या जो उनकी चॉइस है वो उनको मैचेस जितवाने में कामयाब होगी। हाँ, वंडर अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, और कॉन्फिडेंट तरीके से स्टार्ट किया है सोहेल अख्तर ने अपनी बैटिंग का इस वक्त। ये फेंडर मरवे ये साउथ अफ्रीका के लिए भी T20 क्रिकेट खेल चुके हैं, और नीदरलैंड्स के लिए भी, और दो टीम्स के लिए इन्होंने वर्ल्ड कप खेले हैं। पहला रन हासिल किया सोहेल अख्तर ने अपना, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिंग होगी सोहेल अख्तर के लिए, क्योंकि कैप्टन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो बूस्ट और कॉन्फिडेंस में टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, तो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है इन दोनों प्लेयर्स के लिए, फ़खर और सोहेल अख्तर के लिए, कि थोड़े रन्स कर सकें, थोड़ा कॉन्फिडेंस उनको आ जाए इस इनिंग के बाद।
सुहेल अख्तर लाहौर कलंदर्स के लिए लास्ट सीज़न में ओपन किया था, लेकिन क्योंकि इस टीम में सलमान बट भी मौजूद हैं, फ़खर जमान भी हैं और अभी क्रिस लिन भी इनको ज्वाइन करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि शायद हमें सुहेल अख्तर इस साल मिडल ऑर्डर में या हो सकता है 5वें छठे नंबर पे जो आखिरी 5 ओवर्स की पावर हिटिंग होती है उसमें देखने में नज़र आएंगे। सीधा खेल के 1 रन हासिल किया फ़खर जमान ने। 11 ओवर्स के बाद 63 पे 4 खिलाड़ी आउट। फैंडो मर्वा अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। फ़खर जमान एक फाउंडेशन अच्छी सेट कर ली है फ़खर जमान ने, और बहुत ज़रूरी है लाहौर कलंदर्स और उनके अपने लिए कि यहाँ से ये एंड तक खेलें और अपने उसको मैक्सिमम अपने आप को मौका दें कि वो क्रीज पे रह सकें। जी दोनों ऐसे बैट्समैन हैं जो कि लंबी हिटिंग कर सकते हैं, तो लाहौर को भी काफ़ी एडवांटेज है, वो आखिरी 9 ओवर्स में 80-90 रन कर सकते हैं। जी हाँ, फाउंडेशन एक अच्छी बन चुकी है फ़खर के लिए, सिर्फ उनको क्रीज पे रुकना है और जिस तरह के वो प्लेयर हैं रन ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। जी माइकल लीस बॉलिंग कर रहे हैं, स्कॉटलैंड के ऑफ स्पिनर हैं और अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो कितना टोटल आप यहाँ से देखेंगे लाहौर कलंदर्स जिस पे खुश होंगे? आखिरी 8 ओवर है, फाउंडेशन भी है, फ़खर जमान भी हैं, सुहेल अख्तर हैं, तो कहाँ पे खुश आप देख रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स होंगे? मेरे ख्याल इस स्टेज से कम लाहौर को 150 रन का टारगेट अपने जेन में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम गद्दाफी स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। जो बांग्लादेश सीरीज़ थी उसमें ज़रा पिच डिफरेंट थी, वरना यहाँ पे जो एवरेज टोटल है रिसेंटली 2-3 सालों में वो तकरीबन 170 के करीब है, तो उसको देखते हुए आई थिंक कि लाहौर की कोशिश होगी कि कम से कम 150 रन आज किए जाएँ। कंपेरेटिव टोटल होगा ये कि बॉलिंग साइड लाहौर कलंदर्स की बहुत अच्छी है। खेल दिया है, कट किया है और एक बहुत ही अच्छी फील्डिंग सुमित पाटिल की जानिब से। अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे करंट क्रिकेट खेल रहे हैं सुमित पाटिल, उनकी फिटनेस है। अभी उन्होंने लाहौर कलंदर्स को रिप्रेजेंट करना है PSL में। जी और PSL में काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी टाइटल जीत चुके हैं और इस साल लाहौर कलंदर के लिए खेलेंगे, तो बहुत खुशाइन बात है लाहौर कलंदर के लिए कि एक PSL मैच विनर और टूर्नामेंट विनर उनकी टीम के लिए खेलेंगे। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि अभी आप अंडर-19 वर्ल्ड कप में मौजूद थे, तो फ्यूचर स्टार्स पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको वहाँ पे? ये बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के। हैदर अली एक बहुत इंप्रेसिव बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है, अभी काजम ट्रॉफी के फाइनल में भी उन्होंने सेंचुरी की थी। इसके अलावा बॉलिंग में ताहिर हुसैन है और वो आपके भाई वकार यूनुस के इलाके के ही हैं, और बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। और मेरा ख्याल है कि उसके अलावा मोहम्मद हुरैरा सियालकोट के बैट्समैन हैं, वो 1-2 मैचेस ही खेले थे लेकिन काफ़ी इंप्रेसिव उन्होंने इनिंग्स खेली थी क्वार्टर फाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ। वाइड बॉल, थोड़ा तेज़ बॉल डालना चाहते थे, उसी चक्कर में वाइड बॉल हो गया। तो काफ़ी खुशी होगी आपको ये जो नए यंगस्टर्स को देख के, आप लगता है कि पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट करेंगे आगे जाके? जी बिल्कुल अली, और मुझे इस टीम में सबसे ज़्यादा खुशी ये नज़र आई कि पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम थी अंडर-19 में प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, वरना नॉर्मली इस एज में प्लेयर्स में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे मीडिया को फेस किया, जिस तरीके से इंटरव्यूज़ दिए, जिस तरीके से क्रिकेट खेले वो, तो ये बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था। जी सीधा खेला है सुहेल अख्तर और फ़खर जमान धीरे धीरे अपने उस 150 का जो टारगेट उन्होंने सेट किया वो उसकी तरफ बढ़ते हुए। ये दोनों बैट्समैन एग्रेसिव बैट्समैन हैं, लेकिन अभी काफ़ी मुहतात अंदाज में खेल रहे हैं क्योंकि 3-4 विकेट्स लगातार गिर गई थी, और मेरा ख्याल है कि इनके जेहन में अब ये है कि इस इनिंग्स को कम से कम 15 ओवर्स तक लेके जाएं इस पार्टनरशिप को, और उसके बाद जो है फिर वो हिटिंग स्टार्ट करेंगे। जी और फ़खर जमान किसी मूड में नहीं है कि अपने विकेट को ज़ाया किया जाए, पूरी बारी लेते हुए उनका शायद यही इरादा है कि पूरे 20 ओवर वो क्रीज पे रहेंगे। 12 ओवर्स के बाद 69 for 4।
बहुत ही खुशाइंद बात है ये कि इतना बड़ा क्राउड लाहौर कलंदर्स का मैच देखने आ रहे हैं। फेंडर मरवा को जोर से मारना चाहते थे मिड विकेट की जाने पर, लेकिन अच्छा बॉल किया उन्होंने, जिसको 1 रन के लिए खेला। और ग्राउंड में किंजा मौजूद है, देखते हैं इस बार उनके साथ कौन है। With me, I have a very talented player, Haris Rauf. Haris, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हारिस, PSL वापस आ गया है पाकिस्तान में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छा है कि जिस तरह पाकिस्तान अपने जिस तरह हम लाहौर कलंदर जो सी लाहौर में होम क्राउड में खेलेगी तो एक अच्छी बात है। जिस तरह हमारा अपना क्राउड होगा, हमें सपोर्ट करेगा तो एक अच्छा फील होगा ग्राउंड के अंदर। और अभी आपको वाइब कैसी लग रही है गद्दाफी स्टेडियम की? नहीं देखिए, जिस तरह अभी हमारा ये MCC के साथ मैच है और इतना तकरीबन पूरा हाउस फुल है और लाहौर के जिस तरह आवाम इंजॉय कर रही है क्रिकेट को तो एक अच्छा है पाकिस्तान के लिए। हारिस, आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी BBL में और यू आर वन प्लेयर दैट वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन PSL, तो आप मोटिवेटेड हैं और क्या इरादा है आपका PSL के मामले में? देखिए, जिस तरह अभी मैं रिसेंटली बिग बैश खेल के आया तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस हो रही थी, तो कोशिश यही है कि जिस तरह अभी PSL में उसी परफॉर्मेंस को कंटिन्यूस रखूँ और अपनी टीम के लिए जितना बेस्ट करना चाहूँगा ज़रूर करूँगा। That's amazing. Good luck. Thank you. Thank you so much. Over to the commentary box. Thank you very much, Kinza. ये फेंडर मरवे ने सिर्फ 6 रन्स दिए हैं 15 गेंदों में और बहुत ज़बरदस्त स्पेल करेंगे, बल्कि मेरा ख्याल है कि इनका स्पेल ही MCC को इस मैच में वापस लेकर आया है। ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी थी लाहौर कलंदर की तरफ से फ़खर ज़मान और सलमान भट्ट की, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं, 2 टीम्स के लिए T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं और इस साल नीदरलैंड्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड कप खेलेंगे। ये उस टीम का हिस्सा थे नीदरलैंड्स की जिन्होंने लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीता, PNG को, पापुआ न्यू गिनी को फाइनल में हराया था और उस मैच में भी इन्होंने 2 आउट किए थे। देखिए यहाँ जोर से मारना चाहते थे सोहेल अख्तर, लेकिन सीधा 1 ही रन बन सकेगा। जी हाँ, और अगर हम देखें तो और डिफरेंट लीग्स भी, IPL भी खेलते हैं, बिग बैश भी खेल चुके हैं, PSL में भी हम होंगे नजर आए, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास। जी बिल्कुल, और ये स्टार्ट इन्होंने एज ए बॉलर किया था, लेकिन अभी ऑलराउंडर इन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया, अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं, अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ ये सेंट लूसिया में 2010 के T20 वर्ल्ड कप में खेले थे साउथ अफ्रीका के लिए। जी हाँ, और खेल दिया है बहुत ही बड़ा छक्का, पहला छक्का इस मैच का फ़खर ज़मान की जानिब से, तो जिस चीज़ का हम सबको इंतजार था, फ़खर ज़मान आहिस्ता आहिस्ता उस मोड में आते हुए। जी बिल्कुल, और फ़खर ज़मान भी मेरा ख्याल है कि काफ़ी इस इंतजार में थे कि कोई उनको लूजर मिले और वो उसको बाउंड्री के बाहर फेंकें, और ये थोड़ी सी लूज बॉल थी फेंडर मरवे की जानिब से, जिसको कि फ़खर ज़मान ने बिल्कुल बाखूबी उसको बाउंड्री से बाहर पहुंचाया। जी हाँ, आइडली पेश हुई बॉल उनके जोन में जहाँ पे उनका फेवरेट जोन है, उसको मिड विकेट की जानिब से खेला। एक बार फिर सेम मारना चाहते थे, लेकिन इस बार थोड़ी लाइन चेंज की फेंडर मरवा ने। 13 ओवर्स के बाद 79 पे 4 खिला लिया। जी हाँ, माइकल लीस का अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। सोहेल अख्तर स्क्रीन को सेट करते हुए, और हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। खेल दिया स्क्वायर लेग की जानिब से, 1 रन बनेगा। तो मज़र अरशद हमारे साथ मौजूद है। मज़र, संगाकारा को क्या क्रेडिट देंगे आप? इस एज में क्रिकेट जब आप छोड़ चुके होते हैं तो इतना आसान नहीं होता है आके इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट खेलना, तो क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू हिम। जी बिल्कुल, और रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने अपने आप को काफ़ी एक्टिव रखा है क्रिकेट में, सरे के लिए खेलते रहे हैं, और एक सीज़न में इन्होंने लगातार 3-4 सेंचुरीज भी कर दी थी और अभी भी काफ़ी फिट नज़र आ रहे हैं। एज हो गई, 4 रन होंगे फ़खर ज़मान के लिए, लकी बाउंड्री जिसे हम कहेंगे। फ़खर ज़मान का स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन पे पहुंच गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स फ़खर ज़मान और लाहौर कलंदर्स के लिए। और जिस तरह हम बात करें थे कुमार संगाकारा की, और लाहौर में खेलना बहुत पसंद करते हैं, यहाँ भी टेस्ट मैचेस में इनकी डबल सेंचुरी भी है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में इनकी इस ग्राउंड पे एवरेज 90 की है।
तो हमेशा इन्होंने इस ग्राउंड में खेलना एंजॉय किया है और बहुत खुशी हो रही है कि ये 10 साल के बाद पाकिस्तान वापस आए हैं। एक और बीच में चला गया फील्डर, 4 रन मिलेंगे फखर जमान को। बहुत ही खूबसूरत बैटिंग जारी फखर जमान के जाने से, 44 रन पे बहुत पहुंच गए हैं और एक स्टेज सेट है एक बड़े रन के लिए फखर जमान के लिए। जी, और फखर जमान भी ज़रा वार्म अप भी हो रही हैं PSL से पहले, क्योंकि लाहौर अपने सब मैचेस यहाँ पे इसी ग्राउंड में खेलेगा और फखर जमान ने काफ़ी मुहतात अंदाज में इनिंग्स खेली है। काफ़ी देर तक वेट कर रहे थे कि उनको इस तरह की लूज बॉल्स मिलें और माइकल लीस ने काफ़ी ख़राब बॉलिंग की है लास्ट 2, और जिसको कि बखूबी उन्होंने 2 बाउंड्रीज मारी हैं फखर जमान ने। जी हाँ, बहुत ज़रूरी होता है ऐसे कंपेटिटिव मैच में कि जो लूज बॉल्स आपको मिलते हैं उसमें रन ज़रूर हासिल करें। और जैसे कि स्टार्ट्स एक फायदा आपके साथ बैठने का ये भी होता है कि सारे स्टार्ट्स हमें क्लियरली मिल जाते हैं। जी, और माइकल लीस ने ये थोड़ा सा अपना लाइन को चेंज किया, पहले आउटसाइड द स्टंप बॉलिंग कर रहे थे, थोड़ी अंदर लेकर आए, विकेट टू विकेट उन्होंने बॉल करने की कोशिश की और सिर्फ सिंगल हुई। धीरे से खेलें, 1 रन बन जाएगा सोहेल अख्तर। ये अब आहिस्ता आहिस्ता अपने मोड में आते हुए, ये भी बहुत अच्छे पावर हिटर है सोहेल अख्तर, और अगर इनके आखिरी 2 से 3 ओवर में अच्छे हिट लग जाते हैं तो एक अच्छा टोटल क्रिएट करेंगे लाहौर कलंदर्स यहाँ से। जी, और मेरा ख्याल है कि इस पिच को इस टाइम माइकल लीस भी एनालाइज कर रहे होंगे, क्योंकि ऑलराउंडर हैं और अच्छी बैटिंग करते हैं और ये भी अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने चाहते हैं। एक बार फिर कट मारना चाहते थे लेकिन इस बार बॉल थोड़ा नीचे रह गया लीस की जानिब से। 14 ओवर के इख्तिताम पे 90 पे 4 खिलाड़ी आउट। आखिरी 6 ओवर का खेल यहाँ पे बाकी है। सोहेल अख्तर और फखर जमान दोनों एक स्टेज सेट है आखिरी 6 ओवर्स के लिए। लाहौर कलंदर्स चाहेंगे कि 90 से ये स्कोर कम से कम 160-170 तक पहुँच जाए। काफ़ी भारी जिम्मेदारी होगी इन दोनों प्लेयर्स पे अगर 160-70 तक लाहौर कलंदर्स ने स्कोर लेके जाना है। जी, और जैसे हमने बात की पहले भी, दोनों बैट्समैन में ये सलाहियत है कि वो आखिरी ओवर्स में पावर हिटिंग करें और इस टोटल को 150 से ऊपर लेके जाएं। आउट हो सकते थे लेकिन बाल बचे सोहेल अख्तर। डायरेक्ट थ्रो होती तो काफ़ी करीबी मामला हो सकता था लाहौर कलंदर्स के लिए, लेकिन सब अच्छा हो गया एंड पे। जी, लेकिन इससे पहले MCC की तरफ से काफ़ी अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली है। एक रन आउट भी किया उन्होंने सलमान बट को, और ये भी अगर डायरेक्ट हिट होती तो ये आउट थे। यहाँ रवि बुपारा थे फील्डर पॉइंट पे, और यही हम एक्सपेक्ट करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर से कि उनकी फील्डिंग स्टैंडर्ड ऐसा ही होगा। एक जगह नहीं 2 जगह आउट हो सकते थे। फ्रेड क्लेसन को वापस लाए हैं। 3 ओवर्स इन्होंने शुरू में किया, अब आखिरी ओवर करेंगे यहाँ पे अपने कोटा का। 21 रन दे चुके हैं अभी तक। हवा में बॉल है, फील्डर उसके नीचे हैं और एक आसान सा कैच सुमित पाटिल की जानिब से। तो फखर जमान की इनिंग का इख्तिताम हुआ 45 रन पे, एग्जैक्टली उस जगह पे जहाँ पे जरूरत थी टीम को। यहाँ से बिग हिटिंग शुरू होनी थी और वहाँ अपनी विकेट गंवा बैठे फखर जमान। जी, और खूबसूरत बॉलिंग फ्रेड क्लासन की तरफ से। बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं नीदरलैंड्स के, और इस मैच में भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और फाइनली विकेट लेने में भी कामयाब हुए। और फखर जमान, जैसा कि आपने कहा कि ये वो मोमेंट था कि जहाँ पे एक गेम चेंजिंग इनिंग्स खेल सकते थे, लेकिन 50 रन करने में नाकाम हुए और एक क्रूशियल मोमेंट के ऊपर फखर जमान ने अपनी विकेट को लूज़ किया। जी हाँ, यही काफ़ी अरसे से यही कमज़ोरी रही है फखर जमान की, सेट हो जाते हैं फिर अपनी विकेट जब टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी विकेट थ्रो अवे कर देते हैं। तो थोड़ा काम करना होगा इस पर।
जी बिल्कुल, और जैसे हमने इनको वनडे क्रिकेट में देखा है इनिंग्स बिल्ड करते हुए, पाकिस्तान के पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल्स में डबल सेंचुरी की है। उसके अलावा भी इनकी सेंचुरीज हैं, भी इंग्लैंड में इन्होंने सेंचुरी की थी वर्ल्ड कप से पहले, और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी। तो वनडे क्रिकेट में इनिंग्स को ये बिल्ड करते हैं, लेकिन वो चीज़ अभी तक हमें T20 क्रिकेट में देखने को नहीं मिली। T20 क्रिकेट में इनकी अभी तक कोई सेंचुरी नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इनको इसके ऊपर काम करना होगा कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल्स में सेंचुरीज करके दी है, इसी तरह T20 इंटरनेशनल्स में भी पाकिस्तान को वो जो है टॉप ऑर्डर के ऊपर रन्स करके दें। तमाम तर जिम्मेदारी अब सोहेल अख्तर कप्तान के कंधों पे होगी कि अपनी कप्तानी की जो चॉइस है लाहौर कलंदर्स की वो सही प्रूव करें, क्योंकि कप्तान अगर परफॉर्म करता है तो नेशनली कॉन्फिडेंस टीम के अंदर उनके अंदर आ जाता है। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि शायद ये कप्तानी ही एक वजह है कि ये काफ़ी मुहतात अंदाज में खेल रहे हैं, थोड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं, वरना नॉर्मली ये आके अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, बेशक ओपनर हों या नीचे खेल रहे हों, हमेशा इन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की शॉट देखने को नहीं मिली सोहेल अख्तर की तरफ से, क्योंकि टीम के 5 आउट हो चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि उनकी कोशिश ये होगी कि वो इनिंग्स के एंड तक जो है क्रीज के ऊपर रहें। जी, और हम जानते हैं कि लाहौर कलंदर्स को मैचेस हारना पसंद नहीं है, तो इस मैच को वो कतन आसानी से नहीं लेंगे। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि स्पेशली PSL से पहले उनके लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा अगर वो MCC की इस टीम को हराते हैं। MCC की इस टीम में बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स मौजूद हैं, कुमार संगाकारा इनके कैप्टन हैं, फेंडर मरवे हैं, सुफियान शरीफ हैं, फ्रेड क्लासन हैं, तो ये बहुत अच्छी टीम है MCC की। यहाँ फरजान राजा बैटिंग करने आए हैं, ये भी प्लेयर डेवलपमेंट का प्रोडक्ट है लाहौर कलंदर्स की जानिब से, लेग स्पिनर बैट्समैन है। संगाकारा, कैन यू बी माय वैलेंटाइन, वी कैन थिंक अबाउट इट। ये संगाकारा की जो फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, PSL में भी खेल चुके हैं, कोयटा के लिए खेल चुके हैं, कराची के लिए खेल चुके हैं, मुल्तान के लिए खेल चुके हैं, तो पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है कुमार संगाकारा को। फरजान राजा एक और प्लेयर डेवलपमेंट का प्रोडक्ट लाहौर कलंदर्स की जानिब से। लाहौर कलंदर्स की प्योर पटाखास फॉर 2020, काफ़ी कुछ लाहौर कलंदर्स के लिए काफ़ी बैनर्स। मैं काफ़ी हैरान हूँ जिस तरीके से आज यहाँ पे क्राउड आया है, और मैं सोच रहा हूँ कि जब PSL होगी तो यहाँ पे क्या माहौल होगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे 14 मैचेस हैं PSL के लाहौर में, और हमें शायद हर मैच में जो है वो इसी तरह हाउसफुल देखने को मिलेगा। थर्ड मैन पे खेल के 1 रन हासिल करेंगे फरजान। 15 ओवर्स के इख्तिताम पे 93 पे 5 खिलाड़ी आए। बड़ा क्राउड है, एक बहुत ही खुशाइन बात लाहौर के लिए कि इतना बड़ा क्राउड गद्दाफी स्टेडियम में आज मौजूद है। और इसके साथ ही आखिरी 5 ओवर्स के लिए कमेंट्री करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जोहिब अहमद एंड पाकिस्तान वुमेन्स फॉर्मर वाइस कैप्टन मरीना इकबाल। Thanks Ali, thanks a lot. Lahore Qalandars are 95 for the loss of 5 wickets at the end of 15 overs. So currently Marina, they look struggling at the moment because they do lost a couple of early wickets, then a big partnership, and then they lost a well-settled Fakhar Zaman now. Definitely, the moment they started batting, it seemed like a different pitch as we expected. A little bit on a slower side, but all credit goes to the MCC bowlers and Kumar Sangakkara, because the moment Lahore Qalandars started to dominate, they wanted to attack the bowlers, that's when the wickets started falling down. Oh yes, the clever captain Kumar Sangakkara is using his armory so well, and credit goes to the spinners as well. Again, a decent ball by Fakhar Zaman. The way he bowled his spell, I think that is something exceptional, because he gave away only 13 runs and took 2 crucial wickets. So this shows his experience, as Buzzer was mentioning that he played 2 World Cups for 2 different teams. So this is something really special. He's been brilliant for South Africa as well as Netherlands. Chipped away towards mid-on and took an easy single.
And now I think, Marina, the main aim for the Lahore Qalandars is not only to play the complete tournament, but at least to score a decent total of something around 140-45 runs, so that will be a competitive total when they come back for the bowling. I think the pitch will slow down even more in the second innings, so definitely something around 140 should be a good total. But again, they have a really good side, MCC. They've got some good youngsters and as well as hitters. This time again it will be a close score. Wow, not a good throw by the fielder, otherwise it could be a close score. And a cheeky single by the captain himself. Captain is on the crease. Lahore Qalandar appointed Sohail Akhtar the new captain for 2020 season. So it'll be a big task, not for him but for the whole management as well, because there are so many superstars in Lahore Qalandars. When you talk about Lynn, when you talk about Mohammad Hafeez, the likes of the captains who've been doing the captaincy for international teams. This time played towards mid-on, another easy single for the young guy. Yeah, I think singles won't hurt MCC. Lahore Qalandar, Sohail and Fazan needs to just accelerate a little bit, because right now things are not going, and all credit goes to MCC again, because they've been planning their bowling lineup and the areas exactly, keeping the strength and weaknesses of Lahore Qalandar batters in mind. Oh yes, Marina, they look complete compact team. They look pretty gel. They know what they are doing. They know their plans, their strategies. Their fielding has been up to the mark. And again, as we just mentioned, that they're fielding it exceptionally well, and with experience of Wonder Moway, with experience of Kumar Sangakkara, Ravi Bopara is here. So there are so many experienced players, and they're using the experience to tie the North on Lahore Qalandars. And Qalandars, I think they're really struggling now, because this is the last few overs of the game. They need to score some big boundaries now. Flicked away nicely, looking for two, but good fielding at the boundary. Just a change in field that wanted extra cover just in front of the square. At the end of the 16th over, Lahore Qalandars are 97 for the loss of 5 wickets and struggling. Gaddafi Stadium Lahore has an electrifying crowd, and this is an historic day when MCC Lord's team come to Pakistan playing against Lahore Qalandars, and they are showing some great skills. Now there's a change in the bowling. Sumit Patel gonna bowl from the pavilion end now. He's got ample experience, has been playing for leagues all over the world. And again, I think that this man, the captain, out in the middle, needs to just hit some few big sixes if they want to post a really some good competitive total on the board. Sumit started off decently, tight line, no room at all, changed the strike. So I think this is the minimum they need to do now, because the game now entered into the most crucial stage now. Last 4 overs, 24 balls, and the requirement now, at least they need to score 40 to 50 odd runs, so that will be a competitive total. Else it will be a huge struggle, as we see throughout in the batting that Qalandars are struggling right now. This time coming on the front foot, flick it towards widest mid wicket, wanted to take the second run, but again fielders are right on their toes, so easy run. That's not gonna hurt anymore. Yeah, definitely MCC will be really happy with the bowlers, especially the captain, and the fielding efforts. That has been the main strength, that they're bowling a really straight, tight line. Wow. Credit goes to the Kumar Sangakkara, as we just mentioned before, that he really used his ballers, really used his armory in such a way that he knows the behavior of the wicket inside out. He's been using the fast bowlers when the ball was new or seaming and swimming around. They use a change of pace as well, but now with the spinners. This time, again, right tight line, straight, goes towards long off, one single. That's not going to hurt to MCC at all, because
100 up for Lahore Qalandars now with a loss of 5 wickets and 3.2 overs left now. Both these two batters need to take the boundary option every now and then, because the singles will not really make any difference. They need to think out of the box, maybe improvise something and go against the plan of the bowlers, because right now MCC has dominated this innings. Rashid is on for Fakhar Raja as well, because he's a guy who is new in the crease now, played only 7 balls, scored 4 runs. Ooh, that's a close call. He missed the ball, and again, great serve behind the stumps by Kumar Sangakkara, the legend himself. Here you can see the MCC members are shaking hands with the chairman of Pakistan Cricket Board, Mr. Ehsan Mani. All credit to PCB for pulling up a huge show. Again, change of the strike. British High Commissioner was here with Mr. Ehsan Mani. Now at the end of the 17th over, Lahore Qalandars are 101 for the loss of 5 wickets. As we see, British High Commissioner is with Mr. Ehsan Mani, and a few days back he gave a statement that this will be like one of the few baby steps that England Cricket Board is taking to bring back English team to Pakistan, and rightly pointed out, because MCC is a renowned team, top players are all over the world are in this team. They are here, they are playing the game, they are playing the cricket to the full strength in front of an electrifying crowd, and on especially Marina, they are in control now. Wanted to guide it down the third man, but I think that they need to make a charge. They need to take aggression out of their box, because this is not helping. 3 overs left now, 101 right now. Now we are going to the grounds where Kinza is here to talk with the guest. मेरे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लग रहा है कि वापस आ गया है हमारा क्रिकेट, और हम क्राउड कैसा लग रहा है आपको, एनर्जी कैसी लग रही है यहाँ पे लोगों की? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से पीसीबी का काफ़ी रोल है इसमें। इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है, टेस्ट क्रिकेट वापस आई है, T20 तो काफ़ी अच्छे है। अभी PSL है, लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, यंगस्टर के लिए कि वो अपने हीरोज़ को ग्राउंड में देख सकते हैं। तो शाहीन, आपने देखा है कि अभी PSL स्टार्ट नहीं हुआ, अब बट ये ओपनिंग मैच है और अभी भी लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और बहुत पुरजोश अंदाज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। जी बिल्कुल, लाहौरी का भी क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, सारे जितने भी पिंडी, कराची, जितने भी जगह से लोग हैं वो काफ़ी क्रिकेट को, पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि हमारे मुल्क में क्रिकेट वापस हो। और आप लाहौर कलंदर से खेल रहे हो और आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो क्या है अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और हाईली मोटिवेटेड हैं आप? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इंजरी के बाद जब से मैं आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जा रही है। कोशिश करूँगा कि लाहौर कलंदर के लिए परफॉर्मेंस अच्छी दूँ, क्योंकि इधर भी मेरा है कि इंशाल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी दूँ। तो 4 विकेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आपसे PSL के मैच में? इंशाल्लाह 5 भी कर सकते हैं। ओके परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अब चलते हैं वापस कमेंट्री बॉक्स की तरफ। So Kinza was there talking to Shaheen Afridi. Again, decent bowling, trying to bowl a Yorker, but Sohail Akhtar again. I think now is the right time for Sohail and Fazan to go out of the box. They need to target, especially not on the bowlers, but to the right positions, because everything they're hitting is going straight into the hands of the fielder. That's not going to help them anymore. Yeah, they need to go to the plan B, actually. Keep rotating strike, pushing for doubles and triples, and then just taking out 1 or 2 boundary options. Just keep changing things so that the bowler can also keep guessing. Excellent bowling there by Oliver, and I think the plan is pretty clear. They don't want to give any room to any batsman. They're bowling to the right fielding,
And now Farzan must be under pressure, because now is the time. Because in the last few overs, you as a batsman, when you spend at least 13 to 14 odd balls and your captain is on the other side, you want to score as many boundaries as you can, because this is what the team is all about. This is what the requirement is. Shah down to ground, a quick single. They will look for two. Well, something's happening now. That's a tight call, because yeah, we know that they're desperate to get runs, so you need to take the charges, and we always know that luck always favors the Braves. That is the case here with Farzan Raja. He did take a charge here, tried to take the first single, direct hit misses, and then again a second run. So yeah, Brave cricket. So lots of more Brave cricket and Brave shots are required in the last couple of overs for Lahore Qalandars. He's not in the picture. Oh, had it been a good throw and onto the stumps, I think there would have been trouble for Lahore Qalandar. Oh yes, oh yes. And as you can see here, Kumar Sangakkara is still looking young. I mean, he's diving, he's grabbing the ball, and still he's managing to take the bails off. So credit goes to this legend who's still fit, who's still not young, but he is looking young and he's performing well. Once a cricketer, always a cricketer. You can't take cricket out of a person who loves to do it, and we've seen him in doing it days in, days out, performing for Sri Lanka and now representing MCC. I remember his century at Lord's 2014. That was a brilliant show of batting. Oh yes, for sure. He's one of the greats. He's one of the greats of the game who played, especially when you talk about the left-handers, their elegance, their drives, everything was there when Sangakkara was playing. So change the bowling. Sufyan came back again. Shoaib Akhtar tried to heave the ball over mid-off, couldn't manage, running quickly, it could be a close call, but no, again, the throw was not right on the mark, and quick running between the wicket, and Sohail grabbed a couple of runs here. So now in the last 11 balls, I think the aim, the target, or the planning for Lahore Qalandars should be to go to the boundaries. Yeah, I wanted to go big, but again, the lack of pace and just little ball is keeping down. He opted to go along the ground. Decent line again by Sufyan. He's trying to york, and I think this is the better strategy in the last couple of overs, maybe in the last half of the game, because you know that as a bowler that the batsman's gonna go after you. So the best way is to try to bowl in the block holes, use the variations as much as you can. And I think Kumar Sangakkara is talking to the bowlers. He has a clear mindset. He delivers his personal experience about the Pakistani players. That's where to bowl and when to bowl at what conditions. I think rather hitting just down the ground and going for singles, I think they need to improvise. Maybe a cheeky shot behind the square, or a reverse sweep, or just try to pull it behind the keeper's head. Sort of things like that. I think that's an effort ball. Sufyan tried a bit, trying to be cheeky, but cost him a single run, an extra run. That's a bit rare scene when you talk about today's innings, because I don't think they bowled too many white balls or maybe extras. So they are showing decent lines. They're showing that they are in form. They have a clear mindset. Their planning is right. But now is the time for Qalandars to show their planning and skill level. Coming down the ground, trying to heave the ball, couldn't middle it properly. As Marina, you were rightly mentioned about the behavior of the wicket. I think the wicket is a bit on the low and slow side. That's why the ball is not coming nicely on the bat. They're trying their level hard, but couldn't manage to grab a boundary here. Yeah, the ball is keeping low. All they're trying to do is just getting down the wicket and hit straight. But right now, things not working out. You need to just improvise and have a plan and look for the boundary option in the field. And I think that they need to utilize the pace of the bowler. This time, strong shot towards the cover, but again, excellent fielding by the fielder. I think credit goes to this Englishman. The way they are fielding, this is something exceptional. They are playing here, I think, for the very first time, this young lot, and the way they are judging the behavior of the ground off the grass. This is something special to watch. And again, well bowled by Sufyan, because he was again aiming the wide of the off-stump Yorkers. Nicely bowled.
trying to replicate the previous ball, but this time been too excited. Wide of the off stump, so pressure is mounting again, not only for the batsmen but the bowlers as well, Marina. Yeah, I think the bowlers need to do what they're doing right now, and they have been bowling really good areas. And the batter on the other hand, Shaheen, you can see 21 balls, 18. You need to have a plan, and there was a hard slash back, but of no use. Yeah, Marina, Shaheen is very well renowned for his power hitting and his strike rate, but now you can see after 21 balls, his strike rate is about 85 without scoring a boundary. So this is something strange to see. Maybe the extra pressure for the captaincy. Yeah, that was a shot, really middled it hard, but brilliant fielding at extra cover. Again, trying to bowl a Yorker. Sohail tried to flick it towards, couldn't manage it middle properly, but still managed to get the boundary towards the deep fine leg. A welcome boundary for Lahore Qalandars and for Sohail as well, because they are in desperate need of too many boundaries in the last 7 overs now. A rare loosener by MCC bowlers, but yeah, made most of it. They need runs no matter how they come. Yes, that's the most important part for Qalandars now. They need boundaries, as we just mentioned the previous ball that Sohail was struggling to get the boundary, but yeah, this boundary will definitely going to help not only for him but to give him the extra confidence to face maximum number of balls in the last 7 balls. This time nicely bowled again, change of pace and I think the change of length as well. That's where he bowled a decent ball, single run to Sohail after again, and that's the end of the over. MCC are right on the top. At the end of 19th over, Qalandars are 116 for the loss of 5 wickets. The way they started their innings, especially when Salman Butt was playing, they looked a bit alright, and with the run out by Rauf Wonderway, Salman Butt gone on 28, and after that Fakhar Zaman played a good knock of 45. After that, no one really chipped in. Yeah, confirmation here. They took time early on, but couldn't really capitalize on the starts. You see Faizan, Mohammad Hafeez and Jahed just going really early. But now Sohail Akhtar and Faizan are out there, and they need to capitalize this over. And I think yet again what they're doing is sticking to the plan A. They need to have a plan B. Start targeting the areas for 4s and 6s where they can achieve it. Oh, nicely ball, nicely slow one, back of the hand with the bowler, and yeah, they're trying to take the cycle, but no call by Sohail Akhtar. Again, misfield by the keeper. Oh wow, exciting stuff is going on, but I think wise decision not to rotate the strike anymore, because there might be a chance for a run out again. And there wasn't any second run there. Maybe a cheeky stunt pulled by Kumar Sangakkara. We know that he can be really naughty out there, but yet again, credit to MCC bowlers. Oliver just changing the place, a slower bouncer, taking off the guard, the batsman, and they have to go for it. They have no other option. As he was Faizan got in his pocket. Ooh. Tight call, yet called wide by the umpire. Yeah, again, nicely ball, I must say, by the bowler. The aim was right, because you don't want to give anything on the pad or anything within the stumps, because you know that the batsman might try to heave it over mid-wicket or the square leg. But yeah, end of the day, 1 run added for Lahore Qalandars. Yeah, that's what we were talking about, that the batsman was looking to play towards the on side of the field, mid-on, mid-wicket, deep square leg. He was trying to heave the ball, couldn't manage it properly. I think the credit goes to the bowlers here, because they read the pitch very well. They are using the variations nicely, and they are not giving the balls at the areas where the batsmen are expecting. I think the batter is moving further away deep in the crease. That kind of adds a little more problem when the ball is a bit slower. They can stand outside the crease and make it use of it. Wow, short pitch, slow one. Sohail Akhtar hammered it out of the park. What a great shot by the captain himself. He knows that there's no more time here to waste on singles and doubles. In the last few balls, you need to go for the all bigs.
Have a look at that. Suhail Akhtar was ready in the position and firmly pulled it away for maximum. These are the kind of shots Lahore Qalandar need to pull out of bag every now and then. Again, a Yorker attempted, but nicely middle towards the gap between mid-wicket and the long one. Wow, again, good fielding by the fielder at the boundary. Good cricket all around. I think credit goes to MCC and Suhail Akhtar as well, because he knows that this is the requirement of the time to go all big now. Yeah, it was a good ball. Again, just flicked it towards the leg side. I think it was a pretty good effort. At a moment, it seemed like that fielder might be touching the boundary, but it's a safe 2 runs. Slow Yorker again, try to heave it over long off. Oh, just short of a fielder and quick running between the wicket. That's very good stuff by Suhail Akhtar, because he knows, because this is going to be the last ball of the game. He wants to have the strike. He wants to score yet another boundary, because Qalandars are 129 and still 1 more ball to go. Deep in the crease, really trying to get that ball into the slot so that he can hit for a maximum or a boundary. But only managed to pull out 2 runs. Last ball, let's see where he goes. Suhail Akhtar, what a massive signature shot by the captain of Lahore Qalandar himself, out of the park. This is an exceptional shot by Suhail Akhtar. Look at that. That's what the doctor ordered. You wanted to finish on a high note, and that's what he did. Look at that. Look at the balance. The head is still. He uses his forearm. The power is there. The alignment is there. And the maximum result is here. I wanted to finish big, and he did it. Right in the slot, and good long levers. Well, Lahore Qalandar would be a bit satisfied with the total they posted. And I think that they have a good bowling lineup. So they need to bowl the right areas like MCC did. Oh yes, very good finish by the Lahore captain Suhail Akhtar. He showed why he's a captain. He showed that he can deliver at the pressure situations. He did took early on a couple of extra balls, but yeah, in the last couple of overs, he hammered the ball all over the ground, whether it's widest, mid-wicket or over the long on. Get the maximum number of runs, and that's what Lahore Qalandars are looking for. Look at the shot, look at the balance. He uses his wrists very nicely, and the elevation is there. So this is what the requirements are when you want to hit the ball out of the park. And I think credit goes to the MCC, the way they ball. They look really disciplined. They know what they are going to. They know their plans. They use their variations nicely. With the new ball, they swing the ball. With the older ball, they're using the variations. And then credit goes to Wonder Murway. The way he balled his 4-over spell, that is something special to watch. I think Zoeb also, not to forget to mention the fielding efforts. They've been brilliant in the inner circle and on the boundaries. They've really, you can say, gripped Lahore Qalandar, and they had some big hitters and good batters, but they really managed to pull out just 135. Oh yes, as you can see on the scoreboard, Lahore Qalandars, Salman Bhatt scored 28, Fakhar Zaman 45, then Faizan Riaz managed only 2, Hafeez got out early, Jahid 2, and then in the end Suhail Akhtar, the captain himself, 14 out, just on 28 balls and managed to score 135. MCC versus Lahore Qalandar at Lahore Qalandar Stadium, the heart of cricket. Look at the crowd, look at the scenes. It's brilliant. And again, hats off to PCB. Confirmation for the bowling card MCC. Well, they have been really brilliant. Some economical bowling. You can see the Oliver and Fred's opening up, and then Sufyan, Will, Vandermeer, Michael Lee, Sumit Patel. The column of wickets belong to the most experienced one, I think. Wander him away, took a couple of wickets, and he showed his skill and big maturity. These are the highlights from Lahore Qalandar batting. Onto the pads, Fakhar won't miss this. And again, these are the sort of lines where he likes it. Haven't given any room to really maneuver. Yes, they were looking good when you talk about the new ball, but again, as I mentioned, Salman Bhatt played a good knock, then Fakhar Zaman
he took his time early on, but then he took his chances. He scored good runs. He looked good at the time when he got out. You can see he played cut shots, he played flick shots. His signature shots were all over the ground. But yeah, he did lose the wicket at a very, very crucial stage. But in the end, Sohail Akhtar managed to score something big. 135 is not a bad total on this wicket. Let's see when MCC came back for the batting, how Lahore Qalandars plan their bowling, because they do have an experienced Usman Shanwari with them. And yeah, Dilbar Hussain, the young sensation who been to BBL, the Big Bash League, the player development program, is from that platform. So expectations are high, and we are expecting a good second innings of the game now. Yes, true. And with this wicket, it was a little slower early on. Let's check the fall of wickets. Oh, that was a brilliant run out, right on the target. And Fakhar Zaman, I'm sorry, it was Salman, but and this one had no clue at all, and the most experienced MCC bowler took the wicket. And again, Hafeez just cramped for the room, and a good catch by Kumar Sangakkara. Wanted to give a little bit of room, but straight to the hand of extra cover. Really well placed. Again, just couldn't really manage the gap, but at one or two occasions, this was it. A really far away ball, which he tried to go for it, only managed to pull it up in the air. An easy catch for Sumit Patel. Horis are out there to watch their stars and really welcome MCC out there. Again, a huge congratulations and hats off to PCB. After a break, we'll see the chase of MCC against Lahore Qalandars.
वेलकम बैक एंड गुड इवनिंग फ्रॉम गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, जहां पर एमसीसी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच की अब इस दूसरी इनिंग्स का यानी कि एमसीसी की बैटिंग इनिंग्स की शुरुआत होना बाकी है और इंतहाई पिक्चर परफेक्ट और अनबिलीवेबल सेटिंग गद्दाफी स्टेडियम की, जहां पर नियर टू कैपेसिटी क्राउड मौजूद आज इस हालांकि ऑन दी अदर साइड अगर देखा जाए तो फेस्टिवल और लो प्रोफाइल एमसीसी टूर्स वाला मैच, लेकिन आज वो शायद वो खुद हैरान है जिस अंदाज से क्राउड ने अब तक आकर इस मैच को जान बख्शी है। और अब अगर बात की जाए इस हार्डकोर क्रिकेट की तो सुहेल अख्तर कप्तान की इस एक लेट असॉल्ट और उससे पहले फ़खर जमान के एक अच्छे स्टार्ट की बदौलत और सलमान बट जो कि रन आउट हुए 135 रन तक पहुँचने में कामयाब रहे। मेरे साथ मौजूद हैं मज़हर रशीद, एक और ऐसे गैर मामूली स्टेटिस्टिशियन जो कि ऐसे ऐसे नंबर्स निकाल के ले आते हैं जो कि आपके लिए बाद में दूसरों की ज़ुबानी पहुंचते हैं, लेकिन आज एक ट्वीट है कि ख़ुद उनकी ज़ुबानी हमें सब कुछ सुन रहे हैं। वेलकम बैक मज़हर। बहुत शुक्रिया अकील। लाहौर कलंदर्स के लिए एक बहुत मुश्किल मैच होगा यहाँ से जीतना, क्योंकि थोड़ा बिलो पार टोटल है ये 135 रन। अगर हम यहाँ पे पिछले 2 सालों में देखें क्रिकेट, तो 7 मैचेस हुए हैं T20 क्रिकेट में, उसके अंदर 5 मैचेस जो हैं वो बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है, तो चेजिंग थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये टोटल आई थिंक क्योंकि 150 से नीचे है तो इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। और लाहौर कलंदर्स आज हारिस रऊफ को भी नहीं उन्होंने खिलाया और शाहीन अफरीदी को भी नहीं खिलाया, दोनों इस टाइम स्क्रीन पे मौजूद हैं। और हारिस रऊफ जिस तरह के उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए हैं, बिग बैश में भी खेले, ये लाहौर की बॉलिंग लाइनअप आप देख सकते हैं। दिलबर हुसैन भी इनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश भी खेले हैं। उस्मान शिनवारी पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुकी हैं, एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हैं। उसके अलावा अली अमजद हैं, माज खान है, अच्छा बॉलिंग अटैक है लाहौर के पास। और मोहम्मद हफीज़ भी अब उनका एक्शन जो है बॉलिंग एक्शन क्लियर हो गया है और वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में और डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे लम्स में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की लैब में मोहम्मद हफीज़ का बॉलिंग एक्शन का टेस्ट हुआ था, जो कि उन्होंने क्लियर किया एक बार दोबारा। और बहुत खुशी की बात है लाहौर कलंदर्स के लिए भी, मोहम्मद हफीज़ के लिए भी। आज भी लेफ़्ट हैंडर्स को टारगेट करने का उनको मौका मिलेगा। कुमार संगाकारा हो सकता है कि आज हमें ओपनिंग करते हुए नजर आए, वो भी लेफ़्ट हैंडर हैं और हफीज़ का अच्छा रिकॉर्ड है लेफ़्ट हैंडर्स के अगेंस्ट। तो एक अच्छा मैच मेरा ख्याल है हो सकता है अगर लाहौर कलंदर्स शुरू में अर्ली स्ट्राइक करें और जो की विकेट है कुमार संगाकारा की उसको हासिल करें। आज जिस अंदाज से आउटफील्ड में इन्होंने अपनी खास तौर पे फील्डिंग का मुजाहरा किया है, हालांकि 2 कैचेस कम से कम ऐसे थे जो कि क्लियरली लिए जाने चाहिए थे लेकिन उनसे ड्रॉप हुए। लेकिन इसके अलग अगर हम देखें खास तौर पर ग्राउंड फील्डिंग जो कि दायरे के अंदर भी थी वो बड़ी शानदार थी, जिसके ज़रिए से इन्होंने कई चौकों को पीछे जाने से रोका। और अब देखना ये कि इस पिच से जो कि इनके लिए मुकम्मल तौर पर नहीं है, स्लाइटली ऑन द स्लोअर साइड नज़र आती है, किस अंदाज से अपने आप को हमान करने में कामयाब होते हैं। यहाँ पर मौजूद जो कि आपको अकब में ये शानदार क्राउड नज़र आ रहे हैं, इसने आज बड़े वाराहाना अंदाज से क्रिकेट को एक मरतबा फिर खैर मकदम कहा है। ये लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम जो कि इस सीज़न में कि जब आपको इस पंजाब के खूबसूरत सूबे में एक तरफ कबड्डी वर्ल्ड कप और उसके साथ साथ दीगर फेस्टिविटीज़ होती नज़र आ रही हैं, इस वर्किंग डे की इवनिंग के आके मौके पर आकर 4 चांद लगाए हैं। और अब ओपनिंग बैट्समैन अपनी राह तैयार करते हुए इस ग्राउंड की जानिब MCC 11 की टीम, जिसने इससे पहले नेपाल का दौरा किया था और अब एक ज़्यादा हाई प्रोफाइल, बल्कि शायद इससे पहले MCC ने जब एज ए टुगेदर किसी टीम के तौर पर दौरा किया तो इतनी स्टैंडिंग ओवेशन उनको शायद कहीं ना मिली होगा। जी, और खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि बहुत देर के बाद MCC की टीम आई है। माइकल लीस और विल रोड्स ओपन करेंगे MCC के लिए। और अकील, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि MCC की टीम पहले भी पाकिस्तान काफ़ी बार आ चुकी है। लास्ट टाइम 1973 में आए थे और 47 साल के बाद MCC की टीम आई है, लेकिन गद्दाफी स्टेडियम में MCC की टीम पहली बार खेल रही है। इससे पहले लाहौर में बाग जिना में इन्होंने मैचेस खेले हैं, जिसको कि लॉरेंस गार्डन्स के नाम से भी लोग पहचानते हैं। और पार्टीशन से पहले 1947 से पहले भी MCC की टीम ने बाग जिना में मैचेस खेले और पार्टीशन के बाद भी खेले। और जो लास्ट इनका जो टूर था वो 1973 में था, जिसके अंदर एक मैच पेशावर में हुआ और एक मैच रावलपिंडी में। पेशावर वाला मैच वॉश आउट हो गया था, लेकिन रावलपिंडी में MCC ने पाकिस्तान की जो प्रेसिडेंट्स टीम थी उसको उन्होंने 4 विकेट से हराया। और उस मैच में जो कैप्टन थे MCC के वो माइक डेनिस थे। उसके बाद माइक डेनिस ने ICC के लिए मैच रेफरी की भी ड्यूटीज़ सरअंजाम दी। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट 11 के कैप्टन 1973 में ज़हीर अब्बास थे। तो 47 साल के बाद MCC की टीम आई है पाकिस्तान में
एक बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए भी और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान के एमसीसी ने हमेशा रोल प्ले किया है क्रिकेट को डेवलप करने में। जो डेवलपिंग नेशंस होती हैं वहाँ पर ये टूर्स करते हैं और अब ये पाकिस्तान में आए हैं ताकि यहाँ पे क्रिकेट रिवाइव हो सके। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें क्रिकेट रिवाइव होते हुए नज़र आ रही है, जिस तरीके से आज क्राउड आया है, इमरान खान इनक्लोजर बिल्कुल फुल है, फजल महमूद इनक्लोजर बिल्कुल फुल है, एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे क्राउड है। और ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि अगले महीने में हमें पाकिस्तान में, लाहौर में, मुल्तान में, रावलपिंडी में और कराची में किस तरह का क्राउड देखने को मिलेगा। ओपनर्स इस टाइम तैयार हैं और बॉलर अपने रनर पे मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त क्राउड है और इस टाइम ये भी एक नया कल्चर आया क्राउड में कि वो अपने मोबाइल की लाइट्स ऑन करते हैं और ताकि एक अच्छे मनाजिर लोगों को नज़र आएँ। और शोज़ेब रज़ा इस टाइम स्टैंडिंग अंपायर और बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है बैट्समैन उनको टीम के वो खेलने के लिए तैयार हैं। तमाम मनाज़िर स्पोर्ट्स फीवर 360 की टीम के इस ब्रॉडकास्ट के ज़रिए से अब तक पहुँचते हुए वर्ल्ड ओवर में लाहौर कलंदर्स के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए से और ऑब्वियसली पाकिस्तान भर में टेलीविजन सेट्स पर जियो सुपर पर आपकी स्क्रीन पर। एंड बिल्कुल मज़र ने जिस तरह से मेंशन किया है कि सिर्फ और सिर्फ एक निशानदेही है उस फुल फीवर ऑफ क्रिकेट की जो कि एक हफ्ते के अंदर अब आने को मौजूद है। उस्मान शिनवारी गेंद करने के लिए पेविलियन एंड से, गेंद की स्लाइटली आउटसाइड द ऑफ स्टंप और देखना ये कि इस टारगेट को किस अंदाज से डिफेंड करने के लिए जाएंगे। जिस तरह से आप बता रहे थे कि बड़ा टफ चैलेंज है लाहौर कलंदर्स के लिए। मज़ा जी, टफ चैलेंज उनका जो टोटल है 135 कुछ ख़ास टोटल नहीं है और जिस तरह एमसीसी की भी एक एक्सपीरियंस टीम है। माइकल लीस इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, स्कॉटलैंड के लिए बहुत मैचेस खेल चुके हैं, लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी खेले थे दुबई में और ऑलराउंडर हैं, पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और मेरा ख्याल है कि एमसीसी के पास सलाहियत है कि वो इस 136 रन को चेज़ कर सकें। संगाकारा इनकी बैटिंग लाइनअप पे मौजूद हैं और लाहौर में खेलना पसंद करते हैं। इस ग्राउंड पे इनकी इंटरनेशनल एवरेज 90 से ज़्यादा है। एब्सोल्युटली, जिस तरह से आपको याद कराते चलें कि ये जो सब बातें आप तक पहुँच रही हैं डायरेक्ट मज़हर की ज़ुबानी है, जो कि इससे पहले आपको मारूफ दुनिया के कमेंटेटर की ज़ुबानी पहुँचती रही हैं जो कि बैक एंड पे मौजूद होते हैं, लेकिन आज आपके पर्दा सीमी पर खुद उभर के आ गए हैं और ये PSL में भी इंशाल्लाह आप तक तमाम तो कुछ पहुंचाते रहेंगे। तो ये जो तमाम ख़ासतौर पर कुमार संगाकारा ने तो मैं करियर के इब्तिदा में यहाँ बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेल डाली थी और उसके बाद फिर ऑब्वियसली 2009 में भी आए, लेकिन उसके बाद एक बड़े गैप के बाद आए हैं। लेकिन अब ना सिर्फ ये कि वो फर्स्ट नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट हैं MCC के, बल्कि MCC की टीम के कैप्टन भी हैं और सबसे रिमार्केबल बात कि अभी भी किसी नौजवान खिलाड़ी से ज़्यादा फिट नज़र आते हैं। ऑफ द मार्क हुए हैं और विल रोड्स दूसरे रन के लिए भी वापस आएंगे। तेज रनिंग की है और एंड टाइम में पहुंचने में कामयाब। जाहिद अली विकेट कीपर तक जब तक थ्रो पहुंचती इस रन को मुकम्मल किया तो अंडरस्टैंडिंग का मुजाहरा राइट अवे किया। दूसरा रन मुश्किल नज़र आता था लेकिन इसको मुकम्मल किया। जी, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा फरजान राजा की तरफ से और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुहेल अख्तर इस टीम के कैप्टन हैं, लेकिन उस्मान शिनवारी को जो मशवरे अभी तक 2 बॉलों के ऊपर 2 मशवरे जो मिल चुके हैं वो मोहम्मद हफीज़ की तरफ से मिले हैं। मोहम्मद हफीज़ भी ऑब्वियसली बड़ा एक्सपीरियंस है उनका T20 क्रिकेट में और प्रोफेसर के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि उनका एक बड़ा अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है और ही लव्स टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। उस्मान शिनवारी को अपने आप को रिडीम करने का मौका मिल रहा है क्योंकि दूसरी तरफ जो इनका फर्स्ट चॉइस अटैक होगा मज़र जब ये अपने पहले गेम के लिए उतरेगी कराची में तो ऑब्वियसली वो डिपेंड शायद ज़्यादा करे होंगे हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी पे, जो कि एक वहाँ पर झंडे गाड़ कर पहुँचे हैं बिग बैश लीग में और दूसरे ने टेस्ट मैच में बड़ी ज़बरदस्त और एक्यूरेट बॉलिंग की है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन इनको मिली है, हालांकि एक बड़ी टाइट रोप है वॉक करने को क्योंकि इनको विकेट्स भी हासिल करनी है, इस टोटल को डिफेंड भी करना है, लेकिन देखना होगा कि इस चैलेंज का वो किस अंदाज से अब तक मुकाबला करते हैं। जी बिल्कुल, और ये सीज़न दोनों बॉलर्स के लिए, हारिस रऊफ के लिए बिग बैश में अच्छा रहा, 5 आउट भी किए, हैट्रिक भी की, उनका इंटरनेशनल डेब्यू भी हुआ और शाहीन अफरीदी ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की इस सीज़न में। रोड्स जो कि बड़ी फ्रीली रन स्कोर करते नज़र आ रहे हैं और अब माइकल लीस को सामने आने का मौका मिलेगा। नॉटिंघम के विल रोड्स और स्कॉटिश माइकल लीस की जोड़ी MCC के लिए नुमाइंदगी करती हुई। अकील, ये ग्राउंड उस्मान शिनवारी के लिए बहुत एक खुशकिस्मत ग्राउंड है। अगर आपको याद हो 2013 में यहाँ पे डिपार्टमेंट T20 का फाइनल हुआ था सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड का और ZTBL का। उस्मान शिनवारी ने ZTBL के लिए खेलते हुए उस मैच में फ़ाइनल में 5 आउट किए थे और उस मैच के तकरीबन 1 महीने के बाद ही इनको पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिला था श्रीलंका के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ में।
उसके बाद 3-4 साल के लिए बाहर रहे और उसके बाद वापस इनका कमबैक हुआ 2017 में, और उसमें भी इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ शारजाह में एक बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, एक मैच में 5 आउट किए, और साउथ अफ्रीका में इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी विकेट्स ले चुके हैं इन द रीसेंट पास्ट। बिल्कुल 24 साल उस्मान शनवारी अपने करियर के अभी भी हम समझ सकते हैं कि इब्तदाई हाफ है, लेकिन उसमें ऑलरेडी बंदे जजर से गुजर चुके हैं। इस दौरान पहला ओवर मुकम्मल हुआ, अब तक बगैर किसी बाउंड्री के MCC 4 बिना किसी नुकसान। और नौजवान मास खान कमेंट्री बॉक्स एंड या फिर अब से 3 साल पहले जो नया मीडिया सेंटर ओपन किया गया, इस एंड से गेम खेलने तैयार नज़र आते हैं। परफेक्ट कंडीशंस गेम ऑफ क्रिकेट के लिए, हालांकि अभी भी सर्दी है, लेकिन जाती हुई विंटर्स के दिन जिंदा दिलों के शहर लाहौर में निस्बतन शॉर्ट गेंद, लेकिन इसको बैकफुट पे जाकर खेलना चाहते थे। मुकम्मल तौर पर इस तेज़ गेंद पर बीच हुए माइकल लीस। अकील, ये T20 क्रिकेट की और फ्रेंचाइज क्रिकेट की ये खूबसूरती है कि दोनों जो बॉलर हैं उस्मान शनवारी और मास खान, ये इनका ताल्लुक खैबर एजेंसी से है, लेकिन ये लाहौर में लाहौर के लिए खेल रहे हैं। माइकल लीस ऑफ द बैकफुट इस गेंद को अपने पहला चौका हासिल करने के लिए कामयाब। पहली बाउंड्री मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की टीम के लिए। जी, बहुत खूबसूरत शॉट माइकल लीस का। थोड़ी सी लूज बॉल थी जिसको कि लाइन को अर्ली पिक किया माइकल लीस ने, और गैप के दरमियान उन्होंने ये बाउंड्री हासिल की। मास खान भी लाहौर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए हैं, और जिस तरह की हमने पहले भी बात की कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि लाहौर के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके थ्रू आ रहे हैं। एक मरतबा फिर ये गेंद बाहर, लेकिन इसको सिर्फ फील्डर की जानिब सीधा खेल पाए। आप तो तमाम नंबर्स पे फुल अबूर रखते हैं, लेकिन शायद ये बात इस वक्त तयन करना मुश्किल होगा। जो सबसे ज़्यादा इस तरह के खिलाड़ी हैं, चूँकि नंबर से ज़्यादा ये बात आपकी अपनी जजमेंटल तमाम ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है। ये इनकी टीम से ही आए हैं। इस दौरान निकालना चाहते थे कमर सीधा ने, थिक सॉलिड आउटसाइड एज, और एक और चौके के लिए माइकल लीस को इस मरतबा फॉर्च्यून भी फेवर करते हुए दूसरा चौका इस ओवर। जी, और ये थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि जैसा कि आपने भी कहा, थोड़ा किस्मत ने भी बैट्समैन का साथ दिया और उनको 4 रन्स मिले। दिलबर हुसैन ने अभी ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश डेब्यू किया। अच्छा डेब्यू नहीं हुआ, सिर्फ एक मैच खेले T20 में, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ है कि लाहौर के डेवलपमेंट प्रोग्राम से एक प्लेयर निकल के ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल रहा है। इससे पहले हारिस रऊफ थे। हमने PSL में देखा कि बहुत से प्लेयर्स को, इमर्जिंग प्लेयर्स को मौका मिला है अपना टैलेंट दिखाने का, लेकिन अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें तो मेरा ख्याल है कि लाहौर ने जितने प्लेयर्स दिए हैं वो शायद किसी और टीम ने नहीं दिए। That's right, सीधा इस मरतबा फील्डर की जानिब खेले माइकल, और सुख का सांस लेंगे। नमाज के कम से कम स्ट्राइक से दूर हुए हैं। एब्सोल्युटली जिस अंदाज से पैदर पे इन्होंने खिलाड़ी प्रोड्यूस किए, उस मंजर आम पर लेकर आए हैं। हारिस रऊफ उसकी एक बड़ी इस वक्त रोशन मिसाल हैं, और इवन फ़खर ज़मान को जब से इन्होंने मौका दिया है, वो पक्के कलंदर्स के हैं, लेकिन अब उनको थोड़ा अपने गेम को अप करना पड़ेगा, क्योंकि स्लाइटली वो आउट ऑफ द फॉर्म है पिछले चंद औकात से। और इनकी टीम ने किस अंदाज से परफॉर्म करना है, अब ये $1 बिलियन क्वेश्चन है, जिसका अब से कुछ 1 महीने और 1 हफ्ते के बाद यहाँ जो टीम फाइनल खेल रही होगी मज़र, वो बताएगा कि कौन इस मरतबा ताज अपने सर पे लेके जाता है। जी, और इस बार लाहौर को होम एडवांटेज होगा, उनके 8 के 8 मैचेस यहाँ पर हैं, तो होपफुली इस बार हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और इस मरतबा नौजवान मास के लिए ज़िंदगी का एक यादगार लम्हा, विल रोड्स की विकेट हासिल करने में कामयाब। MCC को पहला नुकसान, नौजवान मास कामयाब। जी, बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग और अच्छा कमबैक की है। 2 चौके कंसीड करने के बाद विल रोड्स की विकेट हासिल की है, और लाहौर कलंदर्स के लिए पहली कामयाबी। और रन रेट भी अभी तक उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है लाहौर कलंदर्स ने, सिर्फ 13 रन है 2 ओवर्स के बाद। और जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पे फील्डर सुहेल अख्तर मौजूद है, कैप्टन, और उन्होंने भी एक अच्छा कैच लिया।
सीधा फील्ड की जानिब खेल डाला और किसी किस्म की गलती नहीं की वहाँ पर मौजूद कप्तान ने। तो यूँ इस मेमोरेबल विकेट के ज़रिए से पहली कामयाबी हासिल की है एमसीसी की टीम के खिलाफ, जो कि यकीनी तौर पर माने रखेगी। और अब कुमार संगकारा जो कि रन्स के अंबार लगा के रन मशीन के तौर पर श्रीलंका के साबिक कप्तान, करंट फर्स्ट नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ द एमसीसी की टीम के कप्तान। लगभग 28,000 रन्स और सेंचुरीज का अंबार इस वक्त आपके सामने मौजूद है, माइकल लीस के साथ मौजूद। और बहुत एक्साइटिंग होगा यहाँ पे। कुमार संगकारा 11 साल के बाद लाहौर में खेल रहे हैं, इस ग्राउंड में खेलना पसंद करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी यहाँ पे 8 इनिंग्स में 90 की एवरेज है। 2002 में यहाँ पे एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का मैच हुआ था श्रीलंका का और पाकिस्तान का, जिसमें कि उन्होंने डबल सेंचुरी की थी। उसके अलावा वनडे क्रिकेट में भी यहाँ पे वो सेंचुरीज कर चुके हैं और 11 साल के बाद यहाँ पे खेलेंगे। क्रिकेट से थोड़ी देर से आउट हैं। 2018 में लास्ट उन्होंने अपना प्रोफेशनल मैच खेला था जो कि मुल्तान सुल्तान्स के लिए था और अब 2 साल के बाद वो दोबारा क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने कीपिंग की है, लग रहा है कि वो अभी भी फिट हैं और रन्स डिलीवर कर सकते हैं। दैट्स राइट। अपने करियर के ट्वाइलाइट में उन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में लगातार सेंचुरी स्कोर की और जिस तरह से मज़हर ने पहले भी बताया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कहने के बाद भी सेंचुरीज लगाते रहे। शनिवारी दूसरी तरफ जो कि अपने रिदम को हासिल करना चाहते हैं, इस मरतबा अपने ओवर का आगाज़ नहीं कर पाए। सामने इनके मौजूद हैं विल रोड्स, नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद नन अदर देन कुमार संगकारा हिमसेल्फ द कैप्टन ऑफ एमसीसी। अकील, जैसे आपने कहा कि क्रिकेट छोड़ने के बाद भी वो रन्स करते रहे हैं। 2015 में इनकी रिटायरमेंट हुई थी टेस्ट क्रिकेट से, लेकिन 2017 में इन्होंने तकरीबन 1500 रन्स किए थे सरे काउंटी के लिए। काउंटी चैंपियनशिप में 8 सेंचुरीज की थी उस सीजन में और 4 सेंचुरीज इन्होंने लगातार 4 इनिंग्स में की थी। माइकल लीस ने इस गेंद को हवा में खेल दिया, आउट होने का खतरा और उस्मान शनवारी विकेट हासिल करने में कामयाब। जाहिद अली ने इन दी एंड बेहतरीन अंदाज से जज करके स्कॉटिश माइकल लीस की विकेट हासिल की। 3 गेंदों के मैटर में दूसरा नुकसान एमसीसी की टीम को। लाहौर कलंदर्स बैक इन एक्शन इन लाहौर। जी, बहुत खूबसूरत बॉलिंग उस्मान शनवारी की तरफ से और उससे ज़्यादा खूबसूरत जो है ये कैच था। और ये एक बहुत एक खुश आइन बात है कि लाहौर कलंदर्स के लिए एक विकेट कीपर बैट्समैन जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स को काफ़ी मुश्किलात हुई हैं अपनी विकेट कीपिंग के हवाले से। तो जिस तरीके से ये कैच ली है और जो इनकी बैटिंग के बारे में हमने सुना है, तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले 1 महीने में हम जाहिद अली को देखेंगे कि वो लाहौर कलंदर के विकेट कीपर बैट्समैन एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेलेंगे। That's right, huge moment in this game. 2 खिलाड़ी, दोनों ओपनर्स इस वक्त डगआउट में वापस जा चुके हैं और नए सिरे से इनिंग्स को रीसेलेक्ट करना पड़ेगा। आउट ऑफ टच, लेकिन माइस्ट्रो कुमार संगकारा को, रन मशीन फ्रॉम श्रीलंका, प्रेसिडेंट ऑफ द मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब, और दूसरी तरफ पॉसिबली इनके साथ मौजूद हैं रवि बोपारा, अनदर वेटरन ऑफ द गेम, ग्लॉब ट्रॉटर, जो कि सारी दुनिया की हर तरह की फ्रेंचाइज में ख़ास तौर पर मज़र शादीन कंडीशंस को बड़े अच्छे अंदाज से जानते हैं। जी, और पीएसएल में बहुत एक इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही एक ऐसी शख्सियत है जिसको कि कराची के लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको याद हो, जो पहला पीएसएल हुआ था 2016 में, उसमें उन्होंने एक मैच में 50 रन भी किए थे और 6 आउट भी किए थे लाहौर कलंदर्स के खिलाफ। उस वक्त से लेके अब तक इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है पीएसएल में बहुत ज़बरदस्त है। That's right and very well put मज़र। माइकल के जाने के बाद कुमार संगकारा पहली गेंद पर दम खुद। उस्मान शनवारी की ये गेंद बहुत ज़्यादा नीचे रही है जिस पे उस्मान खुद और उनसे ज़्यादा कुमार संगकारा दम बखुद नज़र आते हैं, लेकिन इस लो बाउंस ने किसी किस्म का नुकसान नहीं किया। और अब तक वो अपने साथी खिलाड़ी से बात करते हुए रवि बोपारा को बताते हुए इस स्लो एंड लो नेचर ऑफ द सरफेस का मज़ा। जी, और इस गेंद ने दोनों को सरप्राइज़ किया है, बॉलर को भी और बैट्समैन को भी। लेकिन संगकारा का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मेरा ख्याल है कि वो कंडीशंस को इजीली रीड कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की बॉलिंग का उनको सामना करना पड़ सकता है। कुमार संगकारा आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2012 के श्रीलंका की टीम के साबिक कप्तान, रन मशीन फ्रॉम द आइलैंड, सामना करते हुए उस्मान शनवारी का जिन्होंने पहली विकेट हासिल की है मेमोरेबल सीन्स गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। अच्छा कमबैक किया उस्मान शनवारी ने इब्तिदा में रन्स को लीक करने के बाद पहले ओवर में, इस ओवर की इब्तिदा में विकेट हासिल की और अब राइट ऑन टारगेट नजर आते हैं उस्मान मज़र। जी, और अगर हम संगकारा के मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा था, 8 इंटरनेशनल इनिंग्स खेली हैं उन्होंने इस ग्राउंड पे गद्दाफी स्टेडियम में। 636 उनके रन्स हैं,
और 90.85 की उनकी एवरेज है। 230 रन किए थे पाकिस्तान के खिलाफ 2002 में इस ग्राउंड में, और जो उनका यहाँ पे आखिरी टेस्ट मैच था 2009 में, उस मैच में भी इन्होंने 104 रन किए थे। बहुत ही एक मशहूर क्रिकेटर हैं पूरी दुनिया में भी, एशिया में भी। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2012, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2012 एंड ऑल्सो आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2012। और इस दौरान ऑफ द मार्क भी हो गए हैं रन मशीन को संगाकारा। मेमोरेबल सीन्स ना सिर्फ एमसीसी लाहौर कलंदर्स और पाकिस्तान के जनरली नुक्ता नज़र से, बल्कि क्रिकेट के लिए भी, ये क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि मुकम्मल तौर पर एक्शन से दूर थे, लेकिन डिलाइट है ये तमाम क्रिकेट के फैंस के लिए इन द वर्ल्ड ओवर लाहौर कलंदर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मरतबा फिर इस पिछले 20 साल के दौरान मुकम्मल तौर पर रन्स के लिहाज से राज करने वाला बैट्समैन आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नज़र आते हुए। ये किल जैसे मैं बात कर रहा था इनके रिकॉर्ड की गद्दाफी स्टेडियम में, ये इनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड है जो इन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इनकी और 3 सेंचुरीज़ हैं, हाईएस्ट ऑफ 230। पूरी दुनिया में इन्होंने रन्स किए हैं। लॉर्ड्स में इनकी सेंचुरी है, टेस्ट में भी, वनडेज़ में भी, जिस तरह आपने जिक्र किया 2015 के वर्ल्ड कप में ये दुनिया के वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 लगातार सेंचुरीज़ की हैं। तो ये एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके रिकॉर्ड्स जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। एब्सोल्युटली, वेरी वेल पुट मज़हर। और मेरे ख्याल से कुमार संगाकारा को डिफ़ाइन करने के लिए आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता था जिस अंदाज से आप अहाता कर रहे हैं। हम कभी इधर की बिट बताएंगे, कभी उधर की बताएंगे, लेकिन जितनी हद तक आप अहाता कर सकते हैं आई थिंक दैट इज़ वेरी फिटिंग। और ख़ास तौर पर यह बात भी बड़ी ख़ास तौर पर एशियन खिलाड़ियों के लिए कुछ हैरानी का बायस है कि जो आम तौर पर अपने इस रिटायरमेंट के फैसले को रद्दोबदल के साथ गुजारते रहते हैं, लेकिन ये अपने करियर के इंतहाई अरूज पर इस क्रिकेट को छोड़ के गए थे उस 2015 के दौर। जी, ये किल जैसे मैंने बात की कि जो इनका आखिरी सीज़न था सरे के लिए 2017 में, उसमें इन्होंने 8 सेंचुरीज़ की थी। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि 2015 में इन्होंने टेस्ट रिटायरमेंट ली और उसके बाद 2 साल के बाद तक भी ये 4 डे क्रिकेट में इतने रन्स करते रहे हैं। तो ये कितने फिट थे और इन्होंने अपने पीक के ऊपर जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली। रवि बोपारा दूसरी तरफ ऑफ द मार्क हुए हैं, दूसरा रन लेने के लिए भी वापस मुड़ेंगे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन दोनों वेटरन्स के दरमियान। तीसरे ओवर का खेल मुकम्मल हुआ जिसमें विकेट हासिल की उस्मान शनवारी ने, लेकिन लाहौर कलंदर्स कुछ दबाव डालते हुए एमसीसी के खिलाफ 16 पे 2। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का ये इंतहाई खूबसूरत और ऐसा यादगार सेटअप जो कि प्रील्यूड बनेगा इस आने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न के लिए, जहां पर एमसीसी की टीम जिसका टूर दीवाने का ख्वाब नज़र आता था अब से कुछ महीने पहले तक, लेकिन वो अब मुकम्मल होता हुआ लाहौर के ज़बरदस्त क्राउड के सामने। पहली दोनों विकेट्स हासिल हो चुकी हैं। विल रोड्स जो कि कैप्टन डेजिग्नेट हैं अपनी वॉरिकशायर की टीम के लिए, उनको जल्द आउट किया। विकेट हासिल की नौजवान माज ने अपने इस मैच के पहले ओवर के आखिर में, और उस्मान शनवारी ने माइकल लीस को डगआउट में वापस बचाया है। गद्दाफी स्टेडियम इस हल्के से जाती हुई विंटर्स के मौसम में इस मैच की मेज़बानी करता हुआ दोनों प्लेयर्स के पास एक विकेट, और ये बात बिल्कुल यहाँ है कि कंटिन्यू करेंगे नौजवान माज। नौजवान के लिए यादगार लम्हा, कुमार संगाकारा को बॉलिंग करते हुए एंगल बना के कुमार को गेंद छोड़ती हुई गई, कोशिश की थी खेलने की मगर सूद। ये थोड़ा लो बाउंस है इस विकेट में, इस बॉल पे भी डिसीव हुई हैं कुमार संगाकारा क्योंकि ज़्यादा बाउंस नहीं लिया बॉल ने। बड़ा एक्सपीरियंस मौजूद है ना सिर्फ कुमार संगाकारा बल्कि इनके दूसरे एंड पे मौजूद रवि बोपारा के पास भी, खासतौर पर ऐसी कंडीशंस का बांग्लादेश की हमारे पड़ोसी मुल्क की जहाँ पर गेंद नीचे रहती है। जी, ये कुमार संगाकारा का रिकॉर्ड गद्दाफी स्टेडियम में, और पाकिस्तान के खिलाफ खेलना बहुत पसंद करते हैं। तकरीबन 3000 इनके रन्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में, 10 सेंचुरीज हैं। ऑफ द बैकफुट कुमार संगाकारा ने इस गेंद को इंतहाई कामयाबी के साथ निकाल दिया है बाउंड्री के जानिब। रन मशीन फ्रॉम श्रीलंका का पहला चौका लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, एक्सीलेंट शॉट बाउंड्री। और जैसे कि हमने बात की थी कि जो इनका एक्सपीरियंस है इनको पिच को रीड करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, और वही हुआ कि वो थोड़े से लो बाउंस को उन्होंने जज किया है और इस गेंद को इजीली उन्होंने पुल किया 4 रन्स के लिए। विकेट एरिया मौजूद था, नौजवान ने फील्ड के हिसाब से बॉलिंग नहीं की, सोहेल अख्तर को एक्शन में आना पड़ेगा। कुमार संगाकारा जिससे एशियन टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है उसमें तने तनहा इन्होंने एक इनिंग्स में पाकिस्तान की इनिंग्स के तकरीबन बराबर रन्स ला दिए थे और अपनी टीम की फतह में बुनियादी किरदार अदा किया था। एक बड़ा शानदार दौर था श्रीलंका की टीम का।
इनके और इनके क्लोज फ्रेंड महिला जयवर्धने की मौजूदगी की सूरत में, और उसके बाद से ऑन एंड ऑफ मुसलसल स्ट्रगल करती नज़र आई है, लेकिन क्रिकेट के लिए जनरली एक बहुत बड़ा गिफ्ट बन के मिले हैं। वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट कुमार संगकारा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद। जी 2019 में इनको MCC का प्रेसिडेंट बनाया गया और सितंबर 2020 तक ये कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा MCC की जो वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी है उसके भी मेंबर हैं और यंगेस्ट प्लेयर थे जिन्होंने MCC का एक बहुत फेमस लेक्चर दिया था 2011 में। एक और ओवर जिसमें चौका कंसीड किया, लेकिन ओवरऑल खामोशी के साथ गुजरा। ओवर के अलावा अब तक अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवर का खेल मुकम्मल, 21 दो खिलाड़ियों के नुकसान पर। जी ये स्कोर कार्ड है 1951 में जब MCC की टीम आई थी और उन्होंने कराची जिमखाना में ये मैच खेला था और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने 288 रन का टारगेट चेज़ किया था। अब्दुल्ला हफीज़ कारदार जो कि पाकिस्तान के पहले टेस्ट कैप्टन थे, उन्होंने इस मैच में 50 रन किए थे। हनीफ मोहम्मद ने 64 रन किए थे और ये वो मैच था कराची जिमखाना में जिसको जीतने के बाद पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस मिला था। और ये एक MCC की ऐसी टीम थी जिसके अंदर ब्रायन स्टेथम जैसे प्लेयर्स मौजूद थे, तो उस टीम को हराना तब पाकिस्तान ने पहली बार दुनिया को दिखाया था कि वो वर्ल्ड क्रिकेट में भी खेल सकते हैं। और ये एक हिस्टोरिक वेन्यू है कराची जिमखाना जहाँ पे कि जावेद मियांदाद का भी फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ था। आप देख सकते हैं कि टॉम ग्रेविनी भी उस टीम का हिस्सा थे और हनीफ मोहम्मद ने और अब्दुल हफीज़ कारदार ने सेंचुरीज की थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान बॉलिंग के लिए जाना जाता है तो फजल महमूद और हान मोहम्मद दोनों ने 5 आउट किए थे इस मैच में। इस दौरान बॉलिंग में तब्दीली हुई है और जोरदार अपील, लेकिन अंपायर को मुतासिर करने में कामयाब नहीं हो सके। पॉसिबली लेग स्टंप के बाहर इस गेंद ने पिच किया था। एक और प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा अली माजिद जो कि अपने इस ख्वाब के बहुत करीब थे, पहले ही ओवर क्या पहली गेंद पर विकेट हासिल करने के, लेकिन खासे करीब लेकिन फिर भी बहुत दूर। आई थिंक ये डिसीजन फेयर नज़र आता है अंपायर का, क्योंकि अब एक्शन रिप्ले अगर पॉसिबल हुआ तो देखेंगे कि गेंद शायद लेग स्टंप के बाहर पिच कर रही थी। अली माजिद कंटिन्यू करते हुए टॉकिंग अबाउट दोज मेमोरीज, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तमाम तर याददाश्तें हैं पाकिस्तान के लिए और कितना फिटिंगली ये रिलेट करता है कि उस वक्त ऑब्वियसली पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस हासिल हुआ था। ये रिप्ले मज़र आपके क्या सेंस है इस पर? मेरा ख्याल है कि ये आप कह सकते हैं कि अंपायर्स कॉल है। शोज़र बज़ा एक एक्सपीरियंस्ड अंपायर हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि अली माजिद क्यों जो है वो इतना फ्रस्ट्रेट थे, क्योंकि कुमार संगकारा की विकेट उनको मिल सकती थी। वो दुनिया को बता सकते थे कि मैंने जब MCC की टीम पाकिस्तान आई थी तो मैंने पहली बॉल के ऊपर कुमार संगकारा को आउट किया था। इस तरह के सेंटिमेंट्स होते हैं प्लेयर्स के साथ। यंग प्लेयर हैं, इमर्जिंग प्लेयर हैं, जैसा कि आपने कहा कि डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए हैं, तो इनको मज़ीद इस तरह के मौके मिलेंगे। राइट, दूसरी तरफ कुमार संगकारा मौजूद थे जिनका अली माजिद और लाहौर कलंदर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता विकेट का हासिल होना, लेकिन इस वक्त ये पॉसिबल यकीनन इस क्राउड के लिए कोई अच्छी सूरत में नहीं आता कि अगर ये विकेट कुमार संगकारा जैसे बैट्समैन की हासिल होती। बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला इन दोनों के दरमियान जारी है। कुमार संगकारा जो कि अपनी अच्छी शुरुआत हासिल कर चुके हैं, तो मैं कह रहा था कि वो जब पाकिस्तान ने टेस्ट स्टेटस हासिल किया और अब जब मुकम्मल तौर पर ये क्रिकेट एक्शन के साथ वापस आई है, इस वक्त MCC का रोल बड़ा काबिल तहसीन इस तमाम एफर्ट। जी बिल्कुल, और जैसा कि हमने ये बताया था कि MCC की टीम की ये पहचान है कि वो यहाँ तो डेवलपिंग नेशंस में जाती है, यहाँ उन जगहों पर जाती है जहाँ पे कि क्रिकेट को रिवाइव करना हो। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है कि MCC की टीम 47 साल के बाद पाकिस्तान में आई है और गद्दाफी स्टेडियम में अपना पहला मैच खेल रही है। शॉर्ट गेंद, लेकिन एक मरतबा फिर एक्सपेक्टेड बाउंस हासिल नहीं कर सके कुमार संगकारा की लाइकिंग के अगेंस्ट। और बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, एक तरफ कुमार संगकारा जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर रवि बोपारा और दूसरी तरफ कई ऐसे नौजवान खिलाड़ी इसमें मौजूद हैं लाइक सुफियान और विल रोड्स जो कि अपनी जगह को मुस्तहकम कर रहे हैं काउंटी क्रिकेट में। तो बड़ा ये ऑब्जर्वेशन के साथ टीम को बनाया जाता हुआ नजर आता है। अच्छा ओवर अली माजिद का मुकम्मल हुआ और इस दौरान अपील रन आउट की, लेकिन अंपायर राशिद रियाज को मुतासिर करने में कामयाब नहीं हो सके। 5 ओवर्स का खेल अपने अख्तिताम को पहुंचा। MCC 24 दो खिलाड़ियों के नुकसान पे। क्विक सिंगल हासिल किया था जहां पर नौजवान इस गेंद पर लपके थे आगा, लेकिन जब तक उनकी थ्रो पहुंचती इंतहाई तेज़ी के साथ रवि बोपारा जो कि बड़े अच्छे और तेज रनर हैं विकेट्स के दरमियान, वो अपने इस रन को मुकम्मल करने में कामयाब रहे। पाँच ओवर का खेल गद्दाफी स्टेडियम में मुकम्मल। एक्सीलेंट कंडीशंस बैटिंग के लिए और
साथ साथ बॉलिंग भी अपना कुछ हुनर दिखाने की कोशिश करते हुए। और यहाँ पर हैंडसमनेस का एक तूफान बरपा हुआ है कमेंट्री बॉक्स में। ज़ुहैब और अली यूनुस आपको ज्वाइन करें। Thank you very much, Akil Samar. Yeah, slow and steady, slowly coming along the MCCL with Sangakkara. Oh yes, Ali. Evenly poised, 24 for the loss of 2 wickets. Kumar Sangakkara is here, and early on, Usman Shanwari bowled a brilliant spell of 7 runs in 2 overs. Here, Kumar Sangakkara showing his experience, rotating the strike. He knows that this is the requirement of the time. Now you have a good start. Your 2 most experienced batsmen are playing at the moment. So now what you need to do is to build a strong partnership so that you can chase it in the end. Absolutely. I'm just happy that these 2 youngsters are bowling to Ravi Bopara and Kumar Sangakkara. What a feeling this must be for Ali Majid Shah and Maaz Khan, both of them. Yes, Ali, I think credit goes again and again to Lahore Qalandars, the management, because they are giving a right platform to the players. This time Bopara wants to drive it towards cover, straight to the fielders and no runs at all. Yeah, we are talking about giving the right opportunity to the youngsters because this is the future of Pakistan. And on this platform against the top international players, if you are performing well, this means you have the medal. Absolutely, and you're not just playing with against international players. It's Kumar Sangakkara and Ravi Bopara. Both of them are well recognized player internationally, and this is a great opportunity for Maaz Khan especially. He's the product of player development for Lahore Qalandars, and this is exactly what Lahore Qalandar is all about. Yes, they want to give chances to the youngsters. They want to produce the players. Ooh, it kept really, really low. Sangakkara wants to heave it over the mid-wicket. There was a massive gap there. The ball kept really low and Maaz nearly got him. Yeah, this is not the first time that the ball is kept low. Sangakkara must be used to it now, because he's so experienced. Again, this time he's cut it through the gap, but no, just straight to the man. Could not quite find that gap there. Oh yes, he was trying to middle the ball and towards the deep cover point area, but good fielding again. Yeah, we've seen some magnificent fielding in the early session of the game as well. MCC were right on their toes. They were vigilant and they were really electrifying in the field. Now, Qalandars are replicating the same thing now. Yeah, this time he's played it towards mid-wicket. There will only be one for Sangakkara. Slowly and steady, Kumar Sangakkara leading his team away. After 6 overs, it's 27 for 2. Ali Majid Shah, young lad from Kabirbala, very young, not so young, but a very good prospect for Lahore Qalandars. He's different, he's not easy to pick up, his action is really quick. What do you make of him, sir? Yeah, Ali, I just seen the last over, talk about this. Again this time, quick delivery through the air, try to sweep it over square leg, straight into the hands of the fielder. Yeah, we were talking about the bowler. He is quick through the air, he's a bit decisive when he bowls. So I think he bowls with the wrong foot as well. So this is something that nowadays the cricketers, the coaches, the management, they're looking for it, because you need an X factor. You have so many regular leg spinners, left arm spinners, but if you have something special, then you have the right opportunity to go out there and perform. You can see again the short arm jab from Ravi Bopara, showing the experience, using the pace of the ball, paddle it towards the deep fine leg, and the ball races towards the boundary for another 4 runs. Absolutely, Ravi Bopara playing with the pace. All he did was just put the bat on the ball and it raced away for 4. So a good needed boundary for MCC. Have a look at that. Yeah, experience matters a lot here. Ravi shows that he uses the pace. He knows that he's not giving enough time or room when he's bowling, when he's trying to play in front of the square. But now he uses pace and get the boundary. I think that's the right way to play such sort of bowlers who you just never know which side the ball is going to turn.
because with his action it looks like a leg spinner, but when he bowls it slides on. Yep, it slides on, and if he's good enough to bowl a good quick googlies as well, so he'll be a good prospect for Lahore Qalandars. Again, we were talking about the young development program. He's kind of a guy who came from that development. Sangakkara drives it towards long off. So yeah, credit goes to Qalandars because they are providing the talent. They're not only providing the talent, they are picking the right talent, they're grooming it, and after grooming, they're providing them the right platform so that go in the ground and play and prove your mettle. So that's what the players are doing right now. Yes, and since Haris Rauf and Dilbar Hussain is represented as a part of BPL, so that would be a great motivation for these young cricketers, that if you're not even playing for Pakistan, you have other avenues to go and explore. Exactly, Ali. That's what really matters to the youngsters. You want to play international cricket no matter what, but when you're not playing, you want the right platform to showcase your talent, and BPL, PSL are kind of the leagues where you can go and play. Again, quick ball towards the pad. Sangakkara shows his class, flicks it towards deep square leg, an easy run for the loss of 2 wickets. But you need to calculate your innings in a proper way, that being a senior player, you want to face most number of balls and then you groom it. Yes, absolutely. And the big thing for Lahore Qalandars, Mohammad Hafeez is back in action as a bowler. So it will be exciting times to see him bowl, how he bowls. Careful start. It's a good running. He's come back for second. So even Sangakkara is not old yet. Oh yes, oh yes. It's a good start by Mohammad Hafeez, and now we are moving back to the ground where Kinza is here with a guest. Great to be here, having a great time so far. Welcome. How are you doing so far, and what do you have to say about the first match? Well, yeah, we already got off the plane yesterday, so we're a little bit rusty, but to be playing here in front of a massive crowd like this so far has been absolutely brilliant. We're having great fun. What do you think about the energy of the Lahori people here? They're brilliant, to be honest. We drove past massive crowds queuing to get in the ground, and to see them all how much they absolutely love cricket. They're chanting for Lahore, but they're also chanting for the MCC, which is absolutely great. It's brilliant. Yeah, it's brilliant. I feel the crowd is cheering for both the teams, MCC and Lahore Qalandar both, right? Yeah, like I said, there's a few MCC chants. They keep chanting MCC, which is absolutely brilliant. But people here clearly absolutely love their cricket, and it's great to be here. Exactly. So Oliver, what do you have to say about the match? Early 2 wickets. What do you think? You guys are going to revert back? Yeah, we bowled pretty well. It was 1-3-5 Lahore got. A few early wickets early on didn't help us, but hopefully we got a little partnership now with Kumar and Ravi, and we'll be somewhere close to the total. Yeah, Kumar Sangakkara is looking good as always. I know, he said he hasn't had a bat in about 3 or 4 years, but he still looks absolutely brilliant to me. Yeah, looks good. Wow, that's amazing. Thank you so much, and hope you have a wonderful stay here. Oh, thanks for having us. Thank you. Back to the commentator box. Thank you so much, Kinza. She was with James Oliver Hannon, the 30-year-old from Yorkshire. So coming back to the live game, Mohammad Hafeez back in action as a bowler. Oh yes, back in action again. Clear his bowling action by the ICC. So he's looking good. He's bowling decent lines, so it doesn't look off color at all. Yes, this is so important for Lahore Qalandars and Hafeez his own self. The confidence that he gets by bowling, because that gives an extra edge to the team and himself. Absolutely, Ali. It's not only important for Lahore Qalandars, but I think when you talk about T20 and T20 World Cup, it's around the corner. So Mohammad Hafeez is a crucial member of the Pakistan team nowadays. Again, Sangakkara showing the experience, rotating the strike. He knows the importance of his wicket, so you don't want to beg any silly shots here. At the end of the 8th over, MCCR 41 for the loss of 2 wickets.
Huge crowd, big numbers. Just when the match was about to start, we were outside the ground and we saw the love for the game and the people were pouring in. Oh yes, you can see that the flood is coming from the gates of the stadium. The love of the game is there. People want to see cricket back home, and they are fortunate enough that in this era they will see many more international players and international team touring Pakistan. Especially when you talk about the international players, PSL is around the corner early. So we're expecting huge crowd in PSL games as well. Absolutely, and it's so hopeful that after seeing this match, even MCC doesn't have big stars, just Sangakkara and Ravi Bopara, but still people have come in numbers to support their local team, Lahore Qalandars. Dilbar Hussain, I'm really excited about him, but not a good start. This will run away for 4. He's up against Sangakkara. Won't be easy for him. Oh yes, that's a magnificent shot, a signature shot by Kumar Sangakkara, using the pace of the bowler, opening the face of the bat and finding the gap between the point and the third man fielder. Magnificent shot all over the ground for a boundary. So that's what an experienced batsman is. That's what you need to do as an experienced player. The new bowler is in, you want to push pressure on him, and the boundary will certainly do it. Yeah, that's Dilbar Hussain. His T20 cricket career is 1 match and 1 wicket so far, but he has got a lot of promise, and this time he's cut it for 4. Unfortunately, he's up against the best in the business, who has just easily done it for 4. Wow, wow, wow. What a magnificent square cut by Kumar Sangakkara, the legend himself. You can't give room to this guy. He will hammer you on every single ball. If you give him room, you can see in the replay, it was there, the room was there, the pace was there. Only thing he used to do is just to give it a right direction. Yes, these are the people behind all these scenes, the Lahore Qalandar management. What a fantastic job they've done, providing these people the entertainment for today. MCC touring Pakistan, playing Lahore Qalandars. They're going to play 3 more matches in Lahore. Straight to the man. Unlucky for Sangakkara. He wanted to go above that fielder, but could only manage Sohail Akhtar, the captain, and hit it straight to the man. A big wicket for Dilbar. Oh yes, magnificent comeback by Dilbar. He was under the thumb after the couple of balls, but here Sangakkara loses patience, I must say. The ball was not there to hit officially, but yeah, he tried it hard, gone straight into the hands of a mid-off fielder. You can see in the replay here, you can see the bat twist in the hand, and a nice and simple, easy catch to the captain of Lahore Qalandars, Sohail Akhtar. Yeah, the smile on Atif Rana's tells us how important this wicket was. Definitely, very crucial wicket at a very crucial stage of the game, because we are witnessing now that they lost the 3rd wicket at 49 runs. Crowd enjoying every moment of this match, and what a moment for Dilbar Hussain, getting probably the biggest wicket of his life so far. Oh, yes, for sure, one of the biggest. It's kind of a dream for Dilbar Hussain to get Sangakkara out. This time Sumit Patel gonna face him, first ball seam back in. Yeah, it is a good ball to ball a new batsman, because he wants to target the stumps. You want to let him play a cross shot so that you get a chance to get leg before wicket. Absolutely, you being the fast bowler yourself, all your first class career, so you must know the importance of bowling wicket to wicket in T20 cricket. Yeah, well, especially when you talk about the shorter format, the wide format of the cricket, you don't want to give any room to the batsman. You want to stick to the wicket, especially in these kind of wickets where the ball is keeping low and slow. So your aim is to bowl as much number of dot balls as you can and build the pressure for the batsmen. Yes, carefully and stylishly played towards cover by Ravi Bopara. He knows that these two men, Sumit Patel and Ravi Bopara, they're very important for MCC. It's very important for them that they stay out at least till 15th or 16th over. Yeah, crucial times for MCC because they lost their captain.
who was in form, who was timing the ball nicely. But yeah, the pressure will be on Ravi Bopara, especially because he's here and he'll be the main man now. With him, Sumit Patel just join him. So yeah, they definitely require a good partnership here. And that's good bowling by Dilbar Hussain, giving no room whatsoever. He knows that the ball is keeping low, so the idea is to bowl wicket to wicket. After 9 overs, it's 52 for 3. The big man, the professor of Pakistan cricket, Mohammad Hafeez, will continue into his second over. It's very important for him that he gets few overs going on. Yeah, very crucial time for Mohammad Hafeez and for Lahore Qalandars, because he is the guy who just came back after the ICC suspension, and he just cleared that his bowling and his angle is perfectly right, and he looks confident. He looks that he's in a good rhythm. He's bowling at the right decent lines. We were talking about the importance of Hafeez earlier when he was bowling, that it's crucial for Lahore Qalandars that he bowls, especially when he bowls the new balls. He'll be a lethal bowler when you talk about the left-handers, because he's extremely dangerous to them. And yeah, we're talking about T20 and the World Cup is around the corner, so it'll be good plus for Pakistan as well. Absolutely, and the experience he brings in the team. Maybe we have got the young captain in form of Babar Azam, and with him and Shoaib Malik in the side, that would be a huge help for both of them. For Babar Azam, all these decision making in the ground, those little changes in the field. So he will be very handy in Pakistan team for World Cup. Sumit coming down the ground, he beat over the mid-wicket, finding the gap, and that's a boundary for Sumit Patel. So yeah, you need to charge, you need to attack the bowler, no matter whether it's Mohammad Hafeez or whoever it is, because this is T20. Look at the shot. Uses his feet so nicely, coming on the ball, use wrist and then finding the gap. Everything was just perfect about this shot. Sumit Patel realizing that they must move on, they must get few runs, because they are 58 for 3 in almost 10 overs. This is Mohammad Hafeez in. So we'll get back to that. The graph will show how Mohammad Hafeez has performed in Gaddafi Stadium. He's played all his cricket from Lahore. Down the track again, over extra cover. He intended, but that went towards third man. Yep. Good try by Sumit Patel and good running between the wicket. Yeah, he tried to play it towards extra cover region, but Hafeez bowled nicely. It was quicker through the air and couldn't manage to middle it properly. Gone towards the widest third man and a couple of runs again. Things were going very tight now. Qalandars need lots of runs, and this time Sumit wanted to take a single, but yeah, good dot ball again to end the over by Hafeez. At the end of 10th over, 60 for the loss of 3 wickets. Pakistan! Lahore Qalandar! भाई हाथ उठा के शोर तो मचा दो। और अभी आपको दोनों टीम्स के लिए क्लैप करना है, शोर मचाना है। एमसीसी और लाहौर कलंदर के लिए तालियां और शोर होना चाहिए। ये है क्राउड, ये है लाहौर, जिनने लाहौर नहीं देखा जमया नहीं, लाहौर लाहौर। Yes, welcome back after the break. And as the bowling change, there will be a change in commentary box. It will be Ijaz Ahmed and Akil Samar to continue. बहुत शुक्रिया अली यूनुस। शानदार मुकाबला लाहौर कलंदर्स और मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब की टीम्स के दरमियान जारी गद्दाफी स्टेडियम में, जहां पर मदोजज़त से भरपूर ये यादगार शाम।
एक मरतबा फिर निस्बतन शॉर्ट गेंद, लेकिन एक्सपेक्टेड बाउंस हासिल नहीं किया। रवि बोपारा ऐसी गेंदों को रन्स में कन्वर्ट करना बखूबी जानते हैं, और इनके साथ इन्हीं की टाइप के क्रिकेटर समित पटेल, जो कि एक फाइटिंग क्रिकेटर माने जाते हैं, मौजूद हैं। और देखना ये कि तकरीबन इवन स्टीवन सी जो सिचुएशन नज़र आती है, आखिरी 10 ओवर्स में या आधे से ज़्यादा रन हासिल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए विकेट्स को इन हैंड रखना पड़ेगा, जिस तरह से आमतौर पर कहा जाता है जहाज़। जी हाँ, एग्जैक्टली। इस वक्त गेम दोनों की तरफ कहना चाहिए कि पलड़े बराबर है। जो भी यहाँ से इवन अगर हम बैटिंग की बात करें, 1-2 अच्छे ओवर्स एमसीसी को अच्छी पोजीशन में ले जाएंगे। इस दफा चार्ज की एक्स्ट्रा कवर की जाने, बहुत ही उम्दा कैच हो सकता था लेकिन ड्रॉप कर दिया। बैलेंस बरकरार नहीं रख पाए। कौनिया उनकी जिस वक्त जमीन पे लगी, बॉल उनके हाथों से निकल गई। क्या मौका मिला था फरजान राजा को कि जो एक मरतबा फिर अपने लिए इस बड़ी विकेट को हासिल करते हैं, लेकिन सो नियर येट सो फार। फिंगर्स अप के स्टाइल में इस गेंद को कैच करने की कोशिश की वहां पर मौजूद फरजान ने, लेकिन अपने हाथों में मुकम्मल तौर पर दबोचने में कामयाब ना हो सके। फ्रस्ट्रेटेड फरजान राजा अब नजर आते हैं। यकीनी तौर पर विकेट फरजान के लिए और मजमूई तौर पर लाहौर कलंदर्स के लिए खासे माने रखती, लेकिन यहाँ पर ये चांस कितना महंगा साबित होगा आने वाला आधा घंटा, और ये 9.4 पर बखूबी बता देंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। ना सिर्फ ये बल्कि 3 मैचेस मजीद इन्होंने खेलने हैं एजिसन कॉलेज की खूबसूरत और तारीखी सेटिंग में। उठा दिया इस गेंद को रवि बोपारा ने, और इस मरतबा ये नो मैन्स एरिया में गेंद ने जाके लैंड किया। एक और रन का इजाफा। वकील, यही वो जिस कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि ये गेम इस वक्त किसी तरफ भी पलट सकता है। तो अगर ये कैच यहाँ पर होता और विकेट कॉलम में 4 विकेट्स लगते तो उसका प्रेशर यकीनी तौर पर बैटिंग पे आता, लेकिन इस ड्रॉप की वजह से बॉलर के भी जो हौसले पस्त हुए। खासी नीचे रह रही है गेंद, एंड हमें यकीन है कि पीएसएल की मैनेजमेंट इस हवाले से बखूबी इन चीज़ों को देख रही होगी, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस T20 क्रिकेट का खासा होते हैं, और अभी वक्त बाकी है कि जब आपके पास ये ज़बरदस्त ब्रांड ऑफ क्रिकेट मौजूद होगा। और आई एम श्योर कि जितनी धूप अब वाफिर मिकदार में मौजूद है, पिक्चर परफेक्ट मौसम दिन में और अब शाम में भी शहर लाहौर का है किसी भी चीज़ के लिए, ख़ास तौर पर क्रिकेट के लिए 14 फरवरी को, तो उसमें कम से कम पिचेस को अच्छी अंदाज से बेक करके एक अच्छे बाउंस के लिए तैयार किया जा सकेगा। कि एक जो बड़ी वाज़ेह तब्दीली एजाज़ हुई है कि जब बांग्लादेश की T20s थे तो आपकी आउटफील्ड बड़ी ब्राउनिश नज़र आती थी, लेकिन अभी ये बड़ी ज़बरदस्त ब्राइट ग्रीन कलर की है। जी हाँ, चूँकि इस वक्त स्प्रिंग जो है बाहर की आमद है, उसकी वजह से जो मौसम है यहाँ पर लाहौर में टेम्परेचर भी काफ़ी जो है वो गिर चुका, बल्कि इनफैक्ट कहना चाहिए कि जो दर्जा हरारत है वो बड़ा है, जिसकी वजह से घास जो है वो सब्ज़ है, इतना ज़्यादा रूम नहीं दिया। लेकिन एक सिंगल के साथ ओवर का इख्तिताम हुआ। 11 ओवर हुए, 66 पे 3 MCC। बड़ा क्रूशल लम्हा है इस गेम में, जो कि लाहौर कलंदर्स के खिलाफ खेलती हुई मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की टीम। इतवार को इनका मुकाबला है HSN कॉलेज में पाकिस्तान शाहीन, जो कि पाकिस्तान इमर्जिंग टीम का एक नया और बड़ा पावरफुल नाम है, और उसके बाद इनका मुकाबला मुल्तान सुल्तान के साथ उसी सेटिंग में प्लान। लेकिन इससे पहले बार बार बात करनी होगी इस ज़बरदस्त सेटिंग की, जिसको बड़ी तादाद में क्राउड ने आकर आज सेलिब्रेट किया। इतना ज़रूर किया है इन स्पिनर्स ने आकर कि वो बाउंड्रीज़ को, हालांकि बड़ी मुख्तसर बाउंड्री का साइज़ है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वाफिर तादाद में नहीं दिया। दूसरी तरफ ये मंजे हुए खिलाड़ी दोनों, जो कि एशियन सेटिंग में खेलने का बड़ा तजुर्बा रखते हैं, ख़ास तौर पर रवि बोपारा, जो कि एक बड़े ऐसे होनहार क्रिकेटर के तौर पर गेम को रोटेट करते रहते हैं स्ट्राइक के ज़रिए से, कि जिस पे आपको आखिर में प्रेशर नज़र आए अपने ऊपर। वो अपना काम उसी अंदाज से करते हुए 17 गेंदों पर 16 रन बनाकर टिपिकल बोपारा की इनिंग्स जारी। सॉलिड बेंच लाहौर कलंदर्स का।
जो इस वक्त जो बाउंड्रीज हैं उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं और कोशिश भी यही होनी चाहिए कि 1 या 2 ओवर मजीद रोटेट करें। और जिस वक्त 13 या 14 ओवर का खेल शुरू हो तो उस वक्त जो रन है उसको थोड़े से एक्सेलरेट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रोटेट करेंगे या डॉट खेलेंगे तो प्रेशर यकीनी तौर पर आएगा। लेकिन इसी दौरान एक बुरा बॉल लेग स्टंप के करीब से होता हुआ गुजर गया, फाइन लेग बाउंड्री की जानिब, वाइड भी, उसके साथ साथ 4 रन्स भी। अली माजिद लो ट्रेजेक्ट्री के साथ स्टंप्स को टारगेट करने की कोशिश करते करते अपनी लाइन में चूक गए और रवि बुपारा और एमसीसी के पास ये बोनस रन्स हासिल होते हुए कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी और गेंद तेज़ी के साथ इस इंतहाई पेसी आउटफील्ड का फ़ायदा उठाते हुए चौके के लिए चली गई। बोनस 4 रन्स एमसीसी के लिए। गेंद इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नीचे रह रहा है, डायरेक्ट हिट लगी। अंपायर की जानिब इस वक्त निगाहें हैं, फील्डर्स की अपील उन्होंने की और देखना है कि क्या अपस्टेयर्स जाएंगे अंपायर इसको फैसले को देखने के लिए। राशिद ज़्यादा परवाह नहीं करते अपस्टेयर्स जाने के लिए और उन्होंने अपनी नेकेड आई पर पहले रिएक्शन पे भरोसा किया है। इतने कॉन्फिडेंट हैं, ज़रूर से ज़्यादा कई मरतबा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं राशिद। इस मरतबा फ्रेम बाय फ्रेम देखना होगा कि डिसीजन दोबारा चेक किया जा सकता था कि नहीं, लेकिन इस दौरान ये चौका कंसीड करने के अलावा अली माजिद ने स्ट्रैंगल होल्ड क्रिएट करके रखा हुआ है और बड़ी ये ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है इस पीएसएल की। शायद आपको दुनिया की किसी और लीग में होता हुआ नहीं मिलेगा कि किसी छोटे शहर के क्रिकेटर्स आकर राइट अवे इन बड़े नामवर और हीरोइक खेल चुके वाले क्रिकेटर्स के खिलाफ बॉलिंग कर सकें और ये सब कुछ होता हुआ जस्ट ऑन द ईव ऑफ पीएसएल। रिमार्केबल। एग्जैक्टली, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है तमाम उन यंगस्टर्स को जिस वक्त वो देखते हैं कि मोहम्मद हफीज़, कुमार संगाकारा, स्मिथ पटेल, इन जैसे खिलाड़ियों के साथ उन्हें मौका मिला इस इतने बड़े वेन्यू पे खेलने का। और एक और निगाह आप देख सकते हैं, अच्छा डिसीजन था अंपायर का, गुड पिकअप, रिलीज भी अर्ली था। ओवर का इख्तिताम हुआ, 12 ओवर हुए, 76 पे 3 एमसीसी। पार्टनरशिप रवि बुपारा और समित पटेल के दरमियान, जो कि इनिंग्स के दरमियान के हिस्से को मुस्तहकम करते हुए और अब तक के टॉप स्कोरर एमसीसी के कप्तान कुमार संगाकारा जो कि ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। दिलबन ने उनकी विकेट हासिल की, कप्तान ने अपना दूसरा कैच हासिल किया, माइकल बर्जीज, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि एमसीसी की टेल का आना बाकी है। तो आमतौर पर क्लीशे के तौर पर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी ये बात पूरी उतरती है कि इस पार्टनरशिप पर बहुत ज़्यादा दारोमदार। फरजान राजा की बॉलिंग पे ना ही कैच पकड़े जा रहे हैं और ना ही ग्राउंड फील्डिंग पे काबू रखा जा रहा है। सलमान भट्ट ने गैर ज़रूरी अंदाज से 2 रन किए हैं। नौजवान फरजान मुकम्मल तौर पर नाखुश नजर आते हैं इस एफर्ट से, एंड राइटली सो। अभी कुछ देर पहले अकील हम बात कर रहे थे कि इतने बड़े स्टार्स के साथ खेलते हुए यकीनी तौर पर ये जो यंगस्टर हैं वो सीखेंगे, लेकिन इस तरह से ये चीज़ सीखनी नहीं चाहिए कि मिसफील्ड और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा रन। फ्लैश किया इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर की जानिब, लेकिन फील्डर मौजूद है। रवि बुपारा की आपने बात की, इनकी भी एक सेंचुरी है T20 फॉर्मेट में। स्मिथ पटेल अपने तमाम तर जो इंटरनेशनल कैरियर है इनका इंग्लैंड की तरफ से छोटा, उसमें भी जो मिडिल ऑर्डर में इसी नंबर पे बैट करते रहे, बहुत से मौक़ों पे गो के इतनी बड़ी फतवात नहीं दिला पाए। यहाँ पर चार्ज किया ऑन साइड पे, मिड विकेट के ऊपर से बॉल 6 रन के लिए पार हो गई। कोशिश जरूर की थी फील्डर ने डीप में, लेकिन कारगर साबित ना हुई। छोटी बाउंड्री का बड़ा फायदा उठाया समित पटेल ने, गेंद का इंतजार किया और कंट्रोल अंदाज से इस गेंद को स्लॉग स्वीप करने के लिए गए, लेकिन इतनी कुव्वत इसमें बहरहाल मौजूद थी कि शनवारी को वो अबूर कर जाती। हालांकि मॉडर्न डे के लिहाज से कम से कम वो एक डबल अटैम्प्ट जरूर कर सकते थे, मगर नहीं। याद रहे कि अब से एक हफ्ते के अंदर जब लाहौर कलंदर्स अपनी कैंपेन का आगाज़ करेगी तो समित पटेल उस टीम का हिस्सा होंगे
जो कि फीचर करते नज़र आएंगे कलंदर्स के इब्तिदाई मैचेस में, और इनके लिए अच्छा मौका है कि अपनी हरीफ टीम के जो कि इस मौके पर उनकी अपोजिशन है उसको ठीक अंदाज से जज कर सकेंगे। लाहौर कलंदर्स का एक सबसे बड़ा मसला खासतौर पर जो कि पिछले 4 एडिशंस के दौरान नजर आया, वो गेम को फिनिश करने का, दोनों यानी कि बैटिंग और बॉलिंग के टर्म्स में। अभी दोबारा स्ट्राइक को मुकम्मल तौर पर रोटेट करते हुए, और उनके ख्याल के मुताबिक उनका ये तीसरा गियर आसानी के साथ उनको मंजिल तक पहुंचा सकता है। दूसरी जानिब शायद अर्जेंसी को रियलाइज़ करना पड़ेगा सोहेल अख्तर को, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग इम्तहान भी है सोहेल की कप्तानी का, क्योंकि बड़ी सरप्राइज कॉल है एजाज हम सब के लिए सोहेल को कप्तानी देना, और देखना है कि कितना उस पर पूरा उतरते हैं, और उसके लिए एक अच्छा प्रील्यूड PSL से पहले आज की शाम। छक्के के अलावा निस्बतन अच्छा ओवर मुकम्मल किया फरजान ने, 13 ओवर्स का खेल अपने इख्तिताम को पहुंचा, 88 for 3 MCC। उस्मान चिनवारी 7 रन, एक विकेट शेयर किया माज खान ने, और 1 विकेट मिला दिलबर हुसैन को 11 रन के एवज। दिलबर को प्राइज विकेट हासिल हुई कमाल संगाकारा की, और उस्मान चिनवारी और माज ने इब्तिदाई ओवर्स में एक कामयाबी को अपने नाम किया। गद्दाफी स्टेडियम जिसने पाकिस्तान में इस इंटरनेशनल क्रिकेट और हाई लेवल के गेम की वापसी का ऐलान किया था, और बड़े तवातर के साथ इन तमाम गेम्स को होस्ट करता हुआ, और ख़ास तौर पर ये वाला फेज़ जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जहां पर एक तरफ हम दूसरे स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप को होते हुए इस बड़े ज़बरदस्त स्पोर्टिंग सेंटर में देख सकते हैं, जहां पर निश्चित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ओवरऑल इस जगह का नाम पंजाब स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम इसके अकब में मौजूद, और ऑब्वियसली इसका एक इंतहाई खूबसूरत एपी सेंटर लाहौर का एक गद्दाफी स्टेडियम, जो कि शायद पूरे, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो लाहौर इस स्प्रिंग सीज़न को मनाने की सबसे बेहतरीन जगह है। ब्राइट ब्लू स्काइज दिन के वक्त में, शाम के वक्त एक बड़ी खूबसूरत हवा चलती हुई, और इससे बेहतर कंडीशन शायद दुनिया भर में आपको क्रिकेट के लिए मिलना मुश्किल। जी एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त कबड्डी वर्ल्ड कप जो है वो भी लाहौर और फैसलाबाद इस वक्त होस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस तरह से MCC का आना, फिर उसके बाद PSL, फिर साउथ अफ्रीका भी लाइन अप में है, तो तमाम तर इस वक्त स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं वो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान में। चार्ज किया स्मिथ पटेल ने, सही तरीके से स्ट्रोक लगा नहीं पाए, लेकिन बचत हुई यहाँ पर, क्योंकि लॉन्ग ऑफ का जो फील्डर है वो थोड़ा सा पीछे था। हो सकते इंटेंशंस काफ़ी क्लियर हैं, और होनी भी चाहिए कि एक आध बाउंड्री यहाँ से ऑनवर्ड हर ओवर में चाहिए MCC की टीम को, ताकि जो प्रेशर थोड़ा सा रन रेट अप होने का उसको कम कर सके। इनको उठा के खेला है, लेकिन एक मरतबा फिर ये बाउंस लेने के बाद ज़मीन के साथ रोल होती हुई पहुंची है वहाँ पर मौजूद फील्डर के पास। तो अर्जेंसी को अब तक हम दूसरे एंड पर रवि बोपारा और स्मिथ पटेल की जोड़ी शायद अपने ऊपर तारी करने में तैयार नज़र नहीं आती। कंट्रोल अंदाज से अपने रन चेस को कंटिन्यू रखे हुए इस दफा चार्ज किया डीप मिड विकेट की जानिब, फील्डर मौजूद है, अच्छी एफर्ट डीप में, और यहाँ पर स्मिथ पटेल गो के कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि बड़ी हिट लगा सके, लेकिन प्रॉपर्ली हिट नहीं कर पा रहे। 14 ओवर का मुकम्मल हुआ खेल यहाँ पर। देखिए रिप्ले, थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ बॉल था, थोड़ा अर्ली खेल गए, बिल्कुल टो पे लगा बल्ले की, जिसकी वजह से सही तरह से प्रॉपर्ली टाइम नहीं कर पाए और बॉल फेंस पार नहीं कर सकी। पैंतीस साल स्मिथ पटेल इस मौके का अच्छा फ़ायदा उठाते हुए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने लिए अच्छी आउटिंग हासिल नहीं की बिग बैश लीग में। मेलबर्न रेनेगेड्स का इन्होंने यूनिफॉर्म पहना उस बिग बैश लीग में, और कुछ परफॉर्मेंसेस इनकी बॉलिंग के जरिए से हेर और देर ज़रूर मौजूद थी, लेकिन ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं हो सके। रवि बोपारा 34 साल खिलाड़ी, अभी भी खास एक्टिव हर फॉर्म ऑफ गेम में, ख़ास तौर पर रिसेंटली कंक्लूडेड BPL में ये खास एक्टिवली इस तरह के रन चेजेस को हमेशा से इस लीग की शुरुआत से लीड करते हुए नजर आते हैं। मुसलसल स्पिनर्स पर रिलाई करते हुए सोहेल अख्तर,
हालांकि दिलबर ने आते ही पहले ओवर में विकेट हासिल की थी। महंगा ओवर था, 11 रन देकर उन्होंने कुमार संगकारा को आउट किया, लेकिन उसके बाद से वो अटैक से दूर रखे गए हैं। और लगता है कि जब तक अपने फ्लड गेट्स को ओपन करने के लिए नहीं जाएगी ये जोड़ी, वो स्पिनर के साथ ही ये वक्त लाना चाहते हैं कि अचानक इनको अपने हाथों से टाइम निकलता हुआ महसूस हो, तब अंदाज़ा हो कि आखिरी चंद ओवर सर पे आन पहुँचे। जो लगता भी यही है कि इंग्लिश क्रिकेटर्स की तरह स्मिथ पटेल और रवि बोपारा जो हैं वो शायद स्पिनर्स को उस तरीके से अच्छा नहीं खेल पाएंगे, और सुहेल की अच्छी कप्तानी यहाँ पर कि उन्हें स्पिनर्स को ऑपरेट करवा रहे हैं। इस दफ़ा उड़ता हुआ स्ट्रोक लगाया, फेंस से बाहर बॉल जाकर लैंड कर गई 6 रन्स के लिए। फुल टॉस था, स्लो था, पूरा वक्त मिला यहाँ पर स्मिथ को कि बॉल को प्रॉपर्ली देख पाए। काफ़ी देर से अकील कोशिश कर रहे थे इस तर्ज के स्ट्रोक की। जूसी फुल टॉस हासिल हुआ और तैयार नजर आते थे स्मिथ पटेल ऐसे शॉट के लिए। फुल मार्क्स के उन्होंने फौरन रियलाइज करके इस गेंद को डिस्पैच कर दिया और इंतहाई आसानी के साथ अपने डगआउट की जानिब खेलने में सक्सेसफुल रहे। फजान राजा अब इस रिसीविंग एंड पे नजर आते हैं। और ये क्रिकेट के खेल का खास तौर पर T20 फॉर्मेट का खास हुस्न है कि एक या मैक्सिमम 2 ओवर्स अगर आपको अच्छे मिल जाते हैं बैटिंग साइड पे, तो आप अचानक से 5 सब लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। और भी एक छक्के ने कितना कॉम्प्लेक्शन चेंज कर दिया आपके सामने। अचानक से ये बड़ी हद तक पॉसिबल नज़र आता है 34 रन का हासिल करना। 5.3 ओवर्स का खेल अभी भी मौजूद। तो एक मरतबा फिर गेम में वापस आते हुए रवि बोपारा ने इस दफा चार्ज लिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही उम्दा हिट। बिल्कुल अकील आपने सही कहा कि इस वक्त फरजान जो है वो प्रेशर में आ चुके हैं। रवि बोपारा जो कि हिट लगाने की सलाहियत रखते हैं, उन्होंने इस बॉल को प्रॉपर्ली जज किया। और ये देखिए, लगता है ये कि कप्तान इस वक्त बहुत कुछ छोड़ रहे हैं आखिरी चंद ओवर्स के लिए। स्पिनर्स पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार उनके अपने लिए गड़ा खोदने के मुतरादिफ। अब अचानक से 2 छक्के लगने के बाद ये इक्वेशन मुकम्मल तौर पर टिल्ट होते हुए MCC की फेवर में। अपने एक्सपीरियंस का भरपूर फ़ायदा उठाया इस जोड़ी ने, ख़ास तौर पर फुल मार्क्स रवि बोपारा जिन्होंने सर झुकाकर बड़ी आसानी के साथ इस सिलसिले को जारी रखा हुआ है। और अब आपको हमारी ग्राउंड एम्बेसडर किंजा की जानिब लिए चलते हैं। With me, I have another player for MCC, Fred Klassen. Hello, Fred. How are you? I'm very well. How are you? I am great, Fred. So, welcome to Pakistan, first of all, and tell us about your trip. How's it going so far? Yeah, well, we only arrived yesterday, so it's been pretty full on. Obviously, just lost a wicket there, but that's all right. You know, it's a pretty tight game, but yeah, we arrived yesterday, and it's been pretty full on so far. We trained here at Gaddafi yesterday, and obviously playing here tonight, and it's been great. Okay. And what do you have to say about the weather in Lahore? Nice during the day, a little bit cooler at night and in the morning, which is, you know, it's obviously your cooler season, but quite nice as well. I can imagine in the summer it's probably a bit too hot. So. Okay, so what do you think about the match? Who do you think is going to win? Well, we just lost Samet there, but Ravi's still in there. Just need to go just under a run of ball, which is, but you know, cricket. Lahore is a very good team, so we'll see how it goes. Close finish, I think. But still, I see 28 runs achievable, no? I hope so, but yeah, you never know. Okay, enjoy your trip and thank you so much. Thank you very much, cheers. Back to the commentary box, guys. बहुत बहुत शुक्रिया किंजा। और इसी दौरान एक विकेट का नुकसान उठाना पड़ गया MCC को, और काफ़ी अच्छा वक्त है लाहौर कलंदर्स के लिए कि उन्होंने एक विकेट हासिल की है। देखिए रिप्ले, बैकअप लाइन डिलीवरी थी, ऑन साइड पे खेलने गए, लॉन्ग लेग पे खड़े हुए फील्डर ने एक आसान रेगुलर कैच थामा और फरजान विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। इस दौरान कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली है, ज़ुहैब अहमद और उनके साथ होंगे मज़हर अरशद। थैंक यू एजाज। मैच इस वक्त एक्साइटिंग पोजीशन में जाता नज़र आ रहा है। लास्ट ओवर में अंडर प्रेशर किया बॉलर को एंड देन विकेट लॉस की मज़हर लास्ट बॉल पे, तो अगेन बैलेंस शिफ्ट होता नज़र आ रहा है। सो आई होप के एक्साइटिंग गेम देखने को मिलेगी। जो क्राउड आया, एक लार्ज नंबर में सपोर्ट किया उन्होंने लाहौर कलंदर्स को, MCC को अच्छा वेलकम किया है, उनके लिए एक अच्छा फाइटिंग फिनिश मिल रहा है जी। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ होगा कि MCC की टीम ने इतने शक्ल के सामने एक मैच खेला है। और पूरी दुनिया में ये टीम टूर करती रहती है क्रिकेट को डेवलप करने के लिए, क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। तो आज भी एक बहुत खुशाइन बात है कि यहाँ पे इतना अच्छा क्राउड देखने को आया MCC को, और एक अच्छा मैच हुआ है। 28 रन मज़ीद दरकार हैं
MCC की टीम को। यस, चेंज ऑफ बॉलर यहाँ पे और एक्सपीरियंस का मुजाहरा करते हुए ड्राइव खेली और डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी बट थ्रो टारगेट पे नहीं थी, जिसकी वजह से बासानी रन मुकम्मल किया। जी हाँ मजहर, मेरा ख्याल है क्लोज हो सकता था अगर थ्रो स्टंप्स के ऊपर आती, लेकिन मज़ीद 2 रन MCC की टीम को, और मैच अब काफ़ी इंटरेस्टिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा चेजिंग जो है वो लाहौर में मुश्किल होती है। यस, लास्ट फ्यू ओवर्स हैं, ऑलवेज प्रेशर होता है बैटिंग साइड पर और एक अच्छा बॉल, एवरी डॉट बॉल यहाँ पे मजहर, जितने डॉट बॉल होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। डजेंट मैटर आप रवि बुपारा हैं, डजेंट मैटर आप कितने वेल सेटल इन हैं, बट जो चेज होता है T20 क्रिकेट में उसका एक डिफरेंट ही प्रेशर होता है। जी ज़ुहैब, और जैसे पहले भी हमने बात की थी कि पिछले 2 सालों में जो यहाँ पे मैचेस हुए हैं गद्दाफी स्टेडियम में T20 मैचेस, उस 7 मैच में से 5 मैचेस जो है बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जीती है। एग्जैक्टली, ऑड्स जो हैं वो लाहौर कलंदर को फेवर कर रहे हैं, बट अगर स्कोर कार्ड को देखें तो दे ओनली रिक्वायर 26 मोर रन्स और पूरी कमांड में दिखाई दे रहे हैं। वेल सेटल्ड इन यहाँ पर रवि बोपारा मौजूद हैं और देखना ही है कि लाहौर कलंदर्स के जो यंग लड़के इस तरह इन्होंने अगेन बॉलिंग चेंज की, तो फैजान राजा अगेन प्लेयर डेवलपमेंट से प्लेयर्स लाए एंड देन वेरी क्रूशल स्टेज ऑफ द गेम और कैप्टन ने ट्रस्ट किया अपने यंग प्लेयर पर और उसको अंडर द प्रेशर परफॉर्म करने का चांस दिया। सो दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर लाहौर कलंदर्स। जी, और फैज़ान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सीखने की, क्योंकि ये जो दोनों बैट्समैन हैं समित पटेल और रवि बुपारा, ये दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली है। 2009 में रवि बुपारा ने लगातार 3 सेंचुरीज की थी, रॉस वाइटली और रवि बुपारा। समित पटेल यकीनन पिछले ओवर में आउट हो गए थे। गेंद को सॉफ्ट हैंड के साथ कवर में खेलकर सिंगल हासिल किया। यस मजहर, एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं दोनों बैट्समैन, बिकॉज दे नो लेस देन 6 रन्स एन ओवर हैं, सो दे डोंट नीड एनी बिग हिट्स। सो जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त वो यही है कि वेट फॉर द बैट बॉल एंड इन बिटवीन आप स्ट्राइक रोटेट करते रहें। जी, और रॉस वाइटली एक ऐसे बैट्समैन है जो कि अगर ये गेम रन रेट के ऊपर भी जाती है तो गेम को चेंज कर सकते हैं। आपको शायद सुन के हैरत हो कि ये दुनिया के उन बैट्समैन में जिन्होंने T20 क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए हुए हैं। वाओ वाओ, सो दिस मींस जो बैलेंस है वो टुवर्ड्स MCC ज़्यादा टिल्ट कर रहा है फिनिशिंग का। नेक्स्ट इनको नहायत ही शानदार ड्राइव खेली रवि बुपारा, द मैन इन फॉर्म, कंप्लीट कंट्रोल और मिस फील्डिंग फील्डर की जानिब से। वाओ, दैट्स रेयर सीन नाउडेज इन इंटरनेशनल क्रिकेट। एट अच्छे लेवल पे कहीं पे भी नॉर्मली आपको मिस फील्ड दिखाई नहीं देती, पर बॉल थ्रू द लेग्स निकल गया फील्डर के। जी, ये 3 रन्स का मेरा ख्याल है कि फील्डर ने लीक किए। इजीली इस गेंद को रोका जा सकता था, लेकिन ख़राब फील्डिंग के बाइस लाहौर कलंदर्स ने यहाँ पे 3 रन्स कंसीड किए हैं। ऑलरेडी अंडर प्रेशर थे और फील्डिंग की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर लाहौर कलंदर और फैज़ान पर। और रवि बुपारा की एक स्किल है कि ये मैचेस को फिनिश बहुत अच्छा करते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेली है राजशाही रॉयल्स के लिए, जिसमें एक मैच में 171 चेज किया था, जिसके अंदर इन्होंने एंड पर आकर 41 रन्स किए थे ऑन जस्ट 23 बॉल्स। तो इनके अंदर वो स्किल है मैच को फिनिश करने की। जी हाँ मजहर, क्रूशल प्लेयर हैं इस टाइम और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस टाइम MCC एट द एंड ऑफ 16th ओवर 117 रन। शाहीन अफरीदी इस मैच में नहीं खेल रहे और हारिस रऊफ भी फास्ट बॉलर लाहौर कलंदर्स के जो कि इस मैच में नहीं खेल रहे, लेकिन मैच एक्साइटिंग सिचुएशन की तरफ जा रहा है। MCC का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। रवि बुपारा कंप्लीट कंट्रोल में और उनके साथ जिस तरह मजहर ने बताया कि डेंजरस रॉस 6 सिक्सेस इन एन ओवर। वाओ, दिस इज समथिंग स्पेशल मजहर। जी, और दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। युवराज सिंह, रॉस वाइटली, हजरतुल्लाह जज़ई अफगानिस्तान के, और लियो कार्टर एक न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे। राइटली इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है मजहर आपको। इस गेंद को बैकफुट पर जाते हुए अगेन सॉफ्ट हैंड से खेला टुवर्ड्स पॉइंट, इजी सिंगल। दे नो बड़ी हिट मारने की जरूरत नहीं, रैश शॉट मारने की जरूरत नहीं, और यहाँ पर उस्मान शनवारी को लाया बिकॉज कैप्टन जानते हैं लाहौर कलंदर के कि यहाँ पे विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर वो इस पार्टनरशिप को ब्रेक नहीं करते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये फिलिप ब्राउन है और आई थिंक स्पेशली इंग्लैंड से आए हैं इस मैच को कवर करने। बहुत फेमस फोटोग्राफर हैं क्रिकेट में, पूरी दुनिया में क्रिकेट कवर करते हैं। उनकी फोटोग्राफ्स को कई अवार्ड्स मिल चुके हैं।
वाओ, एमसीसी ना सिर्फ प्लेयर्स अच्छे लाए हैं बल्कि साफ सपोर्टिंग स्टाफ है. इट्स पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि आपके पास अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, अच्छे फोटोग्राफर्स आ रहे हैं, अच्छी मैनेजमेंट आ रही है, क्रिकेट प्रमोट हो रही है और एन ऑन टॉप क्राउड जो देखने के लिए आया है उनको एक अच्छी गेम देखने को मिली. जी, और फुल क्रेडिट टू लाहौर कलंदर कि उन्होंने उनकी बॉलिंग को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक छोटे टारगेट को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया है और ये ओवर अगर उस्मान शनवारी अच्छा करते हैं तो मैच में वापस आ सकते हैं. वाओ, टारगेटिंग द स्टंप्स, यही ज़रूरत है इस वक्त कि आपको विकेट चाहिए एंड द बेस्ट ऑप्शन टू गेट द विकेट्स को 3 स्टंप्स को टारगेट करें. उस्मान शनवारी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उनको पता है कि वो विकेट लेने की एबिलिटी रखते हैं और कैप्टन ने उनको ये रोल दिया है कि इस वक्त हमें डॉट बॉल्स चाहिए मैक्सिमम नंबर एंड अगर यहाँ पार्टनरशिप ब्रेक होती है तो 118 for 5 होते हैं तो एटलीस्ट जो लास्ट 18 रन हैं स्टिल चेज आसान ना होगा. जी, और उस्मान शनवारी एक ऐसे बॉलर हैं जो कि बैटिंग लाइनअप्स के ऊपर रन थ्रू कर सकते हैं, बैटिंग लाइनअप्स को कोलैप्स करवा सकते हैं. इस ग्राउंड में 5 विकेट भी उन्होंने ली हुई हैं 2013 में. एक्सपीरियंस शो करते हुए रवि ओपारा ने थोड़ा सा रूम बनाया और कवर में सिंगल लिया. स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं जैसा कि हमने पहले जिक्र किया बिकॉज इनको कोई बड़ी हिट मारने की जरूरत नहीं, वेल सेटल्ड हैं. 35 बॉल्स खेलकर 41 रन्स बना चुके हैं. कंप्लीट कमांड में इस टाइम एमसीसी की टीम. आई थिंक जब इस तरह की क्लब लेवल की टीम्स, अच्छे क्लब लेवल की टीम स्टोर करती हैं पाकिस्तान पे, सो इट्स नॉट ईजी कि उनकी टीम जेल हो, उनके अच्छे प्लान्स हों. बट जिस तरीके से एमसीसी टीम ने पहले बॉलिंग, फील्डिंग और अब बैटिंग का मुजाहरा किया है, आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम. जी बिल्कुल, और ये जो प्लेयर्स आए हैं इन सबका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, काउंटी क्रिकेट का भी एक्सपीरियंस है. और कुमार संगाकारा की तो जितनी तारीफ की जाए कम है, पूरी दुनिया में उन्होंने क्रिकेट खेली है. वाओ, एक्सेप्शनल बॉल, वाओ, नियरली आउट करने में कामयाब हुए थे. इन स्विंग यॉर्कर जिसके लिए पाकिस्तानी बॉलर पूरी दुनिया में मशहूर. रिवर्स स्विंग दिखाई दी, बॉल डिप इन हुआ लेकिन नाइसली ब्लॉक किया रॉस ने उसको और विकेट सेव करने से बचा ली. जी, और 2 डॉट बॉल्स की हैं अभी तक इस ओवर में. 4 गेंदों पे सिर्फ 2 रन्स दिए हैं. उस्मान शनवारी अपने एक्सपीरियंस का मुजाहरा कर रहे हैं और अभी तक 16 उन्होंने गेंदें की हैं, सिर्फ 9 रन्स दिए हैं. और इस सीज़न में उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू भी किया उस्मान शनवारी ने श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी में, और 2019 में और उससे पहले भी वनडे क्रिकेट में ख़ास तौर पे ये स्पेशली बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं. मेरा ख्याल है कि ये थोड़े अनलकी थे कि ये वर्ल्ड कप स्क्वाड में अपनी जगह नहीं बना सके. राइटली पॉइंटेड आउट, अच्छी परफॉर्मेंस करते दिखाई दिए उस्मान शनवारी इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स और स्पेशली डेप्थ बॉलिंग में बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास. अगेन परफेक्ट यॉर्कर, बहुत आला बॉल बिकॉज विकेट इज द ओनली सोल्यूशन हेयर और उसको अच्छा नेगोशिएट किया रॉस ने. 1 रन लेने में कामयाब हुए और 120 रन पर टैली चली गई एमसीसी की. एमसीसी की टीम, मेरा ख्याल है कि उनको आइडिया है कि ये जो टारगेट है इसको सिंगल्स और डबल्स में अचीव किया जा सकता है. इसीलिए अभी तक डेथ ओवर्स में हमें अभी तक कोई बड़ी शॉट देखने को नहीं मिली. हालांकि जो दोनों बैट्समैन हैं रवि बोपारा और रॉस वाइटली, इन दोनों के पास एबिलिटी है कि वो बड़ी शॉट मार सकते हैं. एग्जैक्टली और इसके साथ ही अब हम आपको ग्राउंड में लिए चलते हैं जहां पर किंजा मौजूद है विद द गेस्ट. With me, I have the cricket legend Kumar Sangakkara. Hello, Kumar. How are you? I'm very well, thank you. Welcome to Pakistan, Kumar. How are you feeling? Tell us about the sentiments that you're here playing in Pakistan after so long. It feels absolutely special. It's a great tour to be part of. I'm coming here after 10 years. The reception has been amazing. The cricket's really good. Helps when you're doing slightly well against the Lahore Qalandars. But the message of the tour and the intent of this tour, I think, it's very special to be a part of. Kumar, we wanted to see, in fact, I wanted to see more of you, but unfortunately you got out a little bit early. So what do you think about the match? Who's going to win? Well, hopefully us, but it's great that the Qalandars have come out here and put on a very, very good team. Some really new young players that they're testing out as well. And we were here to play some competitive cricket as well, so it's great that we are competing. It's just a wonderful facility, the Gaddafi Stadium, and for us, it's great that we get to come here, meet the fans, and play some good cricket. That's it. Kumar, I hope you have a great stay here. Thank you very much. Thank you so much, Kumar. Back to the commentator box. थैंक यू किंजा. और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू जस्ट वर द डॉक्टर आउट. लाहौर कलंदर्स को यहाँ पर विकेट की ज़रूरत थी और सुहेल अख्तर ने एक और अच्छा कैच पकड़ा.
जी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैच अब इंटरेस्टिंग होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने डॉट बॉल से काफ़ी प्रेशर क्रिएट किया था और ज़्यादा रन्स भी नहीं दिए। एक मिस फील्ड के ऊपर बाउंड्री हुई थी, उसके अलावा रिसेंट ओवर्स में हमें बाउंड्रीज देखने को नहीं मिली और एक बहुत क्रूशल विकेट हासिल की है रवि बुपारा की। और ये मैच अभी भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। MCC को मज़ीद 15 रन दरकार हैं और 17 गेंदें बाकी हैं। बहुत क्रूशल विकेट यहाँ पर। लाहौर कलंदर्स आर बैक इन द गेम। यहाँ आप देख सकते हैं कि यॉर्क ट्राई किया, लो फुल टॉस था, ड्राइव मारने की कोशिश की, पिच गई और सीधी फील्डर के हाथ में। क्रूशल विकेट थी यहाँ पे। मेन सेट बैट्समैन मजर रवि बोपारा आउट हुए यहाँ पर और नए आने वाले बैट्समैन पर डेफिनेटली प्रेशर होगा। आई नो रन सिर्फ 15 रह गए हैं, 17 बॉल्स हैं। जो गेम का पड़ रहा है वो शायद MCC की तरफ है, बट डेप्थ ओवर में व्हेन यू आर चेजिंग एक विकेट गिरती है तो प्रेशर डेफिनेटली माउंट अप होता है। देखना यह है कि आने वाले इस ओवर में स्पेशली बॉलर अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल में रखता है एंड व्हाट इज़ द राइट प्लान। यहाँ पे प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी मदर, बिकॉज यहाँ पे ना सिर्फ आपने आउट करना है बल्कि आपने ट्राई करनी की बाउंड्रीज ना जाएं और नंबर ऑफ डॉट बॉल्स ज़्यादा से ज़्यादा हों ताकि प्रेशर मेंटेन रह सके। जी और अभी तक काफ़ी अच्छी फाइट बैक की है लाहौर कलंदर ने। इस बॉल को सॉफ्ट हैंड से ऑन द फ्रंट फुट ड्राइव करते हुए 1 रन हासिल किया और एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं MCC के जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं। माइकल आए हैं, अब एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, काउंटी का एक्सपीरियंस है इनका, MCC को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं एंड दे नो कि इस सिचुएशन में नर्व्स को कंट्रोल करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी माइकल बर्जिस, इनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, वॉरिकशायर काउंटी के लिए खेलते हैं, 25 साल इनकी उम्र है, काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर हैं। अनलकी हियर। अच्छा बॉल किया था, रॉस ने जोर से ड्राइव मारने की कोशिश की, इनसाइड एज हुआ, गेंद फाइन लेग की जानिब, 4 रन्स। अनलकी रहे यहाँ पर बॉलर, आई मस्ट से, बट क्रेडिट गोज टू द बैट्समैन बिकॉज लक फेवर्स द ब्रेव मजर, दैट्स अ फेमस थिंग। जी और फैजान राजा थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि ये एज हुआ और 4 रन इससे पहले भी हमने देखा कि एक मिसफील्ड हुई थी बाउंड्री के ऊपर जिससे कि लाहौर कलंदर को 4 रन मिले थे। तो ये तकरीबन 7-8 ऐसे रन हैं जो कि रोके जा सकते थे, लेकिन किस्मत ने MCC का साथ दिया। एग्जैक्टली, लक इज फेवरिंग द ब्रेव। टोटल कमांड में दिखाई दे रही है इस वक्त MCC की टीम। फैजान राजा की इस गेंद को कवर में ड्राइव करने की कोशिश की, बाहरी किनारा लेते हुए सीधी पॉइंट के हाथ में, कोई रन ना हो सका होता। यस, स्टिल 10 रन रिक्वायर्ड, एनीथिंग इज पॉसिबल। T20 की जब आप बात करते हैं, शॉर्टर फॉर्मेट की आप बात करते हैं, उस्मान शनवारी का मजा स्टिल 1 ओवर रहता है। तो यू नेवर नो, अगर आने वाली 2 डॉट में बॉल्स में आप डॉट करें या बाउंड्री सेव कर लें और नेक्स्ट ओवर में उस्मान अच्छा स्पेल करें तो कुड टर्न द टेबल्स। एक्सीलेंट फील्डिंग इन द कवर्स, फुल लेंथ बॉल थी जिसको जोरदार ड्राइव मारी थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग की, कवर के फील्डर ने बॉल सिंगल रन हुआ, बाउंड्री सेव की डेफिनेटली। जी और अगर ये मैच हार भी जाता है तो मेरा ख्याल है उनको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो अपने काफ़ी मेन प्लेयर्स के साथ नहीं खेल रहे। इस टीम में हारिस रऊफ भी नहीं है और शाहीन अफरीदी भी नहीं है, और ऑब्वियसली अगले हफ्ते जब PSL स्टार्ट होगी तो क्रिस लिन जैसे प्लेयर्स भी इनकी टीम को ज्वाइन करेंगे। yet again मिस फील्डिंग यहाँ पर सेकंड और थर्ड ओकेजन आई कि जब लास्ट फ्यू ओवर्स आए, प्रेशर बिल्ड हुआ तो कलंदर्स आर लीकिंग द रन्स जो डैमेज करेंगे डेफिनेटली। सो 18 ओवर के ख़त्म पर MCC 128, 5 विकेटों के नुकसान पर। तमाम तर निगाहें इस वक्त उस्मान शनवारी पर, बिकॉज ये बहुत ही क्रूशल स्टेज है मैच की। सिर्फ 8 रन दरकार हैं MCC की टीम को अपने पहले टूर गेम पर जीत हासिल करने में, और देखना यह है कि क्या उस्मान शनवारी इस टेंस और प्रेशर सिचुएशन में अपने नर्व्स पर कंट्रोल कर मैच को टर्न अराउंड कर सकते हैं। जी और अगर जोहेब आपको याद हो तो PSL में उन्होंने एक मैच जितवाया था कोयटा के खिलाफ, आखिरी ओवर में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी और जिसकी वजह से लाहौर कलंदर की टीम जो है वो PSL के प्लेऑफ से बाहर हो गई थी और अब वो लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे हैं।
यस, सो पहली बॉल को इन्होंने यॉर्क करने की कोशिश की थी, रिवर्स स्विंग थोड़ा सा दिखाई दिया, बड़ा अच्छा शॉट खेला, फ्लिक किया ऑफ द पैड्स, 2 रन हासिल किए। सो या अगेन वेरी वेरी क्लोज सिचुएशन यहाँ पर। ये देखें, इस बॉल को रिप्ले में आप देख सकते हैं, ऑफ द पैड्स था, आई थिंक एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अंदर आया राइट हैंडर को, फ्लिक अच्छा खेला और अच्छी फील्डिंग बाउंड्री पर। इट्स अ फंबल अगेन, एंड देखना ये है कि जब फील्डर ने बॉल रोका तो उनका हाथ टच तो नहीं किया, बट आई थिंक सेफ मामला रहा। एक्सीलेंट बॉलिंग जस्ट वर द डॉक्टर ऑर्डर्ड। उस्मान शनवारी अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए डेप्थ बॉलिंग में परफेक्ट यॉर्कर मारी, और ये वही यॉर्कर है जिसके लिए पाकिस्तानी बॉलर्स पूरी दुनिया में जाने और माने जाते हैं। अगर आप याद करें हिस्ट्री में तो वसीम, वकार, शुएब अख्तर, बहुत से ऐसे नामी गरामी बॉलर गुजरे पाकिस्तान की जानिब से जिन्होंने लास्ट बॉल तक कभी लेट डाउन नहीं किया और ऐसे परफेक्ट यॉर्कर्स मारकर बहुत से मैच पाकिस्तान के हक में जितवाए। जी, और यही पाकिस्तान के बॉलर्स की पहचान है, एंड तक फाइट करते हैं और किसी भी मोमेंट में वो मैच में वापस आ सकते हैं, इसीलिए पाकिस्तान की टीम भी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। और जैसा कि मैंने कहा कि उस्मान शनवारी ने भी इस तरह के कई स्पेल कर चुके हैं, पिछले साल कराची में कोयटा के खिलाफ एक इसी तरह का मैच जितवाया था, और देखना यह है कि यहाँ पे वो कुछ लाहौर के लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं। Yet again बहुत आला बॉल उस्मान शनवारी की जानिब से, रिवर्स स्विंग हो रहा है जैसा हमने पहले जिक्र किया, बॉल अच्छा अंदर आ रहा है, एंगल को यूज कर रहे हैं, शाइन के साथ बॉल हल्का सा अंदर आया और एटलीस्ट लक फेवर्स द ब्रेव अगेन। एमसीसी की लक आई थिंक ज़्यादा चल रही है मज़र आज, बिकॉज ये 2 बॉल डिजर्व करते थे कि एक आधी विकेट भी यहाँ मिल जाती तो स्टिल 6 रन इज़ अ बिग टोटल। अच्छा जुहेब, आप इतनी क्रिकेट खेले हैं और ऑब्वियसली यहाँ पे गद्दाफी स्टेडियम में भी आप खेले होंगे, ये बताएंगे पीएसएल में जिस तरह भी हम देख रहे हैं कि 19वें ओवर में हमें रिवर्स स्विंग देखने को मिल रही है और यहाँ पे शायद थोड़ा सा ड्यू भी होगी, तो आप समझते हैं कि पीएसएल में भी रिवर्स स्विंग का एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है? मज़र इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द विकेट। जब विकेट थोड़ा सा रफ होता है, थोड़ा यूज विकेट हो जिसमें पैचेस हो, तो उसमें बॉल रफ जल्दी हो जाता है, जो जितना रफ होगा उतनी जल्दी रिवर्स होने के चांसेस मिलेंगे। वाइड बॉल डाउन द लेग, आई थिंक ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दी उस्मान शनवारी, बिकॉज राइटली सो विकेट दरकार है और इन्हें एक्सपेरिमेंट करना है, इन्हें ट्राई करनी है एनीथिंग टू गेट द विकेट। और रिवर्स स्विंग की हम बात कर रहे थे, मज़र रिवर्स स्विंग इज़ बेसिकली डिपेंड अपॉन कि बॉल की कंडीशन कैसी है, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द कंडीशन ऑफ द बॉल, बॉलर में वो स्किल लेवल है जिससे वो रिवर्स स्विंग कर सके। तो येस, राइटली पॉइंटेड आउट कि गद्दाफी स्टेडियम या पाकिस्तान में होने वाले पीएसएल के मैचेस में रिवर्स स्विंग का एस्पेक्ट डेफिनेटली दिखाई देगा, स्पेशली इन द लेटर हाफ, बिकॉज जब विकेट ज़्यादा यूज़ होंगी, ड्राई होना शुरू होंगी, तो गर्मी भी हो जाएगी थोड़ी मार्च के एंड तक। एग्जैक्टली, वेदर का भी फैक्टर आएगा बीच में। सो यहाँ पर उस्मान शनवारी अगेन अपना इस आर्ट को यूज़ करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है उस्मान शनवारी ने इस ओवर में, यॉर्कर भी की है, स्लो बॉल भी एक करने की कोशिश की लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, रिवर्स स्विंग, तो काफ़ी वेरिएशंस का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब ये ओवर स्टार्ट हुआ था तो एमसीसी को सिर्फ 8 रन दरकार थे। मेरा ख्याल है कि अगर ये तकरीबन 15-16 रन होते तो उस्मान शनवारी इस मैच को इंटरेस्टिंग बना सकते थे। डेफिनेटली मज़हब, आई थिंक 10 to 15 ऑड रन शॉर्ट थी यहाँ पर लाहौर कलंदर, बिकॉज मिडल ओवर में एमसीसी ने बहुत शानदार बॉलिंग और फील्डिंग का मुजाहरा किया था और रिसिट किया था 135, बिकॉज एट द स्टार्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अराउंड 150 और जो रन है वो कॉम्पिटिटिव होगा ऑन दिस ट्रैक, बट क्रेडिट गोज टू एमसीसी कि पहले उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, फील्डिंग अच्छी की, और जब बैटिंग की टाइम आई तो एक्सपीरियंस ऑफ संगाकारा एंड रवि बोपारा, सुमित पटेल, उन्होंने शो किया कि वाई दे आर सो एक्सपीरियंस, वाई दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी पार्टनरशिप्स बिल्ड की और 8 रन आखिरी 2 ओवर्स में विद 5 विकेट्स इन हैंड, इट्स नॉट दैट हार्ड। जी, और यहाँ पे क्रेडिट जाएगा एमसीसी को और उनके कैप्टन कुमार संगाकारा को, जिस तरीके से उन्होंने स्पिनर्स को मिडिल ओवर्स में यूज़ किया, खासतौर पे फेंडर मरवे ने जो स्पेल किया था वो बहुत क्रूशल स्पेल था, उन्होंने रन्स कंटेन किए। अगेन यॉर्क करने की कोशिश की थी, रूम बनाकर मिड ऑफ, क्योंकि सर्कल के अंदर था, उसके ऊपर से मारने की कोशिश की, प्रॉपरली मिडल नहीं किया, बट द थिंग दैट रियली मैटर्स इज एक और रन, एक रन यहाँ पर बहुत क्रूशल है, बिकॉज 3 to 4 रन्स आर रिक्वायर्ड और आप एक रन लेकर भी प्रेशर काफ़ी हद तक रिलीज़ कर सकते हैं। जी, और अब 3 रन्स मज़ीद चाहिए एमसीसी को 7 गेंदों में, लेकिन क्रिकेट में काफ़ी हमें स्ट्रेंज चीज़ें देखने को मिलती हैं। मुझे याद है एक वनडे मैच था अबू धाबी में 2014 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, और ग्लेन मैक्सवेल 50वां ओवर कर रहे थे और 2 रन चाहिए थे पाकिस्तान को, और ग्लेन मैक्सवेल ने वो मेड इन ओवर किया था और पाकिस्तान वो मैच 1 रन से हार गया था। Yes, अजहर, पाकिस्तान की टीम although one of the greats in cricketing fraternity but always unpredictable.
अगेन यॉक करने की कोशिश की और सीधे बैट के साथ ही नोज के बॉल रिवर्सिंग हो रहा है, क्रॉस खेलते हुए चांस होगा विकेट गंवाने का, सेंसिबली खेले और इसके साथ 19th ओवर फिनिश हुआ 133 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। पीसीबी चेयरमैन एहसान मानी लास्ट ओवर लाहौर कलंदर्स वर्सेस एमसीसी, फर्स्ट टूरिंग T20, एक्साइटिंग सिचुएशन, क्राउड बहुत एक्साइटेड है। 3 रन रहते हैं, पहला बॉल फुल टॉस किया जिसको सीधा खेल दिया लॉन्ग ऑन की जानिब पर, ओ 1 बाउंस। चांस था यहाँ पर, चांस था, प्रेशर बिल्ड हो रहा है दोनों तरफ से जी, और फुल टॉस थी जिसको कि बाउंड्री के बाहर फेंकने की कोशिश की थी रॉस वाइटली ने, लेकिन सिर्फ 1 रन हासिल हुआ और अब सिर्फ 2 रन मजीद दरकार है एमसीसी को, 5 गेंदें बाकी हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक इजी विन होनी चाहिए यहाँ पे एमसीसी के लिए और एक बहुत खुशहाल बात होगी एमसीसी के लिए भी, जो कि 47 साल के बाद पाकिस्तान में आई है और गद्दाफी स्टेडियम में अपनी हिस्ट्री में पहला मैच खेल रही है। कुमार संगाकारा जो कि एमसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी क़यादत में एक बहुत खुशहाल मौका था, एक बहुत खुशगवार यहाँ पे लम्हात थे आज। बहुत अच्छा क्राउड आया देखने को और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह अगले महीने जो यहाँ पे 14 मैचेस होने हैं पीएसएल के, उसमें भी हमें इसी तरह का क्राउड देखने को मिलेगा। डेफिनेटली मज़र, जीत और हार इज़ पार्ट ऑफ द गेम, बट द गुड थिंग इज़ अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। अच्छा साइन था, एमसीसी की टीम आई, लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट खेला, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिली, क्राउड इज़ इन अ लार्ज नंबर, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। स्पेशली आपने जिक्र किया पीएसएल इज़ ऑन द वे, सो वी एक्सपेक्ट कि ऐसा ही लार्ज नंबर ऑफ क्राउड आपको अच्छे मैचों में भी नजर आए। और इस बार यॉर्कर मारकर क्लीन बोल्ड कर दिया, जैसा कि हमने जिक्र किया था कि दिस इज अ वेरी क्रूशियल सिचुएशन ऑफ द गेम। अ परफेक्ट यॉर्कर, अपने नर्व से कंट्रोल रखते हुए फैजान ने वो करके दिखाया जो आज पाकिस्तानी बॉलर्स पूरी दुनिया में फेमस है। परफेक्ट यॉर्कर एंड गॉन जी, और यहाँ पे क्रेडिट देना होगा सुहेल अख्तर को कि उन्होंने ट्रस्ट किया अपने बॉलर के ऊपर। फैजान राजा को उन्होंने ओवर दिया और एक अच्छी फुल लेंथ बॉल थी जिसके ऊपर उन्होंने विकेट हासिल की। माइकल बर्जिस की तरफ से थोड़ी सी मैं समझूंगा कि गैर जिम्मेदाराना शॉट थी, क्योंकि सिर्फ 2 रन दरकार हैं और 5 गेंदें बाकी थी, वो इजीली इसको सिंगल ले सकते थे, लेकिन उन्होंने बाउंड्री अटैम्प्ट की और अपनी विकेट को लूज़ किया। 5 रन बनाए माइकल बर्जिस ने 8 गेंदों के ऊपर। बहुत ही शानदार गेंद यहाँ पर फैजान का, नर्व से कंट्रोल रखते हुए, आप रिप्ले में देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट यॉर्कर। कुछ ज़्यादा खासी पेस नहीं थी, लेकिन जैसे कि आपने कहा माइकल ने ही वांट्स टू बी द हीरो, बाउंड्री मारकर मैच फिनिश करना चाहते थे और विकेट खो बैठे यहाँ पर। सो दिल बी एक्स्ट्रा प्रेशर जो अपकमिंग बैट्समैन होंगे। देखना यह है कि 2 रन दरकार हैं, स्टिल 4 balls टू गो, एनीथिंग इज पॉसिबल। T20 इज ऑल अबाउट एक्साइटमेंट टिल द वेरी लास्ट बॉल। जी, फेंडर मरवे अब आए हैं, नीदरलैंड्स के लिए खेलते हैं ये और इस एमसीसी टीम का हिस्सा हैं। साउथ अफ्रीका के लिए भी खेल चुके हैं और जैसा कि हमने पहले भी बोला कि ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप 2 टीम्स के लिए खेले हुए हैं, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स। और लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो हुए थे दुबई में, उसमें नीदरलैंड्स चैम्पियन था और ये उस टीम का हिस्सा थे। और इस साल ऑस्ट्रेलिया में भी हमें एक्शन में नजर आएंगे। ऑलराउंडर हैं, आज अच्छी बॉलिंग की थी और अब देखते हैं कि बैटिंग जो है वो कैसी करते हैं। What a great shot! What a great shot! Very first ball over the covers, and we will see अच्छी क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। अंपायर का सिग्नल देखना पड़ेगा फैजान राजा की तरफ से। आई थिंक नो बॉल किया यहाँ पर फैजान ने, एंड दैट्स द एंड ऑफ द गेम। बहुत ही शानदार तरीके से एमसीसी ने पहले टूरिंग गेम में लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट 4 विकेटों से फतह हासिल की।
जी, और 47 साल के बाद, जैसा कि हमने पहले भी अर्ज़ किया कि 47 साल के बाद एमसीसी की टीम पाकिस्तान आई है और पहले ही मैच में उनको कामयाबी मिली। लाहौर कलंदर की एक एक्सपीरियंस टीम थी जिसमें कई इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद थे, लेकिन एमसीसी ने ये मैच, मैं कहूँगा कि काफ़ी आसानी से ये मैच जीता। सिर्फ 135 रन किए थे लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए, जो कि इन कंडीशंस में बहुत ही छोटा टोटल था, और थोड़ी सी बॉलर्स ने फाइट बैक की, लेकिन एमसीसी ने ये मैच 4 विकेट से जीत लिया। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा एमसीसी की जानिब से। क्रेडिट गोज़ टू द होल मैनेजमेंट, द वे कुमार संगकारा लेड फ्रॉम द फ्रंट। पहले बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, टॉप फील्डिंग, रनआउट्स देखने को मिले, अच्छे कैचेस देखने को मिले, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली एमसीसी ने, और इस तरह पहली टूरिंग विन हासिल की अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स आई थिंक मैच तो ज़रूर हार गए, बट यहाँ पे इनको क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने अपने यंग जो लड़के हैं, जो यंग टैलेंट है, उनको चांस दिया, उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया दैट गो इन द ग्राउंड, शोकेस योर टैलेंट। और इस किस्म के जो इनिशिएटिव्स आप एज अ मैनेजमेंट लेते हैं, वहाँ से आपके लिए अच्छे और बड़े प्लेयर प्रोड्यूस करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर्स को डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके कई सीनियर प्लेयर्स इस मैच में नहीं खेल रहे थे। हारिस रऊफ नहीं थे, शाहीन अफरीदी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फाइट की, और एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है लाहौर के लिए कि उनको पीएसएल से पहले थोड़ा वार्म अप होने का मौका मिला। उनके नए कैप्टन है सुहेल अख्तर, उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि उन्होंने अपने बॉलर्स को और टीम को किस तरीके से यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट देना होगा एमसीसी को, जो कि 47 साल के बाद आई, और 47 साल पहले जब ये आए थे 1973 में, तब भी इन्होंने पिंडी में मैच जीता था प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ, जब उस टीम के कैप्टन ज़हीर अब्बास थे। और 47 साल के बाद आए हैं और आते साथ ही इन्होंने एक मैच जीता है। 2 दिन के बाद हम एमसीसी को दोबारा एक्शन में देखेंगे, पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ वनडे मैच खेलेंगे एचिसन कॉलेज में, और उसके बाद 2 मज़ीद मैचेस खेलना है इनको, नॉर्दर्न के खिलाफ और मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ। तो अभी 3 मज़ीद मैचेस बाकी हैं, और एमसीसी की तरफ से हमें मज़ीद अभी इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। ये एमसीसी के कैप्टन हैं और प्रेसिडेंट भी हैं कुमार संगकारा, 11 साल के बाद पाकिस्तान आए हैं और लाहौर में खेलना पसंद करते हैं, और आज मैच भी जीते हैं। जी हाँ, बहुत टीम शेक हैंड्स करते हुए अच्छी क्रिकेट खेले, दोनों तरफ से प्लेयर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। बट आई थिंक अगर इस मैच का जिक्र किया जाए तो 15 से 20 रन लाहौर कलंदर्स थोड़े से शॉर्ट थे, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया एमसीसी की टीम ने। अच्छी पार्टनरशिप्स बिल्ड की, और रवि वपारा को क्रेडिट जाएगा, सुमित पटेल को क्रेडिट जाएगा। इस तरह मिडिल ओवर्स में उन्होंने अपने नर्व्स का कंट्रोल रखा, पार्टनरशिप बिल्ड की। T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन गुड पार्टनरशिप्स। जैसा कि स्कोर कार्ड पर आप देख सकते हैं, विल रोड्स 3 पर जल्दी आउट हुए, माइकल लीस भी 10 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए, बट इट इज़ कुमार संगकारा, रवि वपारा एंड सुमित पटेल जिन्होंने 25, 42 और 31 रिस्पेक्टिवली बनाए, और इन द एंड रॉस वाइटली और रॉन्डर मर्वे ने फिनिश किया हाई नोट पर। 137 रन इन्होंने बनाए और सिर्फ 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। 19.2 ओवर्स में इन्होंने अपने टारगेट को चेस किया और पहली विन हासिल की। लाहौर कलंदर की जानिब से यहाँ शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, स्पेशली उस्मान शनवारी की जानिब से, जिन्होंने 4 ओवर में 16 रन देकर 1 खिलाड़ी आउट किया। मास खान ने इनके साथ नया बॉल शेयर किया था, जिन्होंने 23 रन देकर 1 खिलाड़ी आउट किया इन 4 ओवर्स। अली माजिद 3, 21, हफीज़ 2 ओवर 13, दिलबर 1 ओवर 11, 1 विकेट। फरजान राजा 3 ओवर 33 रन, थोड़े से एक्सपेंसिव हुए बट 1 विकेट हासिल की। और फैजान रियाज इन द डेप्थ जिन्होंने लास्ट ओवर किया, 19 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया इन 2.2 ओवर्स। जी, और अगर हम देखें तो काफ़ी चेंजेस की थी उन्होंने बॉलिंग में, 7 बॉलर्स को यूज़ किया, लेकिन थोड़ी सी हैरानी इस बात की थी कि दिलबर हुसैन, जिसके ऊपर लाहौर ने काफ़ी इन्वेस्ट की है, उनको सिर्फ 1 ओवर के लिए यूज़ किया गया। एग्जैक्टली मज़र, दिलबर जो अभी BBL भी खेल के आए, काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी उनसे। आई थिंक एक आधा ओवर डेफिनेटली उन्हें ट्राई आउट करना चाहिए था, जबकि उन्होंने कुमार संगकारा जैसी बड़ी विकेट दिलाई थी। तो या न्यू कैप्टन सुहेल न्यू मैनेजमेंट के साथ अपना माइंड सेट ऑन कंपैटिबिलिटी बनाते हुए डिसीजंस लेंगे अर्ली ऑन। कुछ मैचेस में आपको अच्छे बुरे डिसीजन नज़र आएंगे, आप हाईलाइट्स देख सकते हैं। स्टार्ट में स्पिनर्स ने अच्छे बॉल किए, लेकिन अगेन रवि वपारा एंड को अच्छे अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए बॉलर्स की पेस को यूटिलाइज़ किया, अपने सिग्नेचर शॉट्स, दीज ड्राइव्स एंड नेक्स्ट आपने कट देखा, बहुत ही शानदार शॉट्स के लिए कुमार संगकारा ने अपने एक्सेप्शनल टैलेंट का मुजाहरा किया। यहाँ पर सुमित पटेल ने डाउन द विकेट आते हुए हफीज़ को अंडर द थंब किया, प्रेशर डाला हफीज़, जो कि कम बैक किया था उन्होंने अपनी बॉलिंग में, यहाँ पर टांग रख के बहुत शानदार शॉट्स के लिए उन्होंने अटैक किया। और आई मस्ट से यहाँ पर एमसीसी की तरफ से नहायत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया गया, बट लाहौर के अंदर आई थिंक थोड़े से ऑफ कलर दिखाई दिए फील्डिंग में, और जो एंड में कॉस्ट किया उनको और वो मैच हार गए।
जी अगर लाहौर कलंदर्स मेरा ख्याल है कि फील्डिंग में अगर रन्स रोकते तो ये जो 135 रन थे ये भी थोड़े से कंपेटिटिव हो सकते थे और हमें एक मज़ीद इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिल सकता था। लेकिन फिर भी जैसा कि हमने पहले भी कहा कि लाहौर के लिए भी ये एक डेवलपिंग फेज़ है। उन्होंने अपने यंगस्टर्स को मौका दिया। दिलबर हुसैन को वो ओवर करवा सकते थे लेकिन शायद उन्होंने फैज़ान को देखना चाहते थे क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है PSL। तो शायद सोहेल अख्तर की भी ये कोशिश थी कि वो अपने प्लेयर्स को देखें कि वो इस तरह के क्रूशल मोमेंट्स पे कैसी बॉलिंग करते हैं। और यकीनन MCC मुबारकबाद की मुस्तहिक है, आते साथ ही अपना पहला मैच जीते हैं और अभी मज़ीद 3 मैचेस इनको खेलना है। और जिस तरीके से उन्होंने आज क्रिकेट खेली है, जिस तरह के यहाँ पे स्टार प्लेयर्स आए हुए हैं, कुमार संगाकारा हैं, फेंडर मरवे हैं, समित पटेल हैं, रवि बुपारा हैं, फ्रेड क्लासन हैं, माइकल लीस्क हैं। बहुत ही जारहाना और शानदार क्रिकेट का मुजाहरा किया। मैच समरी लाहौर कलंदर्स 135 in 20 overs एंड MCC ने उसको चेस किया इन 19.2 overs. So this is the end from the commentatory box. यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन सेरेमनी पे लिए चाहते हैं जहाँ पर मौजूद हैं On है. Hello, audio check 3. Hello, audio check 1 2 3. Hello. दोनों ले रहे हैं दोनों. आज फैंस में बांट देंगे सबको. ओके. इसरार के फैन हाथ उठा के शोर मचाएंगे. ओके. हेलो ऑडियो चेक 1 2 3. हेलो ऑडियो चेक 1 2 3. ओके. लोगो उतारना लोगो उतारो है तुम. लोगो उतारो. फड़ो. सही है. गूगल दसबिन दा साडे कोल तोड़े मारने ने चौके छक्के लाके पूरा जोरे. उधर ही रहना है. असरार की परफॉर्मेंस देखनी है आपने. मारने चौके छक्के लाके पूरा जोरे.
करना चाहूँगा पुलिस का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, सिक्योरिटी इदारों का, जिन्होंने इस मैच को शानदार बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। प्रेजेंटेशन पार्टी जो आज मेरे साथ मौजूद हैं, ऑन माय लेफ्ट चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फॉर्मर आईसीसी चेयरमैन मिस्टर एहसान मानी। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट फास्ट बॉलर, 92 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम का पार्ट, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट कोच आकिब जावेद साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर कलंदर, लाहौर कलंदर की आवाज आतिफ राना, और मैनेजर लाहौर कलंदर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to invite Chief Executive Pakistan Cricket Board, Mr. Wasim Khan, please come forward and vote of thanks for MCC. शुक्रिया जी, पहले हम शुक्रिया करता हूँ, लाहौर के क्राउड आए हैं सपोर्ट करने के लिए। प्लीज HBL PSL को भी खूब सपोर्ट करना। And like to thank the MCC, Kumar and his team. Congratulations on a great win, and commiserations to the Lahore Qalandars. Wishing them all the very best for the HBL PSL. Thank you very much for everybody coming to support. It's something that the Pakistan Cricket Board is very passionate about. We're delighted the MCC have come to visit Pakistan, or inshallah Lahore bhi teams aayenge, and keep supporting cricket in Pakistan and keep supporting cricket here in Lahore. Shukriya ji. Thank you very much, Wasim. Now I would like to invite Lahore Qalandar captain Sohail Akhtar, please come. सोहेल, पाकिस्तान सुपर लीग से पहले आपका होम ग्राउंड है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, एमसीसी के खिलाफ मैच के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं एमसीसी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पाकिस्तान आए, और उसके बाद अच्छा हम चाहते थे कि हमारा गद्दाफी स्टेडियम में मैच हो, लड़कों को और विकेट का ग्राउंड का हमें आइडिया हो जाए, और जो हमारी प्लानिंग थी कि जो हमारे पीडीबी के प्लेयर्स हैं कि जिन पे लास्ट 3 से काम हो रहा है, तो उनको भी हम ये एटमॉस्फेयर में मौका दें। तो क्या अंदाजा किया सोहेल आपने, कहाँ वीकनेसेस हैं, कहाँ आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं? फास्ट बैटिंग में मैं समझता हूँ कि 15 से 20 रन हम शॉर्ट थे, 15 से 20 रन हम सेव कर सकते थे, तो जो ये फील्डिंग में थोड़ा काम करने की जरूरत है हमें। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल अख्तर। एमसीसी ने ये मैच जीता और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी रिसीव करेंगे। 37 बॉल्स 42 रन्स। प्लीज रवि बोपारा, मैन ऑफ द मैच, एंड चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, प्रेजेंट दिस ट्रॉफी। Ravi, before Pakistan Super League, you performed magnificently. 37 ball, 42 runs. Yeah, it was a nice day out. I think the team played very well. I think we done a very good job keeping them to 137. I thought that was a great effort from the bowlers. I think Rulof bowled very well, and we chased it. Previously, Karachi for Multan Sultan. Yeah. After 4 years, new exciting challenge. There's some very good coaches at Multan Sultan, and it's a very good team. I've heard a lot of good things about the team. Everybody's saying we got one of the strongest teams in the competition. So hopefully we can go on and try to win the competition this year. All the best, Ravi Bopara, man of the match, MCC. Thank you very much. And now I would like to invite Captain MCC, Mr. Kumar Sangakkara. Receive winning trophy, Chairman Pakistan Cricket Board, Mr. Ehsan Mani. Kumar, once again, thank you very much. Say something for crowd. Oh, I think the crowd has been fantastic. Thank you very much for coming out and supporting this great game. Thank you for coming out in numbers. It's brilliant to play in front of such a crowd. And this is what cricket is all about. It's about passion and support. Thank you also to the PCB, Mr. Ehsan Mani, Mr. Wasim Khan, and the Lahore Qalandars, who put on a magnificent show for us. And they did so much to accommodate us on this tour. And we're very, very happy to be here.
Kumar, tell us about something, Lahore Qalandar young boys. Yeah, it's great. I think that's one of the biggest advantages of a tournament like the PSL. It's about unearthing young talent and then refining the talent and the ability that you already have. So when you have such a tournament, you have international stars playing with these young boys, you'll find that they improve very quickly. And the more you play under heavy pressure, then you understand who are the players who can deal with it and what more adjustments that the hugely talented young players need to make to step up to playing in the PSL and then of course in international cricket. Kumar, once again, thank you very much. You are a great captain, great human being and fantastic man. Thank you very much. Thank you. And that's it from the presentation. Thank you very much.